the shelter of the Guru's wing, I find rest, living in the shadow of the Guru's wing. I find peace under the shelter of the Guru's wing. I find rest. I find rest. Soul Satsang is soul's association with the universal truth or reality. Today, humanity is divided by man-made concepts, doctrines, and dogmas in the name of nationality, religion, race, caste, color, gender, lifestyle, and even in the name of science. Soul Satsang is an effort to create a soulful bonding or atmiyata between human beings based on the life's reality lived by different people across the world and learning from the global wisdom. At this point, we are touching only a global family united through Samarpan meditation under the video series of This is Samarpan. Eventually, it will cover up more diverse subjects and demography. We hope you will appreciate our humble effort with an open mind and loving heart. Our intention is to enlighten one's soul and heal one's heart by learning from the life experiences of people who prove themselves to be healthy, happy, without losing any peace of mind in the life. Let the wisdom of life spread through our soul satsang. Soul Satsang is soul's association with the universal truth or reality. Today, humanity is divided by man-made concepts, doctrines, and dogmas in the name of nationality, religion, race, caste, color, gender, lifestyle, and even in the name of science. Soul Satsang is an effort to create a soulful bonding or atmiyata between human beings based on the life's reality lived by different people across the world and learning from the global wisdom. At this point, we are touching only a global family united through Samarpan meditation under the video series of This is Samarpan. Eventually, it will cover up more diverse subjects and demography. We hope you will appreciate our humble effort with an open mind and loving heart. Our intention is to enlighten one's soul and heal one's heart by learning from the life experiences of people who prove themselves to be healthy, happy, without losing any peace of mind in the life. Let the wisdom of life spread through our soul satsang.
Jai Baba Swami, Jai Atmeshwar. A very warm welcome to all the guests, participants, and host of today's session. This is Samarpan. We will take you through the history of Samarpan meditation as witnessed by the first generation sadhaks, and we will get to know about their journey and evolution of Samarpan meditation in various parts of the world. It's an interview of the souls by the souls to connect with the super souls थ्रू द कलेक्टिविटी ऑफ सोल्स। दिस इज समर्पण के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। यहाँ हम समर्पण ध्यान की पहली पीढ़ी के साधकों द्वारा समर्पण ध्यान का इतिहास जानते हैं। ये पवित्र आत्माओं का एक साक्षात कार्य है अन्य पवित्र आत्माओं के साथ उनकी सामूहिकता में जो हम सबको परमात्मा से जोड़ती है। In the most awaited session of This is Samarpan today, we are blessed with two divine souls, Pratapji and Harshaji. Their anubhutis are countless. Their journey with Swamiji is very precious to us. And you will get to know about their journey, their story, their life with Swamiji. And we will experience the energy of their Gurukarya today. But before that, a few house rules. Dear guests and co-hosts, please put your phones on silent and WhatsApp calls on mute. Please turn off your audio, video until the interview begins and we will announce and invite you to speak. If you get disconnected, please join back. Please message one of the teammates personally and we will make you co-host and you will have privileges to mute and unmute. For our audience, we request please turn off your videos so we have better bandwidth and we can enjoy the program thoroughly. During this session, if you have any questions, please share on the chat. We will collect all the questions and address them at the end of the session. दर्शकों से निवेदन है कि कृपया अपना वीडियो बंद रखें ताकि हमें बेहतर बैंडविड्थ मिल सके और हम सब इस कार्यक्रम का आनंद ले सके. We have this session on YouTube also, so please feel free to share the link with friends and family who might benefit this program, or if they miss part of the program later because of the time restrictions, they can enjoy the whole program on YouTube later at their own convenient time as well. We will have this interview in Hindi and English, and the session will be summarized for our non-Hindi speakers by Hitendra ji in English. And thank you with that note. And now I would like to invite Utsa for the next part. Thank you, Sonalji. Jai Baba Swami, everyone. So before we move forward to this program, I would like to read the disclaimer. The only objective of This is Samarpan is connecting all living beings of present times. The information and opinions shared here by anyone are personal views of the speaker and are not officially associated with any social, religious, cultural, political, educational, or other organization. We are here to be inspired on how to go back to our original nature of pure soul or Holy Spirit. By no means we intend to offend someone or to hurt anyone's emotions. We support understanding of any subject based on our own experiences rather than relying on any online or bookish information that encourages baseless ideology or superstitious beliefs. Please accept our soulful love or atmiyata and disregard any information that you don't agree with. With this, I would like to invite Pranav. Right. जय बाबा स्वामी, दिस इज समर्पण। इस सुंदर और मजेदार कार्यक्रम का आधार है समर्पण ध्यान। यह एक प्राचीन और प्राकृतिक ध्यान योग है जो गुरु संस्कार या गुरु के मूल्यों पर आधारित है। हिमालय के योगी और तपस्वी यह ध्यान साधना पिछले 800 सालों से करते आ रहे हैं और यहाँ यह ध्यान संस्कार श्री शिव कृपानंद स्वामी जी पहली बार समाज में 1994 में लेकर आए ताकि हम जैसे आम आदमी इस साधना का लाभ उठा सकें। उन्हीं हिमालय के गुरुओं की कृपा से आज दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में लाखों लोग यह ध्यान साधना कर पा रहे हैं। समर्पण ध्यान साधना किसी भी देश, धर्म, जाति, लिंग, रंग या जीवन शैली का भेदभाव ना करते हुए सभी के लिए बिना मूल्य प्राप्य है। समर्पण ध्यान 2 शब्दों से बना है। पहला शब्द है समर्पण। समर्पण यानी हमारी नकारात्मकता, हमारा अहंकार, हमारे भूतकाल एवं भविष्यकाल के विचार अथवा हमारी अपेक्षाओं और आसक्तियों को
गुरु चरण में समर्पित करना। दूसरा शब्द है ध्यान। ध्यान वह स्थिति है जिसमें वर्तमान में रहकर किसी भी प्रयत्न के बिना हमारी आत्मा विश्व चेतना से एक रूप हो जाती है। समर्पण ध्यान साधना हमें एक संतुलित मनस्थिति में जाने का सिखाती है, जिसे हम सर्वोत्तम आरोग्य और सर्वोत्तम प्रगति के साथ आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। आप सभी ने हम सबको जय बाबा स्वामी और जय आत्मेश्वर बोलते हुए सुना होगा। जय बाबा स्वामी हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम सभी आत्मरूपी मोती एक सद्गुरु रूपी अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं, जो और कोई नहीं पर हमारे प्यारे बाबा स्वामी ही हैं। और हम आपकी आत्मा को जय आत्मेश्वर कहकर सादर प्रणाम करते हैं। With this, I would like to hand it over to Viresh ji. Jai Baba Swami, Pranav ji, thank you very much. Jai Baba Swami, everyone. Jai Atmeshwar. I would like to begin with introducing Mrs. Harsha Shah. She was born in Hyderabad. Her family consisted of her parents, a younger brother and a younger sister. Harshaji was a bright student and had keen interest in learning about Jain Dharma right from the beginning. What appealed most to her since her childhood was the desire to sit in calm and peaceful place. This she discovered when she joined Samarpan meditation in 2002. She was doing it all along, but then she discovered that in 2002. After her marriage to Pratapji, she moved to Mumbai, and they have 2 children, a daughter and a son, who are both settled in their lives. She has great interest in exploring new places, and consequently has traveled to many countries with Pratapji. Her hobbies are dancing and singing. She loves to do Gurukarya and aims to stay in the ashram one day for a long time. Mr. Pratapji Shah was born in Kutch, Kothar, Gujarat. He has 1 brother and 2 sisters. As a young man, Pratapji was an introvert and spoke very little. He was brilliant in academics and scored 98 out of 100 in mathematics in his SSC examination. Later, he moved to Mumbai and climbed his way from the retail grocery store to wholesale distribution of setting up an oil manufacturing factory. The business consumed almost all of his working time, and he took no vacation for a long time. However, Pratapji was still active in social work at the same time before joining Samarpan meditation. He considers himself as very fortunate to have had a chance to perform a lot of Gurukarya, which we are going to hear soon. He believes that having a healthy body allows him, as well as Guru energies, to focus on his spiritual progress towards moksha without wasting time and energy on health-related issues. To that end, he has developed running as a hobby and has even completed 21 kilometers marathon at this age. His aim is to do Gurukarya till his last breath. With this brief introduction, I now call upon Hitendra ji to start the interview with Harshaji and Pratapji. Jai Baba Swami. Thank you very much, Viresh Bhai. Jai Atmeshwar. On behalf of Shri Shiv Krupanand Swamiji and our global Samarpan family, I welcome our today's guest from Mumbai, India, Mrs. Harsha Shah and Mr. Pratap Shah. Welcome, Harshaji and Pratap Bhai. Jai Baba Swami. Jai Atmeshwar. Jai Baba Swami, Jai Atmeshwar. So very beautiful introduction was made by Viresh ji, and we are going to start the program. आज का कार्यक्रम जैसे हम करते आए हैं, हिंदी में बातें करेंगे, हर्षा जी से थोड़ी हिंदी अंग्रेजी दोनों में बातें करेंगे और I will try to translate.
So, are you ready, Pratap bhai? Yes. Yes. Jai Baba Swami. जय बाबा स्वामी. We are all very excited. तो आइए Yeah. हम आपके बचपन की बातों से अपनी आज की चर्चा शुरू करते हैं. तो हमें बताइए आपके बचपन के बारे में. और हर्षा जी, you can start with that. No problem. I have to start. Okay. सूक्ष्म रूप से उपस्थित गुरु जी को मेरा, परमात्मा रूपी गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम. सूक्ष्म रूप से उपस्थित गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम. और आप सभी साधकों को जय आत्मेश्वर, जय बाबा स्वामी. मेरा जन्म तो पूछा था मैं I was born in Hyderabad in 1965. I'm telling my year also. And I was the first child of my family. But before my birth, there was a brother, but he died after 9 months, and there was no kid in the family for last 18 years. So when I was born, I was very much welcomed by the family by distributing peda, not jalebi. And I was very ladly of my daddy. Very beautiful. और आधी रात को भी अगर मैं कुछ मांगू तो मेरे डैडी हाजिर कर देते. इतनी मैं उनकी प्यारी थी, लेकिन मुझे उनका साथ ज्यादा नहीं मिला था. मैं पहले से ही अव्वल थी, बिना ट्यूशंस के ही. मैं 7th में भी मैं फर्स्ट क्लास आई थी, और SSC में भी फर्स्ट क्लास आई थी. उस जमाने में फर्स्ट क्लास आना बहुत बड़ी बात होती थी. Absolutely. और 7th के एग्जाम के टाइम पे तो ऐसा हुआ था. 7th में तभी हैदराबाद में बोर्ड एग्जाम चलता था. तो 22 अप्रैल को मेरे डैडी का डेथ हो गया, और 25 अप्रैल से मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला था. और घर में तो तभी तो 50-100 गेस्ट थे सब. मेरे डैडी का डेथ हो गया था इसके लिए. तो मेरे मम्मी ने सबने ना बोला कि एग्जाम नहीं देने का, लेकिन मेरे आंटी है जो इंदू बेन, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं, 1 साल नहीं बिगाड़ना है, एग्जाम तो देना ही है. उन्होंने मुझे एग्जाम देने भेजा था, बस ऐसा. और दिस वाज माय चाइल्डहुड. टिल 12th आई स्टडीड एंड देन आई गॉट मैरिड. और से एक जो शांत में एकदम शांति से बैठने की, लोन में एकदम किसी से बात नहीं करने का, एकदम शांत प्रिय थी. और मुझे जब बैठती थी तब मुझे ये ऐसे काले सफेद ऐसे कुछ बादल के जैसे दिखते थे. मुझे पता नहीं वो क्यों दिखते थे, लेकिन वो दिखते थे तो मुझे मजा भी आती थी, और मुझे शांत बैठने का मजा भी आता था. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. Very beautiful. So Harshaji's story is very similar to most of us, but the inspiring part that I liked is even after such a critical situation, you had that courage from your auntie to go and give the exam. Yeah. It is not easy for anybody. She is talking about her education, and she was born and brought up in Hyderabad, which is more in the central India. And she was a brilliant student. So of course, in those days, to get first class in the school was not that easy. Today, students get 90 plus or 90. If they have less than 90, parents and teacher ask, how come you have less mark? But in those days, to pass with the 60 plus marks was very, very, respectful success for students as well as for parents. So really appreciate that, Harshaji. And I saw some pictures, very beautiful story with the pictures. So you were doing some drama or something? What is this? Yes. Sita ji or Hanuman ji jaisa doing hai? Yes, I played a role of Sita ji in a drama. अरे वाह, क्या बात है. In school days. And these are your brothers, sisters? Yeah, this is my brother and sister. Very beautiful, very beautiful. And, I was elder, a younger brother and younger sister. And this seems to be your auntie, I believe? Yeah, the right hand side. Yes, this is my auntie, which I am very inspired of. उनका नाम क्या है? इंदू बेन शाह. इंदू बेन. तो सोमैया में वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं. अभी वो अमेरिका में है,
तो कैलिफोर्निया में है, तो मैंने उन्हें बोला है क्या यू सी ऑनलाइन, मे माइट बी शी विल बी सीइंग। तो इफ शी इज वाचिंग, इंदु जी, समर्पण परिवार की ओर से आपको हमारा नमस्कार, और ऐसे ही आप सबको इंस्पायर करते रहिए, ये मेरी प्रार्थना। थैंक यू। एंड दिस वाज माय स्कूल। यस, सुजाता स्कूल। Yeah. Sujata High School, very beautiful English medium. So no wonder you have such a beautiful command on English, because you studied from very young age in English. Very nice. And Hyderabad is near to Bangalore Ashram. Only right. one night journey. Very beautiful for you. So many connections, so many things that was planned from very young age for you, for the future spiritual progress. I can say that. So let's move to Pratap bhai. Pratap bhai, आपके बचपन के बारे में थोड़ा बताइए हमें, और बहुत खूबसूरत फोटो है आपकी यहाँ पे। Tell us more. वो मेरी एसएससी के एग्जाम देने के टाइम में जो फोटो निकालते हैं वो वाला फोटो है। सही है, सही है। ये मुझे बिल्कुल अपने एसएससी के टाइम की याद दिला रहा है। क्योंकि पहले फोटो एसएससी के टाइम में शायद फर्स्ट टाइम मेरा फोटो निकला होगा। सही है, सही है। गांव में फोटो तो नहीं निकालते थे ना, या कैमरा भी नहीं थे उस टाइम पे। लेकिन ये मिल जाना और हमारे साथ शेयर करना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गांव कोठारा है। कोठारा वैसे बहुत बहुत तरह से फेमस है, क्योंकि कोठारा में गोकुलदास तेजपाल एक बहुत बड़ा दानवीर हो गए हैं। केशव जी नायक, जिन्होंने पालीताना में जैन मंदिर बनाया है, और यहाँ भी मुंबई में भी उनके नाम फव्वारा वगैरह बहुत कुछ है। बहुत दानवीर थे कोठारा के केशव जी नायक। ऐसे वल्लभदास कृष्णदास छाता, मतलब उन्होंने स्कूल वगैरह में भी काफी मदद की है। ऐसे कोठारा के बहुत लोग आगे हैं। मैं उसी गांव में जन्म, गांव भले छोटा है मगर वहां से बहुत लोग तैयार होके आगे निकले हुए हैं। बहुत। और वहाँ मैं जो स्टडी वही गोकुलदास तेजपाल स्कूल के अंदर किया है। तो गुजराती मीडियम था हमारा, और मतलब बहुत स्कूल का भी कई सालों तक 100% रिजल्ट अभी तक आ रहा है। मतलब हमारे पूरे कच्छ के अंदर कोठारा स्कूल का बहुत नाम था। हमारे जो टीचर थे उनको भी अवार्ड वगैरह मिला हुआ है इसकी वजह से। काफी अच्छे शिक्षक रहे होंगे। हाँ, और मैं एसएससी के अंदर जब एग्जाम हुआ तो मेरा जो मैथ्स था, मैथ्स के अंदर मेरा 98% मार्क, और मैं एसएससी के अंदर मैं हमारे गांव के हिसाब से सेकंड नंबर पे आया था मैं, और फर्स्ट क्लास में भी पास हुआ था। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी सक्सेस है। तो ये तो आप दोनों का बहुत शार्प ब्रेन, जिसकी वजह से आपके बच्चों को भी फायदा होता होगा अभी। Yes. Prince is sharp minded from now only. हाँ जी, हाँ जी। तो आपके कितने भाई बहन थे प्रताप जी? हाँ, मेरी से एक छोटी बहन थी, वो ऑफ हो गई। उसके बाद में मेरे एक भाई जवेर भाई और दूसरा 2 बहन। बहन में से भी एक बहन बड़ी जो है तीसरे नंबर की, वो भी ऑफ हो गई। अभी एक बहन और एक भाई है अभी। अच्छा। और भाई तो आपने जवेर भाई का फोटो डाला ही है, और बहन मेरी निजामाबाद है, जो हैदराबाद के बाजू में है वहाँ, और वहाँ भी सेंटर ध्यान करती है। सेंटर हमारे परिवार का एक खास है कि स्वामी जी बोलते हैं कि हमारे परिवार का ज्यादा लोग नहीं होते, मगर हमारे परिवार से मिनिमम 100 लोग हैं, उससे ज्यादा होंगे, कम नहीं है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। क्योंकि मेरा खानदान, हाँ, मेरा जैसे मेरा प्रताप, उसके बाद में नैन्सी मानेक जी परिवार, उसके बाद में मानेक जी जोशी, मतलब नैन्सी मानेक जी, पूरा मानेक जी परिवार मतलब हमारा जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा मेरा मौसार पक्ष में सारे जुड़े हुए हैं, इसके भी मौसार पक्ष में सारे जुड़े हुए हैं। मतलब काफी हैदराबाद में इनका पूरा मौसार पक्ष है। तो हमारा 100 से ज्यादा लोग कम से कम जुड़े हैं, उससे ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। ये तो बहुत ही सुंदर सफलता की स्टोरी है, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी में से भी पति होता है या पत्नी नहीं होती है, या तो बच्चे होते हैं, माँ बाप नहीं होते हैं, लेकिन आपके 100 लोग अपने परिवार से जुड़ना, मतलब 100 मिनिमम बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये गुरुदेव की और आपके पूर्वजों की, माँ बाप की बहुत बड़ी कृपा होगी, तभी सबको इतना सुंदर जीवंत गुरु का सानिध्य और ये पंथ मिला। तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जवेरचंद भाई को तो कई लोग हमारे समर्पण परिवार से जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने भी प्रताप भाई की तरह बहुत सेवा दी है। ये जैसे सिक्योरिटी जो स्वामी जी के परिवार के साथ हमेशा रही है, उसमें जवेरचंद भाई का बहुत योगदान रहा है। तो जवेरचंद भाई, अगर आप देख रहे हो
तो हमारे समर्पण परिवार की ओर से आपको नमस्कार कहता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आपका योगदान आज प्रताप भाई और हर्षा जी के जरिए हमारी नजरों में आ रहा है. So I will try to summarize a little bit about Pratap Bhai's journey. He was born and brought up in Kothara, which is a small village near Kutch. Our Punadi ashram is not too far from there. And one very interesting thing about this small village is there are many families who have such a strong Jain religious background that they have progress in their overall life, like financial and other cultural, educational, social areas, that this success has reached not just to their little town, but this success has reached to different part of the world. For example, one of the family contributed on a big scale to the Palitana temple, Jain temple, which is one of the pilgrimage for Samarpan, not Samarpan, for the Jain religion. And also some of the business people from Kothara have successfully contributed not just in Kutch, but outside in Mumbai and other areas. So that is really interesting. Pratap Bhai has been also a very brilliant student, especially he was second in the town for his maths and other educational achievement. So when he grew up, he came to Mumbai, and his father and Harsha's father both passed away at very young age. So they were more, you can say, responsible and mature from very young age for the life that they have gone through. Pratap Bhai, as Vireshji also introduced, started with his uncle and then established his own company, PP Oil Limited. And currently it is in Kasheli, Mumbai from 1993 onwards. And more than 300 employees work in this company. And Pratap Bhai's brother, Zavichan Bhai, he is also very dedicated to serving Swamiji and Guru Parivar as a security person, as a member of security team. Unlike many other families, one of the greatest blessing of parents as well as Gurudev is Pratap Bhai's family have almost 100 members between Harsha and Pratap Bhai's family who have joined Samarpan meditation. And this is a remarkable success for a family to be mentioned in this Samarpan program. Thank you very much. अब हम आगे बढ़ते हैं. So, आपके जीवन में स्वामी जी के आने से पहले और कोई गुरु थे? हाँ, हम लोग जनरली जैन है, तो जैन होते ही हैं. तो जैसे आपने कहा, मैं उनको बहुत मानता था और मैंने काफी समय जो जैनों में होता है 8 उपवास करना, 9 उपवास करना, ऐसे 3 दफे मैंने ऐसे किया हुआ है. और उस लास्ट में मैं साईं बाबा को भी दर्शन करने गया था. मतलब मैं ऐसा, मतलब दूसरे गुरु को मानना जैनों में ऐसा होता नहीं है कि दूसरी गुरु को समर्पित. हमारे जैन में इतना कट्टर होते हैं कि हम दूसरा कुछ देख ही नहीं सकते. मगर पता नहीं मेरा कोई जन्म का कुछ होगा, अगले जन्मों का. मतलब मुझे स्वामी जी को भी एक्सेप्ट करने को समय लगा, मगर जो आत्मा थी वो जानती थी मेरा कि मुझे स्वामी जी के पास जा रहा है. वो मुझे खींचे जा रही थी, मेरा शरीर नहीं जा रहा था, मगर आत्मा मुझे खींचे जा रही थी. जितना मतलब मैं ज्वाइंट हुआ, मुझे समझाने के लिए कम से कम जो मुझे समझा था उसको 1 साल लगा. तो मैं उसको मना कर, गलत कर रहा है, तू कहाँ अलग जोड़ रहा है, अपना जैन धर्म इतना अच्छा है, तू कहाँ जा रहा है. मतलब मेरा उस दूसरे जगह पे जाना ही एक अलग मेरे लिए हो गया. और जब गया तो पीछे मुड़ के नहीं देखा. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. This is very honest response. In fact, that Pratap Bhai said that coming from a Jain family, he has practiced this religious fasting, what we call atthai. It is like for 8 days
they fast, and very dedicated in the service of Jain Munis and Jain Gurus. This came mainly from his grandmother. So he continued the tradition, and he is honest enough to tell us that because of their religious belief, they are very rigid in the sense that they don't accept any guru or other religious beliefs so easily. And the sadhak who was trying to introduce Samarpan meditation to him persistently kept trying for almost a year. And after one day, he decided to join Samarpan meditation just to do the favor. In fact, that, okay, I will come and attend this program. And that is how he joined Samarpan after. But आपने प्रताप भाई श्री कच्छी दशा ओसवाल नानीनाथ महाजन जैन कम्युनिटी में भी काफी सेवा दी है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं अभी जब नया जाया बॉम्बे आया था और बॉम्बे के अंदर महाजन था और वहाँ मैं ज्वाइंट हो गया, तो मैं सेक्रेटरी करके मेरे को वहाँ रखा गया। तो मैं हो गया, इतना अच्छे से काम कर रहा था ताकि मेरे यहाँ प्रमुख बदलते गए, ट्रस्टी बदलते गए, मैं कभी नहीं बदला। मैं लास्ट तक, मैं समर्पण में आने के बाद में भी 2 साल तक मैं रहा, करीबन 25 से ज्यादा साल मैं उनके साथ कार्य किया। तो मेरा कार्य के लोग ने कभी मेरे से, मतलब इलेक्शन हुआ तो भी मेरा ही नाम सेक्रेटरी करके रहा हो। तो ये तो बहुत ही सुंदर समाज का, गांव का सारे कार्य में मैं हमेशा सोशल वर्क करता रहा। ये आपका देने का जो भाव है, यानी कि ये आज अचानक नहीं आया है। आपने 25 साल सेवा दी अपने समाज में, उसके बाद आप यहाँ पे जुड़े, और जैसे बहुत ही सुंदर बात कही कि जब किसी का देने का भाव होता है ना, तो लोगों को उनके ऊपर विश्वास रहता है। जैसे आपके समाज के लोग आपको छोड़ना नहीं चाहते होंगे, और यही सबसे बड़ी हमारा, जो स्वामी जी कहते हैं ना, आपको कितने लोग पसंद करते हैं, यही आपका सर्टिफिकेट है कि आपकी आध्यात्मिक स्थिति क्या है। ये मत बोलो कि मुझे ये अनुभव हो गया, वो अनुभव हो गया। कितने लोग आपके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, वो आपका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है आध्यात्मिक स्थिति का। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं आगे आप कुछ कहना चाहते हैं, कह दीजिए। हाँ, मैं मतलब मेरा एक दफे मेरा ट्रायल भी लिया गया कि रिजाइन दे सकते हैं कि मुझे किसने बोला आप रिजाइन दे दो, मैं रिजाइन उनको तुरंत 2 मिनट में लिख के दे दिया। मतलब मुझे पद का मोह नहीं था, उनको मालूम पड़ गया, इसलिए फिर आगे बढ़ता गया। हाँ, तो ये समाज में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, उनको मालूम है कैसे किसी की परीक्षा करना तो वो लोग कर लेते हैं। और वो समझ गए कि नहीं, इनको रिजाइन के लिए, पद के लिए नहीं कर रहा है, मगर इसलिए लास्ट तक मुझे टिका के रखा। नहीं, आपकी आत्मा और आपका दिल, तो हमने ये पिछले 1 महीने में आपके साथ काम करके देख लिया, जो वाइब्रेशंस हमें महसूस हुए, जो भाव आपका है देने का, बांटने का, उसकी वजह से ही हमें आपके साथ काम करना और बात करना बहुत अच्छा लगा। मैं तो आपको जानता ही हूँ, 2003 में आपसे मिला था पहली बार, लेकिन तब से आज तक हमारे रिश्ते बहुत प्यार और इज्जत भरे रहे हैं। तो ये भी एक बात है कि स्वामी जी हमेशा बार बार कहते थे, साधक साधकों के बीच में जब बड़े फंक्शन में आप मिलो, गुरु पूर्णिमा, चैतन्य महोत्सव, महाशिवरात्रि, इतनी आत्मीयता बढ़ाओ, इतनी पहचान बढ़ाओ कि आप एक परिवार की तरह बन जाओ। तो आज दिस समर्पण इज सच ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम सारी दुनिया के समर्पण साधकों को बुलाते हैं, उनके जीवन की कथा को सुनते हैं, और ये आत्मीयता का भाव गुरुदेव की कृपा से जो बन रहा है, हमारा परिवार एक वसुधैव कुटुंबकम के स्तर पर पहुंच रहा है, इसमें गुरु कृपा और हिमालयन गुरुओं की बहुत बहुत कृपा है। तो आई विल ट्राई टू समराइज लिटिल बिट दैट Pratap Bhai used to serve in his community, and some of the elders or seniors tried to test him by asking for the resignation, and he gave it in less than 2 minutes. Yes, I am ready to resign, no problem. This was just a test, but his dedication was so powerful. The elderly members of this Samaj or the Jain society, community, they appreciated, and they passed him in that test, that this person is really dedicated to serve the community, and he is not doing this just for the name, fame, or position. And this is the kind of people we need, as I was trying to explain.
Swamiji always say that many times sadhak want to know what is my spiritual status, and Swamiji says that how many people around you want to associate with you, want to be friend with you. That is the signature, that is the certificate of your spiritual status. Because when you are being liked by others, when you are approachable by others, that is the sign that your aura is so powerful and pure that it is attracting the other people. And this happens when there is integrity between your heart, your mind, and your behavior. Okay, so I really like what Pratap said, and he continued this in his community for 25 years. In fact, even after joining Samarpan meditation, for 2 years they were not letting him go, leaving this position in the community organization. So that was very powerful. आइए अब हम हर्षा जी से सुनते हैं समर्पण ध्यान में आने से पहले, स्वामी जी से मिलने से पहले आपकी किसी गुरु के साथ आप जुड़े थे, आपका क्या था बचपन, आप हमें बताइए। जैसे हम लोग जैन हैं तो हमारे जीवन में महावीर स्वामी तो रहते ही है ऐसे गुरु या तो ऐसे भगवान मानो। तो मैं ऐसे उनके जैन के हिसाब से मैं जैन पाठशाला में भी जाती थी, उसमें भी मेरी ज्यादा रुचि थी। और दूसरे में गुरु के रूप में मैं जलाराम बापा को बहुत मानती थी। पता नहीं मुझे उनके प्रति इतनी श्रद्धा थी कि मैं उनके गुरुवार भी करती थी, और वो तभी गुरुवार तो इसके लिए करती थी कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, उसके लिए दूसरा कुछ ज्यादा अपेक्षा नहीं थी। लेकिन बहुत ही मेरे को श्रद्धा थी जलाराम बापा के ऊपर, और मैं शादी के बाद भी वो गुरुवार कंटिन्यू रखा था। और मैं वीरपुर भी जाके आई थी, और मैं शादी के बाद भी जब खाना बनाने को बैठती थी तो भी छोटी फैमिली में से बड़ी फैमिली में आई थी, तो खाना बनाने में भी अगर मेरे को कुछ डर लगा कि इतना सबका खाना कैसा बनेगा, तो मेरे मन में चैंटिंग रहता था, जय जलाराम जय जलाराम, वही मेरे मन में चैंटिंग चलता था। तो मेरे पहले गुरु थे, और जब मुझे स्वामी जी मिले तो मुझे ऐसे ही लगा कि मुझे जलाराम बापा जो समाधिस्थ गुरु है वो ही मुझे जीवंत गुरु के पास ले आए हैं। और मुझे जैन धर्म में इंटरेस्ट था, मैं उसमें भी पढ़ती सीखती थी। तो शायद मेरा चुनाव इसीलिए हुआ था कि मैं पूरे जैन धर्म में इसके लिए आई क्योंकि मुझे जैन धर्म से लगाव था। बहुत अच्छी बात है। तो कहते हैं ना, हमारा जो बचपन है या पूर्व जन्म है वो कभी खाली नहीं जाता। सब अच्छे कर्म, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति कोई ना कोई रंग लाता ही है। मैं तो कहता हूँ जलाराम बापा ने आपके जीवन में एक समाधिस्थ गुरु के रूप में आकर आपको सही पंथ पे रखा। महावीर स्वामी जी भी एक महान योगी, एक तपस्वी थे, ध्यानी थे, तो उनका भी पूरा जीवन ध्यान के ऊपर ही आधारित है, ऐसा हमने जो जाना सीखा उस। तो मेरे भी कई दोस्त हैं जो महावीर स्वामी की बहुत आराधना पूजा करते हैं क्योंकि जैन है, शाह है। और जलाराम बापा का तो मैं खुद भी बहुत भक्त था। गुजरात में तो एक ऐसे संत जलाराम बापा ही हो गए जो हम कहते हैं कि उन्होंने साक्षात राम को पा लिया, तभी वो एक छोटा सा गांव का जलाराम बन गया। तो उनके तो कई क्या बोले चमत्कार भी हुए हैं, कई अच्छी अनुभूतियां भी लोगों को हुई हैं। और इफ अगर कोई जानना चाहता है तो राजकोट के बहुत करीब है वीरपुर, उनका गांव, वहां से हम यात्रा के लिए जा सकते हैं। तो जलाराम बापा की कृपा से आपकी पढ़ाई भी अच्छी हुई, आपके जीवन में सब तरह से प्रगति भी हुई, और गुरु की कृपा से ही मैं ये कह सकता हूँ कि आपको प्रताप भाई जैसे पति भी एजुकेशन के बाद तुरंत, पढ़ाई खत्म करने के बाद तुरंत ही मिल गए। और सदगुरु भी मिले। हाँ, तो जीवंत गुरु भी समाधिस्थ गुरु की कृपा से ही मिलते हैं। So this is very beautiful experience of Harsha ji. As a young girl, she used to love being in solitude, being lonely, as she mentioned earlier. And coming from a Jain family, of course, she had very strong faith in Mahavir Swami, who is one of the monk in the Mahavir in the Jainism. And
as a Gujarati person, one of the enshrined guru is Jalaram Baba, who comes from a small village of Virpur near Rajkot in Gujarat. So she used to have very strong faith, and as a student, anything that used to happen in her life, the first name that she used to worship or pray was Jalaram Baba. Even after marriage, when she came back to her sasural, her in-laws' place, when she had to cook for so many people, and she had any doubt that I hope my food really came out good and tasty and nobody complained, everybody likes it, she used to pray to Jalaram Baba that Baba, take care of it, and it used to happen. In fact, Jalaram Baba is known for his catering of the food. Jalaram Baba ni roti is very popular. Anybody who goes to this small village of Virpur, whether an ordinary person or a saintly person, used to be fed by Jalaram Baba, and he was very poor man, like very simple man, I would say. But because of that, he was known as the bhakta or devotee from whose house nobody will go hungry. Today, it is a how you say, a great achievement that anybody who goes to the Jalaram temple, they don't accept any donation, and everybody is allowed to take the lunch or dinner before they leave the temple. This is the kind of tradition Jalaram Baba has created. So this, being the Samadhist or enshrined guru, he guided or blessed Harshaji to the path of a living guru. And because of Jalaram Baba, she feels that she got the living guru like Shiv Krupanand Swamiji in her life, and she got the blessing. She considers that Pratap Bhai is also a blessing from Jalaram Baba. And this faith moves the mountain. This faith brings the miracle in our life. And I encourage everybody, no matter what religion you have, keep your faith stronger, because that is what is going to make a confident person, a person who will move with more confidence in every step of their life with high self-esteem. Very, very powerful testimony, Harshaji. आइए हम आगे बढ़ते हैं. So आगे का प्रश्न मैं प्रताप भाई से पहले पूछना चाहूंगा. प्रताप भाई, आप समर्पण ध्यान में कैसे आए और कब आए? मैं 2002 में आया समर्पण में, और वो भी फ्लॉप में आ गया. मतलब मेरे को ऐसा समर्पण में ज्वाइन तो मैं होना नहीं चाहता था, मगर जैसे इसको इनवाइट किया गया था किसी ने कि भाई आप, हमारा ये प्रोग्राम है तो आप आ जाइए इसमें. इसने पूछा था कि मेरे को समर्पण ज्वाइन करना है, तो उसने बताया था कि आप ज्वाइन करना. अब उस टाइम पे ये थी नहीं, ये बाहर गई थी. तो मुझे बोला एक काम, अपने को इन्विटेशन आया है तो मेरे बदले में तुम चले जाओ. तो मैं ऐसे करके वहाँ शिविर अटेंड करने के लिए गया था. जैसे व्यवहारिक दृष्टि से जाना चाहिए उस तरह से मैं गया था. कोई मतलब शिविर अटेंड करने का नहीं, एक व्यवहारिक काम करना है उसके हिसाब से मैं गया था. तो मैं मुलुंड आया था, मैं मलार से मुलुंड आया था, और मुलुंड के अंदर मैंने शिविर किया वन डे का. और वन डे का शिविर के अंदर जो रिकॉर्डिंग उनका एक दिन का था शिविर, उसमें शायद मैं कुछ वर्डिंग तो समझ नहीं पाया, मगर मेरी आत्मा पहले से जानती थी. तो उसने बोला तेरे को ध्यान करना चाहिए. तो मैंने बोला मलार में कहाँ ध्यान हो सकता है. तो हमने मलार का एड्रेस, वहाँ के जो भी ट्रस्टी थे पाटिल जी, वहाँ से उनके पास से हमने वो लिया, एड्रेस लिया, और मैं मलार गया. संडे के दिन था, बोले चलो संडे है तब जाके आते हैं सेंटर पे, क्या है क्या नहीं देखते हैं, ध्यान करेंगे. ऐसा करके मैं सेंटर पे गया. तो उस टाइम पे ऐसा था कि शिविर आपने किया हो तो ही सेंटर में एंट्री मिलेगी. तो मैं गया तो मुझे पूछा गया कि आपने शिविर किया है. मैंने हाँ वन डे का शिविर किया है. तो उसको मुझे एंट्री दिया. वाइफ को लेके गया था तो वाइफ को एंट्री नहीं मिली क्योंकि उसने शिविर नहीं किया था. तो इस तरह से हमारा स्टार्ट हुआ ज्वाइन करने का. उसके बाद में मतलब 45 दिन तो मैंने किया नहीं, मैं सिर्फ संडे जाता था क्योंकि अभी इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ था. संडे आएगा तो जरूर मैं जाता था. और संडे ऐसे करते करते हमारा 45 डेज कम्प्लीट हो गया. तो मेरा तो 5-6 दिन हुआ होगा. फिर उसके बाद में चैतन्य महोत्सव था नवसारी में. तो मुझे बोला कि आप चैतन्य महोत्सव में आएंगे. तो मैं जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा. फिर हमारे जो वहाँ के आचार्य थे उन्होंने बताया नहीं इनको नहीं ले जा सकते क्योंकि इन्होंने शिविर तो किया नहीं है, 45 डेज कम्प्लीट नहीं किया है, तो आपको नहीं लिया जाएगा.
तो मैं खड़ा रहा, मैं बोला ठीक है। तब तक वहाँ के जो उस टाइम पे प्रमुख आचार्य थे वो हमारे सेंटर पे आए थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं इनको ले लो। तो फिर मैं स्वामी जी को फर्स्ट टाइम नवसारी गया और उनका दर्शन किया, मगर अभी तक आत्मा खींची जा रही थी, मगर मुझे स्वामी जी के ऊपर कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं स्वामी जी के पास जाऊं, उनसे कुछ मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा था। मैं जाके आया, दर्शन किया, बस मन में ऐसा संतुष्ट हो गया। आत्मा बार बार, फिर उसके बाद में नासिक में कुछ प्रोग्राम था स्वामी जी का, सब लोग बोले चलते हैं, हाँ ठीक है चलते हो, मतलब जाता रहा, मगर जिसको बोलते हैं ना अभी गुरु के क्लिक नहीं हुआ, वो अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि वो मुझे पता नहीं था कि वो गुरु को मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, मगर आत्मा खींचे लेके जा रही थी पहले से ही। मैं एक दो दफे मैं साईं बाबा के दर्शन करने भी गया था, वहां भी क्योंकि जैन होने के नाते उधर ऐसा नहीं था, मगर सब फैमिली लेके जा रही है, चलो जाते हैं। तो इस तरह से मुझे साईं बाबा से भी कुछ मतलब बहुत सारे अनुभव हुए लास्ट में, मतलब जब स्वामी से जुड़ने से पहले तो साईं बाबा ही ने कुछ ऐसा कनेक्शन करके दिया कि मैं स्वामी जी के पास आ गया। तो सही मेरा ज्वाइनिंग हुआ शुरू में, और मेरा सही में ज्वाइनिंग तो तब हुआ जब 2003 की जो महाशिविर थी। हाँ जी, हाँ 2003 की महाशिविर थी, उसमें हमको वॉलंटरी का 2003 का चैतन्य महोत्सव था, बाबा धाम का उद्घाटन था। हाँ जी हाँ, तो उस टाइम पे मुझे गुरु कार्य करने का मौका मिला, तो मैं नवसारी गया था वहाँ, और मैं नवसारी गुरु कार्य कर फर्स्ट मतलब मेरे लिए वो गुरु कार्य था। तो मैं 4 दिन नवसारी में रुका था, बाबा धाम के अंदर रुका था। उस टाइम पे रुकने का और कहीं था नहीं, मोगार में था रुकने का। तो मोगार अभी जो ध्यान करते हैं मोगार के अंदर, जो अभी बाबा धाम के अंदर बाहर है, वहाँ ओटले पे सोने को मिला था। और जो मोगार छोटा सा गांव है, तो गांव में जैसे खुले बाथरूम थे, उसमें मुझे नहाने को मिलता था, मगर फिर मैं कोई अच्छी जगह पे आया हूँ। तो इस तरह से मैं स्वामी जी से स्टार्टिंग में मतलब इस तरह से जुड़ा हुआ। बहुत सुंदर, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। और फिर बाद में 2004 की जनवरी की वो संस्कार भारती वाली पहली शिविर हुई, वो आपने पूरी अटेंड की क्या? नहीं, हाँ उसके बाद मैं 2003 में हमारा उसके साथ में ये चालू हो गया था हमारा एग्जीबिशन का कार्य। हमको किशोर कावड़िया जी जो थे, उन्होंने बताया था कि आपको एग्जीबिशन का कार्य करना है, बच्चे लोग उनको हेल्प करो। तो मैंने जरूर हम हेल्प करेंगे। तो जितने हमारे मुलुंड सेंटर के बच्चे थे उन सबको बुलाया, और हमारे घर पे ही एग्जीबिशन का पूरा कार्य चालू हुआ, क्योंकि मेरे घर का हॉल बड़ा था, तो यहाँ सबको करने को आसान पड़ा। हम रात भर सैटरडे की रात खास करके अब पूरा रात सारे बच्चे कम से कम 10 से 20 से 30 बच्चे आते थे, 20 लोग आते थे, और हम पूरा ये स्वामी जी का फोटो उसको फ्रेमिंग करना और उसको लेमिनेशन करवाना, उसको गमिंग, उसका नाम लिखना, क्या प्रोग्राम था, ये सारा एग्जीबिशन की पूरी तैयारी चलती रही। और सबसे पहला एग्जीबिशन जो लगा 2003 के, उसमें भी लगा था चैतन्य महोत्सव में, और उसके बाद में 2004 में जो महाशिविर हुई नवसारी में, वाह। तो इस तरह मैं मेरा पहला कार्य गुरु कार्य बोलेंगे तो ये 2003 का चैतन्य महोत्सव, और उसके बाद में एग्जीबिशन। हाँ 2003 के महोत्सव हुआ, उसमें जो स्वामी जी के ऊपर अमी वर्षा हुई थी चैतन्य महोत्सव के अंदर ही, स्वामी जी के स्टेज के ऊपर ही हुआ था। तो मगर उस टाइम पे मेरे को भी उसके अगले दिन मैं और हम कुछ साधक वहाँ खड़े थे स्टेज के पास, तो हमारे ऊपर भी बारिश हुई थी। तो हमने सोचा पता नहीं कैसे कुछ कहाँ से किसने पानी डाला होगा, मगर दूसरे दिन जब स्वामी जी के ऊपर भी हुआ तो हमने सोचा देखो कैसी हमारे भी कृपा हुई, और स्वामी जी का हमको जानने को मिला। तो स्वामी वो कहते हैं ना कि माँ तो बाद में खाती है, पहले बच्चों को चखा देती है कि बेटा तो खा, कैसा है वैसा है। गुरु का तो इतना प्यार है अपने बच्चों के ऊपर, अपने साधकों के ऊपर, कि पहले चैतन्य की बारिश का अनुभव आपको अपने गुजराती में के लावो मळ्यो। इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। तो बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। और ये 2004 में स्वामी जी की जब पहली बर्थडे 50th बर्थडे इंडिया के बाहर मनाई गई, उस वक्त पे मैं था वहां पे। आई थिंक कि हम लोग उस वक्त पे भी मिले थे, तो वो भी आपने अटेंड किया था, राइट? हाँ। उससे पहले मैं बता दूं कि 2004 में जो पहली शिविर हुई जो नवसारी में, उस दिन जो नाभि चक्र का दिन से मेरी शायद स्वामी जी से मतलब हार्ट टू हार्ट फीलिंग जो हुई ना, 2004 के स्वामी जी के नाभि चक्र के दिन हुई। उन्होंने जो प्रवचन में मुझे बताया, और उस दिन से मतलब पैसे के ऊपर मोह नहीं होना चाहिए, आपकी जिंदगी में जो भी है जो है वो मिलना ही है। बस उस टाइम से मैंने सोच लिया कि मेरे ऊपर जनरली बिजनेस में कोई पैसा नहीं देता है तो उसके ऊपर चेक होता है, चेक बाउंस होता है, तो उसके ऊपर हम कोर्ट में लेके जाते हैं, केस करते हैं। तो ऐसे कुछ 8-10 लाख के हमारे चेक थे, तो
तो मैंने वो सारा वो शिविर से आने के बाद में जैसे आया सारे चेक फाड़ के फेंक दिए। मतलब नहीं, अपने को कोर्ट में जो केस किया थे, मैंने वो एडवोकेट को बोला कि नहीं, हमको ये कुछ नहीं करना है, हमको जो भी हमारे नसीब में होगा, जिसको देना होगा देगा, ये तो मुझे भले ये आपसे जाने दो, दूसरे हाथ से आ जाएगा। स्वामी जी ने जो प्रवचन में बताया था, आपका नसीब का कोई नहीं लेके जा सकता है, ये सोच के मैंने सारे चेक फाड़ दिए और भूल गया उस पैसे को। मगर वो स्वामी जी की कृपा से, जिसके जो लोग अच्छे लोग थे, जो दे सकते थे वो दिया, जो बेचारे गरीब थे, शायद उनकी परिस्थिति नहीं होगी तो मुझे शायद उसका छोड़ना पड़ा। मगर मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि ये मतलब मेरा नाभि चक्र उस दिन स्वामी जी ने सही मानों में बोला था, तो उसका मुझे बहुत एकदम जबरदस्त अनुभूति हुई। मैं वो शब्दों में बोल नहीं पा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, एक बात है कि हजारों लोग ये स्वामी जी के प्रवचन सुनते हैं। जीवन शिविर में हजारों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं अगर एक के जीवन में भी परिवर्तन आया ना, तो स्वामी जी कहते हैं कि मेरी यह शिविर सफल हो गई, क्योंकि मेरे गुरु का चैतन्य किसी ने पा लिया, किसी का जीवन परिवर्तन हो चुका। तो आपका ये अनुभव हमें यह दर्शा रहा है, हमें यह बता रहा है कि मनुष्य के जीवन में एक जीवंत गुरु आता है तो उससे कैसे जीवन में राह मिल जाती है। ऐसे एक शब्द से मार्गदर्शन मिल जाता है कि हम सारी जिंदगी पीछे पड़े रहते हैं पैसों के पीछे, या हमारी मान्यता, जैसे आपने धर्म के बारे में बताया कि हम जैन परिवार से थे तो काफी चुस्तता थी विचारों में और मान्यता में, तो उसकी वजह से किसी जीवंत गुरु को अपनाना आसान नहीं था। और जैसे आपने शिविर की किसी दोस्त को सोशल लेवल पे खुश रखने के लिए कि भाई आपने बुलाया तो मैं आ जाता हूँ, आपने बुलाने गुरु का सम्मान हमने किया, ये दिखाने के लिए, मीनिंग कि कोई दिल से लगाव नहीं था। लेकिन यही बात मैं सभी दर्शकों को समझाना चाहता हूँ, जो हमारी आत्मा है वह बौद्धिक स्तर पे हमारे मन से भी दूर है और हृदय के स्तर पे हमारे भाव से भी दूर है। आत्मा जो है वो बहुत पवित्र और चैतन्य से ही जुड़ी है। चैतन्य, चेतना, वाइब्रेशंस जो होते हैं उससे ही जुड़ी है, स्पंदन से ही जुड़ी है। तो आत्मा की एक ही भाषा है, स्पंदन। तो प्रताप भाई बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है, मैं कोई इतना लगाव नहीं महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ अंदर से ऐसे लग रहा था कि कुछ तो है, मुझे और जानना है। तो वो हर रविवार को जाते थे। इनकी बातों से ये लगा कि शिविर के बाद हर रविवार को जाते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन है, हर रोज तो नहीं जा सकते सेंटर पे, रविवार को जाते रहे। फिर उनको मौका मिला चैतन्य महोत्सव अटेंड करने का, तो 2002 में चैतन्य महोत्सव भी अटेंड किया और विद इन ईयर उनको गुरु कार्य के लिए भी मौका मिल गया। देखो, जब बाबा स्वामी धाम बन रहा था, जहाँ पे स्वामी जी का पहला स्थायी घर बना उनके गुरु परिवार के लिए, उनमें सेवा के लिए वो गए। और नम्रता देखो कि चाहे अच्छे से परिवार से हो, चाहे अच्छे सुख समृद्धि में वो बंबई में रहते हो, वह छोटे से गांव में गए, उस घर को बनाने में, बाबा स्वामी धाम को बनाने में सेवा दी। और ओटले पे, यानी कि ऑन द आउटसाइड of the house there is an elevated platform. He used to sleep over there and used to go in the neighborhood, somebody's house with the open bathroom, and there, it cannot be called bathroom because there's no room there but yeah, but it is a place in the village side, in countryside in India, that is the tradition, that used to be the tradition. And he humbly accepted whatever was given to him, and he continued serving with full heart, and that is what made him more and more connected. And this is the pull of soul. जो आत्मा का जो खिंचाव होता है ना, वह हमें गुरु के साथ जोड़ देता है. So sometimes we get distracted by our mental and our इंटेलेक्चुअल, बुद्धि के स्तर पे हम सोचते हैं. Sometimes we get distracted by the intellectual and mental thoughts, but when the soul gets awakened, automatically you get carried away and you start working in that direction. So that is very beautiful anubhuti. He was trying to say that in the beginning he just did the favor to a friend by attending the Samarpan workshop. It was one day workshop, and he did not understand much out of it, but he felt that there is something into it.
and he continued doing the group meditation by going to the center every Sunday. And after that, he got the opportunity to attend the Chaitanya Mahotsav in Navsari. And within a year, he also got opportunity to do Gurukarya for the Baba Swami Dham, which is the permanent resident of Swamiji, first place where Swamiji lived with his family in a proper house. Until then, Swamiji and Guruma were living from one place to another, depending on Guruma's job. And this was something unique that happened, because coming from Mumbai and well-established family, Pratap Bhai is used to with all the amenities and luxuries in Mumbai. But when he went to offer the service, seva, what we call, he had to live and sleep in the outside, and he used to take shower at the neighborhood anybody's house, or eat food even in the neighborhood anybody's house. So that is the humility, that is the heart of a person who wants to give and who wants to serve. But in all this, what I wanted to say is, our mind or our intellect may distract us, our ego may try to keep us away from other people, but our soul will always pull us in the right place, where our spiritual progress is going to happen during this life. That will leave our soul to rise above the normal, to grow to the crown, to grow at least up to the Agya Chakra during this lifetime. That is the ultimate goal or purpose of a soul. And when such guru or when such energy comes in our life, regardless of whether you see that guru personally or not, your soul will be automatically, magnetically pulled towards that guru and his energy. That is what happened in Pratap Bhai's life. Very beautiful story, Pratap Bhai. बीजू कहीं तुम्हारे connect करूँ है तो क्या जो? हाँ, 2003 के अंदर मैंने जैसे जुड़ा ना, तो एक तो पहले बात तो मैं रेगुलर हो गया, और दूसरा ऐसे जनरली ऐसा होता है कि हम सुबह घर से 7 बजे निकलते हैं और घर पे रात को 10 बजे पहुंचते हैं। ये हमारा रूटीन था बिजनेस के हिसाब से। पर जैसे स्वामी जी से ध्यान करने का है, जैसे मैं मुलुन आ गया, मुलुन रहने के लिए आया, तो मुलुन रहने आया तो मैंने मुलुन के अंदर सेंटर 6 बजे का था, तो मैं वहां से ऑफिस से 5 बजे निकल जाता था। क्या मतलब पक्का 6 बजे, 5 बजे से पहले ही निकलता था, ताकि 6 बजे का सेंटर में अटेंड कर सकूं। मैं 6 बजे का सेंटर अटेंड करता था, 7 बजे का भी सेंटर, मतलब 2 ध्यान मेरे लिए कंपलसरी था दिल्ली। और उसके बाद में भी हम काफी समय तक वहाँ सेंटर पे बैठे रहते थे, कुछ मतलब अनुभूति, कुछ स्वामी जी के बारे में चर्चा, ये रेगुलर चलता था। और 2003 में मतलब मैं मुलुन आ गया, वो भी बहुत बड़ी एक अनुभूति है कि मैं मलाड रहता था, मुलुन मुझे आया इसलिए, मतलब मैं ऐसा, फैक्ट्री मेरी नजीक थी, हमारे रिलेटिव सब नजीक थे, तो मैं चलो ऐसा रहते। मगर स्वामी जी की कृपा में हमने जो घर, बहुत सारे घर देखे थे, मगर स्वामी जी ने घर मेरे लिए जो ढूंढ के रखा था वो लास्ट में ही मिला। और हमने देखा था कि ये तो घर बहुत महंगा है, कि हमको मिल ही नहीं सकता है, तो हमने उसको देखने का ही छोड़ दिया था। तो हमारे पास एक ब्रोकर आया, बोलता है आपको एक घर चाहिए? मैं बोला बहुत महंगा है। बोला नहीं तुम्हारी क्या बजट है? बोला हमारा ये तो ये बजट है। बोलो उसी बजट में तुमको एक घर मिल जाएगा। तो गया उस ब्रोकर के साथ में और बिल्डर से बात की। बिल्डर बोलता है, मैं बोला देखो कोई भी फ्लोर होगा चलेगा, मगर मुझे ये घर में है, मेरा ये बजट है, इससे ज्यादा मैं बजट नहीं रखता। उसने तुरंत एग्री कर दिया और इतना बड़ा घर मुझे मिला। तो स्वामी जी की मिला, मतलब भौतिक की पहली अनुभूति है, भौतिक के गिनू के स्वामी जी का ही घर है। और स्वामी जी जब घर पे आए थे तो मुझे घर देख के बोला बहुत अच्छा घर है तुम्हारा। बोला स्वामी जी आपकी कृपा में 2002 में ज्वाइन किया और 2003 में आप इतना बड़ा घर मुझे आपने दिलवा दिया। कौन से महीने में आप मूव हुए? वो बहुत बड़ी चीज है। नए घर में कब मूव हुए आप? 2003 में चैतन्य महोत्सव में स्वामी जी बाबा धाम में आए और मैं ये घर में आया। अरे वाह ये तो दोनों साथ में एकदम, वो कहते हैं ना पिता पुत्र दोनों का साथ में ही घर बन गया। बहुत ही सुंदर चीज है, बहुत ही अच्छी बात है। ये जो आप बता रहे हो ना, इससे मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए गुरु की कृपा जब होती है ना, तो हमें यह सोचना नहीं होता है कि मेरे पास क्या है और मैं कितना कर सकता हूँ। आप जैसे जैसे जुड़ते जाते हो, जैसे उनका नाभि चक्र खुला, जो आगे हो रहा था उनके जीवन में जिस तरह से,
तो 2004 में बाद में उनका नाभि चक्र खुला, लेकिन उससे पहले उनके ऊपर गुरु ने कृपा दर्शाई। देखो, कभी कभी हम कहते हैं ना कि जेब में 5 फुटी कौड़ी नहीं होती है, लेकिन 5 लाख का सौदा हो जाता है। वैसे उनके जीवन में गुरु की कृपा हुई। वो छोटे बजट में अपने घर को ढूंढ रहे थे, लेकिन जिस एरिया में ढूंढ रहे थे मुलुंड में, बहुत महंगे महंगे घर थे, लेकिन फिर भी उनको मिल गया। यह गुरु कृपा नहीं तो और क्या है। जब ऐसा हो तब मान लो कि कोई ऊपर की शक्ति हमारे साथ कार्यरत है, कोई ऊपर की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसमें से मुझे भी दिखती है कि आपने जो समाज में सेवा की थी, वहां पर भी कोई आशीर्वाद, कोई वडील बुजुर्ग के आपके ऊपर कृपा हो रही होगी, तभी ये साथ में होता है, कभी एक अचानक नहीं होता। ये मेरा मानना है। और आपकी सही बात है। हाँ, तो वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ प्रताप भाई. First, as we were mentioning that during the construction of Baba Swami Dham, he went to volunteer and serve, and then because he had a desire that he want to attend the meditation and everything, but his schedule was always morning 7 to 10 in the business, and he would not leave easily the office because he's required for running the show. However, by the grace of Swamiji, from Malad, which is on the western side of Mumbai, he moved to the central side of the Mumbai, which is Mulund. And then this place was nearby many relatives of his, and also some of the centers that they have, meditation center that they had. So because of that, he got opportunity to attend the daily group meditation. Instead of leaving at 9 o'clock or 10 o'clock from the work, he used to leave 5 o'clock, and he used to attend 6 o'clock and 7 o'clock group meditation over there. The miraculous part that surprised him was all the houses were so expensive, he did not want to buy, and they stopped searching for the house. And one of the agent approached him that, are you interested in buying house in this new locality? And he says that, but this is too expensive. It is out of my budget. He said, what is your budget? Give us your offer. And surprisingly, they accepted the offer, and they gave such a beautiful house to them. When Swamiji moved into his Baba Swami Dham, his house, Pratap Bhai and Harshaji moved in their house, new house. And this is the blessing, this is the grace. Also, Pratap Bhai mentioned this happened in November 2003. And after, within 3 months, January 2004, when the Mahashibir in Navsari was taking place, on the Nabhi Chakra Day, he had amazing anubhuti. That Swamiji says that don't keep yourself too much attached to money or material thing. And at that time, something clicked in the Pratap Bhai's mind. He says that I am running behind money in the business, and there are so many bounce checks or bad debts, what we call in accounting terms. He gave away his attachment to that, and he says that I'm going to tear off all the checks that were bounced, or I'm not going to put any legal case against those who did not pay to me. Because of that action, he felt so relieved, and after he prospered in the business also. So this was something that brought a transforming, inner transformation in his life. That is such a beautiful thing. Thank you, Pratap Bhai. अब हम आगे बढ़े. So somebody's audio is going on. If और हर्षा जी, आपके बारे में प्रताप भाई आपका हो गया या कुछ और कहना है? नहीं, मैं एक थोड़ा सा बता, जब 2000 अब बता, चलो मैं बाद में बोलूंगा, बता। बिंदास, आपका ही टाइम है, आप आराम से अपना टाइम लीजिए। हाँ। Okay. Yes. So thank you, Swati, for supporting Pratap Bhai and Harsha ji. अवश्य।
अजय बोल तू बोल Hello. ओके बोले जय हाँ हाँ We हाँ। can hear you, Harsha Ben. मेरा समर्पण मेडिटेशन में इंट्रोड्यूस में एक्चुअली 2002 में कुछ फैमिली फंक्शन था। सुनने में आ रहा है मेरा आवाज? Yes, yes. आप देख भी रहे हो और सुनाई भी देता है। आवाज में की प्रॉब्लम थी सत्य यहाँ। No, we can hear you. Perfect. हेलो Yes, yes. हाँ हाँ यस हाँ Everything is fine. We can see you, we Yes, can sir. hear you. Don't worry. ओके हाँ 2001 या 2 होएगा तो मैं मीन्स हमारा कुछ फैमिली फंक्शन था उसमें हम सब मिले थे तो मेरी कजिन ननद थी वो नहीं थी तो मैंने पूछा था वो किधर गए हैं तो बोले वो कुछ ऐसा मेडिटेशन का प्रोग्राम है उसमें गए हैं तो देन आई आस्क्ड व्हाट इज दैट so they told that we get mental peace in joining this meditation so I was very much impressed of that word mental peace so I told that whenever the next program is of meditation is going on please invite me I will come and when generally that programs will be on Purnima only so when the next Purnima came they called me but I was not there so Pratapji went first to the Samarpan meditation and after he went he joined and he liked it and going to Malad center he take me also you also come with me for meditation but at that time there was the rule that only if you had done meditation if you had done shibir you are allowed to do meditation otherwise you have not allowed to do meditation so when we went in the Malad center for the first time they told you sit outside you can't do meditation because you have not done meditation shibir and Pratapji can do meditation so then after then there was a next month shibir in Malad I joined Samarpan meditation but it was a very big miracle for me to join because we lived in Malad that was also highway and the shibir was going in west so it was around 1 hour distance from our home to go Yes, yes. but I attend and that also when small kids were there in the home I had done shibir of 3 days I didn't understand anything not much in the shibir because then that time the CDs were also not good, so good but some attraction was in mental peace. हाँ जैसा मेंटल पीस और कुछ आत्मा ने जान लिया तो आत्मा को अच्छी अनुभूति हो गई तो मैंने 45 डेज तो किया उधर वो 45 डेज में मेरा ऐसा मिरेकल था कि मैं अभी भी सोचती है कि मैं रहती थी ईस्ट में और वेस्ट का एक कोना था उधर में और वो भी शाम का 7 या 8 का सेंटर का टाइम था जब भी लेडीज को खाना बनाना रहता है हस्बैंड घर में आते हैं बच्चे घर में रहते हैं सब छोड़ के मैं कैसा वो 45 डेज करने को गई थी वो कैसा उधर से मैं ध्यान तो आधा घंटे का रहता है लेकिन आने जाने में ही 1.5-2 घंटा चले जाता था तो वो कैसा हुआ था मुझे वही मिरेकल लगता है अभी Absolutely. तो उसमें मुझे पता चलता है कि जब भाव सही हो हमारा तो स्वामी जी हमारे लिए आसान करते हैं those who are not aware of Mumbai I lived 10 years in Mumbai and I can tell you to go from the east side of the city to the west side you are not just crossing the railway track but you are crossing such a heavy traffic and busy roadways that it is taking almost like more than 45 minutes to 1 hour just to go from one area to another and during this kind of difficulty when the center time for the meditation was in the evening she was able to do this is amazing और उसी टाइम पे my kid was in SSC my son was in SSC so I was just leaving him and going that he will do his studies I have to not worry about him now I had surrender him to Swamiji that because I was very much depressed of him because he was not studying but after joining meditation I surrender him to Swamiji Swamiji आप देख लो मैं तो जा रही है ध्यान करने और ऐसे में चले जाती थी ध्यान करने के लिए और हमारे नेबर सब पूछते थे कि इसके एग्जाम्स आ रहे हैं तू एसएससी में है वो लड़का और तू देखती नहीं है तू कहाँ जाती है वो क्यों मेडिटेशन करने को जाते वो भी बोलते नहीं थे बाजू में तभी ऐसा तो ऐसा बोलते थे लेकिन हमको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं सही है तो लोग तो कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का
है कहना। तो वैसी बात है, लोग तो हर तरह की बातें करते हैं, लेकिन आपका विश्वास आपका और प्रिंस का हृदय चक्र खोल गया। जैसे प्रताप भाई का नाभि चक्र खोला, आपका हृदय चक्र खोल गया, क्योंकि आपने अपने बच्चों को स्वामी जी के चरण में समर्पित किया और अपना ध्यान का जो नियम था वो नहीं तोड़ा। तो ये सब में हमारी कसौटी होती है, मुझे तो लगता है इस सब में हमारी कसौटी होती है कि कैसे धीरे 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 हम ये खिलौने संसार के जो है उसे छोड़ पाते हैं। और जितना हम छोड़ते हैं उतनी हमारी आध्यात्मिक स्थिति बनती है अगले चक्र, ऊपर के चक्र की ओर बढ़ने की। तो वो मुझे आप दोनों की बातों से लगा। और मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने मीन्स शायद हार्ट चक्र दोनों खुल गया, इसकी वजह से लड़के की भी प्रगति अच्छी हुई, लड़की की भी प्रगति अच्छी हुई। शायद मैं वो दोनों की प्रगति नहीं हो सकती थी। और स्वामी जी अपने हृदय चक्र के दिन बहुत प्यार से समझाते हैं कि माँ है तो क्या बच्चों का सत्यानाश करेगी, अपने लल्लू और ललवन बना के छोड़ेगी। तो ऐसी बात है कि गुरुदेव जो कहते हैं उसमें हमारी भलाई के लिए बहुत क्या बोले, विद गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक करते करते स्वामी जी हमें समझाते हैं। लेकिन इसमें आपका ये जीवंत उदाहरण हो गया कि एसएससी का वर्ष यानी कि कितना इम्पोर्टेंट ईयर होता है पढ़ाई के लिए, और वो भी अगर आपके बेटे के मार्क्स अच्छे नहीं आते हो तो आप चिंता में और स्ट्रेस में रहते हैं और ज्यादा उसका चक्र ब्लॉक कर देते हैं। इसकी जगह पे उसी वक्त पे आपने ध्यान किया, वो बहुत आशीर्वाद रूप बन गया आपके परिवार के लिए, बहुत अच्छी बात है। फिर 2004 में कुछ अनुभूति हुई मुंबई महाशिविर में, वो क्या हुआ था? 2003 में मैं सेंटर पे रेगुलर जाने लगी थी। हम वो भी शायद ऐसा ही होएगा कि स्वामी जी ने हमको मलाड से मुलुंड इसके लिए ले आए क्योंकि मुलुंड में गुरु कार्य ज्यादा होता था, तभी यंगस्टर्स की सामूहिकता बहुत अच्छी थी, तो शायद हमको गुरु कार्य करने का चांस इधर ज्यादा मिला हमको मुलुंड आने के बाद। और तो ये जो आपका हृदय चक्र खुलना और इतने सारे यंगस्टर्स के साथ काम करवाना, ये भी गुरु शक्तियों की ही कृपा से हुआ है ऐसा लगता है। जैसे पिछली बार हम जब जितेंद्र भाई से और प्रफुल्ला जी से बात कर रहे थे, तो ये भी एक ऐसा कपल था जो राजकोट में मूव हुए, पहले भावनगर में थे, और उनके द्वारा राजकोट एरिया में कितना बड़ा गुरु कार्य हुआ, स्पेशली यंग कपल्स, यंग बच्चों के साथ। तो वैसी ही बात है, आपको भी इस तरह से गुरुदेव ने तैयार किया और आप यहाँ पे पहुंचे। इवन हमको ऐसे लगता है, मुझे और कल्पना को कनाडा में तैयार किया और अमेरिका में सभी को तैयार करने के लिए, यंगस्टर्स को तैयार करने के लिए, यूथ फैमिली को तैयार करने के लिए यहाँ पे भेजा है। तो ये गुरु की रचना है, उनका प्लान है जिसमें हम जुड़ते जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि कैसे कैसे लोग आए, कैसे कैसे हम जुड़े, और कितनी आत्माओं के साथ कितना आत्मीय संबंध बन जाता है, परिवार जैसा लगता है, बहुत खुशी होती है। 2003 में जब एग्जीबिशन का काम चालू किया ना, तो इसको मैंने पूछा नहीं था कि हम इतने लोग आएंगे 20-30 लोग का, उनके लिए कुछ खाना बनाओगी, क्या करोगी। मैंने तो उनको लेके आया, मगर उसको सबको प्रेम से, भले कुछ ज्यादा नहीं, दाल चावल होगा, बेल होगी या होगा, मगर वो खिलाती थी प्रेम से। मतलब हम बिगड़ पूछे उसको, मैंने हम लोग ये तैयारी कर ली थी, तो इसने भी पूरा सहकार दिया था एग्जीबिशन टीम को। तो यही बात सब पूरा एकदम अच्छे से कर रही थी। समर्पण में एक हुआ है, हर नारी एक पवित्र माँ की तरह प्यार भी देती है और अन्नपूर्णा की तरह सभी बच्चों को, सभी गेस्ट को, सभी साधकों को खिलाती भी है, जैसे गुरु माँ और स्वामी जी ने भी किया और आप भी कर रहे हैं और हम भी सब कर रहे हैं। यही स्वामी जी की कृपा है, यही हमारे परिवार का एक सिग्नेचर ट्रेंड बन गया है। अभी हमारे यहाँ भी कैलिफोर्निया में कई साधक मिले, तो इतना प्यार भरा माहौल बन गया वहाँ पे। सब साधक टेक्सास से गए थे और साउथ कैलिफोर्निया से गए थे नॉर्थ में, और इतनी अच्छी सामूहिकता और यज्ञ का कार्यक्रम हुआ। तभी हमें यही दिखता है जो आपको उन दिनों में वहाँ पे मुंबई में और नवसारी में अनुभव होते थे। अभी वैसा ही ट्रेंड दुनिया में अलग अलग देशों में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के और बातें करके। स्वामी जी के दूर दूर रहने वाले बच्चों का तो पहले ही ध्यान रखते हैं ना। हाँ, हमको तो लगता है कि गुरुदेव की बहुत कृपा है अमेरिका के, पूरे अमेरिका के परिवार पे। अमेरिका, कनाडा, पेरू, ब्राजील, हम सब साथ में एक ही है और बहुत कृपा है गुरुदेव की। और आपको 2004 के नवंबर में ओरा का भी अनुभव हुआ था। एक पहले 2004 मुंबई महाशिविर की अनुभूति में बता देती हूँ।
हाँ जी, हाँ जी। पहली टाइम मीन्स ऐसा सेंटर पे तो गुरु कार्य करते ही थे, प्रचार प्रसार का, और जब शिविर होती थी तभी, और रजिस्ट्रेशन का कार्य, वो मेरा एक हॉबी थी लिखने की, इसलिए वो कार्य में लेती थी रजिस्ट्रेशन का और प्रचार प्रसार का करते थे। लेकिन 2004 की महाशिविर में जब 8 दिन ग्राउंड में महाशिविर था, तो शिविर तो रहता था 6 बजे, लेकिन हम लोग इधर से सब मुलुंड सेंटर वाले 3 साढ़े 3 बजे निकल जाते थे उधर गुरु कार्य करने के लिए ग्राउंड में। लेकिन वो 3 साढ़े 3 बजे भी इधर से मुंबई मुलुंड से निकलना, वो भी दोपहर का खाना होके शाम का भी डिनर तैयार करके बच्चों के साथ निकलना, वो एक अभी सोचते हैं कि कैसा कर सकते थे इतना सब, ऐसा सब शाम तक का भी पूरा पैकिंग करके, कभी कभी खाना लेके ही जाते थे उधर, साथ में बना के भी सब साथ में खाते थे ऐसा। और 3 बजे फिक्स हमारा बस रहता था मुलुंड सेंटर का, निकल जाते थे हम लोग सब गुरु कार्य करने। तो वो एक हो सकता था ऐसा सब। दिस इज अमेजिंग कि कहाँ परिवार भी संभल जाता है, काम धंधा भी संभल जाता है और गुरु कार्य के लिए भी वक्त निकल जाता है। कई बार मुझे और सोनल जी को बहुत क्वेश्चंस आते हैं साधकों की ओर से कि आप मैनेज कैसे कर लेते हो, नौकरी भी करते हो, परिवार को भी संभालते हो, और जैसे 24 घंटे का ये ड्यूटी हो गया है गुरु कार्य। कभी भी किसी का भी कोई भी प्रश्न हो, उसे सीनियर साधक होने की वजह से हमें आंसर करना पड़ता है, मार्गदर्शन देना पड़ता है। तो ये गुरुदेव करवा लेते हैं और आपकी बातों से ये कंफर्म होता है, आपकी बातों से हमें विश्वास आता है कि हम भी कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर अनुभूति है, बहुत सुंदर अनुभूति है। तो और 2004 नवंबर चैतन्य महोत्सव जो लंदन में हुआ था, उसकी एक अनुभूति। बहुत सेकेंड डे जैसा स्वामी जी ने बोला था, वो पंच तत्व ही था, पंच तत्व के कोई थीम रखा था उधर, क्योंकि स्वामी जी ने तो उनको बोला था कि आपको जो आपका रखना है, पीछे जीसस रखो, कुछ भी रखो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उन्होंने बैकड्रॉप में मीन्स बैकड्रॉप नहीं करके उन्होंने पंच तत्व ही रखे थे, पूरे पानी, अग्नि, ऐसा सब। तो सेकेंड डे जब पंच तत्व के ऊपर ही जब स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे, तो मैं और मेरी देवरानी भी साथ में गए थे, अनीता जी, हम बैठे थे और मुझे एकदम स्वामी जी के पीछे से ऐसा लाइट दिखी थी और मुझे ऐसा कुछ अलग ही फीलिंग हुई थी। और मुझे बाद में पता चला कि वो एक स्वामी जी का ऑरा ही था जो मुझे फर्स्ट टाइम दिखा था। अरे वाह, क्या खूबसूरत। कभी दिखा ही नहीं है वो। मैं कभी कई बार ऐसे स्वामी जी बोलते हैं ना अभी भी जब प्रोग्राम्स में कि मैं लाइट बंद करता हूँ, देखो ऑरा का दर्शन हो गया, लेकिन वो ऑरा का दर्शन मुझे खाली लंदन में ही हुआ था 2004 में, उसके बाद कभी भी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, वो एक जगह होती है, वक्त होता है, सामूहिकता होती है, तभी ऐसी अनोखी अनुभूतियां होती हैं। और ये हमारे लिए जीवन का यादगार प्रसंग बन जाता है, क्योंकि उससे जो जो टाका भीड़ जाना, जैसे कहते हैं ना कि घंटी बज गई, वैसी बात है कि सुई का धागा अगर सुई में परोना है तो वो बहुत बारीकाई से काम होना चाहिए, और वो एक हल्की सी मोमेंट होती है, एक क्षण होता है, तभी ऐसा होता है। तो वो जो दर्शन हो जाना और उस माहौल में उस वक्त पे हो जाना, वो बहुत अच्छी बात है। So those who are not aware, who did not attend this 2004 Chaitanya Mahotsav, at that time Swamiji inspired the sadhaks of UK that look, I have no objection if you want to use any symbol around on the stage or in the decoration. For example, because this is the place of England, UK is Christian nation. So Swamiji says that if you want to use cross or image of Jesus Christ around in the decoration, it is fine. But the volunteers did excellent job. They used the 5 elements of earth, water, fire, air, and space, and that is how they decorated the stage. And in that place, Swamiji was giving beautiful discourse on 5 elements, and she had very beautiful anubhuti that she was able to see the aura of Swamiji for the first time. And this is the one moment when your inner soul gets connected with the soul of Guru, and you feel that something beautiful is locked up in your soul in such a way that now nobody can break that connection, that chain. It is connected now, it is glued. एक प्रश्न मुझे प्रताप भाई से याद कराना था
कि वो एक बर्फ वाली आपकी अनुभूति, स्नोफॉल की अनुभूति थी, वो 2004 के वक्त पे हुई थी। 2004 में हम लोग कश्मीर गए थे, 2004 के मई के अंदर। तो जनरली मई के अंदर वहाँ बर्फ नहीं गिरती, स्नोफॉल नहीं होता है। तो हमने स्वामी से प्रार्थना की थी कि हमको बर्फ देखने को मिले, और सही में हम जैसे ही वह कश्मीर पहुंचे, पूरे हमारे टूर के अंदर बर्फ ही बर्फ देखने को मिला। मतलब इस चीज बर्फ देखना मतलब इम्पॉसिबल होता है। तो हमको वो स्वामी जी की बहुत कृपा रही कि वे, और हम सबको बताते कि हम कश्मीर में बर्फ स्नोफॉल में मजा करके आए करके। अरे वाह वाह, यानी कि वहां तक गए और बारिश का बर्फ का अनुभव होना, यानी कि दैट इज दी। और वो भी मई महीने में 2004 में कभी नहीं होता है, मई के अंदर कभी नहीं होता है। सही है, सही है। हमारी जो पहली टूर गई थी, उसके पहले टूर में वो लोग ने बोले हम लोग गए थे लेकिन हमें तो बर्फ नहीं मिला। तो हम फर्स्ट टाइम कश्मीर जा रहे हैं, हमें बर्फ देखने नहीं मिलेगा। तो इन्होंने तुरंत प्रार्थना की, नहीं हमको मिलेगा कश्मीर में बर्फ देखने, और हमारी टूर में बर्फ देखने मिला हमको, पटनी टॉप से ही। यस यस यस। सो एक और 2003 की एक अनुभूति बता देता हूँ, वो 2003 की आगे की, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ कि 2003 में नवंबर का चैतन्य महोत्सव करके मैं बॉम्बे आया था। और उसके बाद में इसकी चाची, मतलब मेरी चाची सास, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, और डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अभी, मतलब वेंटिलेटर पे रखा था, कि वो अभी बचने की उम्मीद नहीं है करके, ऐसा डॉक्टर बोलते। मगर बच्चा था उनका, वो बोला था नहीं कैसे भी करके, अब लड़का जो था वो बोला था कैसे भी करके मम्मी बच जाएगी, उसको बहुत एज था। तो मुझे इसने बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या करना चाहिए। तो मैं सुबह का वक्त था, सुबह हमारी डिस्कस हो गई, और मैं ध्यान करने बैठा, और ध्यान करने के बैठने के बाद में स्वामी जी से मैंने प्रार्थना किया। क्या वो सुनाई देता है? सही है। नहीं, वो वीडियो कैसे। हाँ, तो मैंने तुरंत स्वामी जी से प्रार्थना किया कि स्वामी जी, अभी अगर उसको सही होना हो तो सही हो जावे, अगर उसका समय आया हो तो उसके हिसाब से जो भी हो, उसके अच्छे हो वही हो। तो मैं ध्यान करते बैठा था, और स्वामी जी का फोटो ऊपर से नीचे थोड़ा आया, मतलब गिरने वाला था। तो मैंने तुरंत पकड़ लिया और फोटो रख दिया। तो मैं समझा नहीं क्या हो रहा है करके, और मैं नॉर्मल, मैं बोला कुछ तो हुआ ऐसा करके फोटो रख दिया। फोटो रखने के बाद में नॉर्मल 5-10 मिनट हो गया होगा, उसके बाद में इसको फोन आया कि तुम्हारी काकी का देहांत हो गया। मतलब ये प्रार्थना करने के बाद में इतना जल्दी रिजल्ट, मतलब 5 से 7 मिनट के अंदर, ये मेरे लिए तो अनुभूति होती रही ना कि मैं हर, मतलब इतना 2003, मतलब अभी नया ही जुड़ा था, और सूक्ष्म शरीर से जो अनुभूति हुई, मैं मतलब ऐसा समझने लगा कि हम जो बोलते हैं वो तुरंत उसका रिजल्ट आ जाता है, सुन लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब अपना स्वजन अंतिम घड़ी में इतना दुखी होता है तो सभी लोगों की जान अद्दर हो जाती है, यानी कि सब का चित उस बुजुर्ग के अंतिम क्षण पे होता है, और टेंशन बढ़ जाता है परिवार में, और दुख होता है कि उनको क्यों कष्ट हो रहा है। इस माहौल में जब हमारी प्रार्थना परमात्मा सुनता है या गुरुदेव सुन लेते हैं, तभी हमारा विश्वास कुछ अलग ही स्तर पे पहुंच जाता है। और इन सब से हमें पता चलता है कि ये जीवंत शक्ति, जो स्वामी जी कहते हैं ना, गुरु वह है जो परमात्मा से भी जुड़ा है ऊपर, और नीचे एक सामान्य मनुष्य भी उसके साथ जुड़े हैं साधक के रूप में। आपका विश्वास कितना ऊपर से आपकी प्रार्थना का परिमाण आता है, तो आपकी ये अनुभूति कई लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है कि अंतिम क्षणों में जब कोई भी स्वजन हो जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, अंतिम क्षणों में हम गुरुदेव के चरण में प्रार्थना ही करके छोड़ दें कि उनके लिए जो सही है वो ही होना चाहिए। हम कोई अटैचमेंट नहीं रखे कि इनके जीवन की डोरी लंबी कर दो, उनको बचा दो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उस आत्मा के लिए भी बंधन बन जाता है और हमारे लिए भी एक अपेक्षा का कारण बन जाता है। स्वामी जी हमेशा कहते हैं अपेक्षा मत रखो और अटैचमेंट भी मत रखो इतना, क्योंकि वो फिर मोह माया में हमें फिर से चक्कर में लाता है। तो ये गुरु की कृपा है, और ये अनुभूति तो बहुत ही एनलाइटनिंग है, क्योंकि हम लोगों का सबका ऐसा भावुक स्वभाव रहा है, जिस तरह से हम बड़े हुए हैं, जिस तरह से हम परिवार के साथ जुड़े, ये अनुभूति बहुत ही मार्गदर्शक है सभी समर्पण परिवार और नॉन समर्पण परिवार के लिए भी। धन्यवाद। I will try to summarize a little bit in English. Pratap Bhai had two beautiful experiences from 2003, which is during the May vacation, which is the summertime for India. Most of the families travel with kids,
during this May vacation, like we are doing in June, July in the Americas. They went to Kashmir, and some of their friends who visited Kashmir in the past, they said that we went to Kashmir, but because we were going in the May, they did not get chance to see any snowfall. However, Pratap Bhai made the prayer that Swamiji, we are going with the family, and I want that we experience the snowfall. And by the grace of Gurudev, when they were in Kashmir, they were able to see the snowfall. So this was a souvenir, this was a gift by Gurudev for their family. And all these little prayers strengthen our faith. Second thing that happened was little emotional, because one of the aunt of Harshaji, she was in a very critical situation, and Pratap Bhai made a prayer to Gurudev that whatever is right for her, let it happen, and we surrender her soul to your lotus feet. With this prayer, while Pratap Bhai was making a prayer and meditating, the photo, after 10 minutes or so, the photo loosened up, or it started like falling down, and he got the indication that something is happening with her. Auntie is going through the last moment of her life. And within 10 minutes, that call came from Auntie's family that she passed away. This was a miraculous thing or anubhuti experience for Pratap Bhai and Harshaji, because this is the time of initial days of Samarpan meditation, contact with Swamiji, and this Guru Shakti, again, with very rigid mindset of who would not believe in a living Guru. So all these are the experiences that strengthen their faith. All these are the experiences that made firm and stronger connection with the Guru Shakti or Swamiji, day by day, every experience by experience. And again, this also strengthened their relationship with the young volunteers, young people who were willing to serve as volunteer in different activities, whether it is organizing the event or whether it is exhibition of Samarpan at different major events. So this is the success and experiences of the Shah family from the early days of 2003 and 2004. Very beautiful अनुभूति. Thank you, thank you. आगे बढ़े हम. ये पोजीशन अच्छी लग रही है हमको. थोड़ा चेंज आया, अच्छा लगा. तो गुरु का दर्शन हुआ, गुरु से अनुभूतियां मिली. फिर गुरु पूर्णिमा या गुरु दीक्षा ली या नहीं ली, उसके बाद 2003 में लिया ना. क्या अनुभूति हुई गुरु पूर्णिमा की? 2003 में लिया. हाँ जी, बोलिए. हाँ, नहीं, गुरु दीक्षा 2003 में हुआ मेरा. और वो मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब स्वामी जी से मतलब एक नजीक से 3 दिन रहने को मिला. मतलब मेरे लिए वो भी तभी बहुत ही ऐसा आनंदमय रहा, जो 2003 में जो ये किया वो. मगर जिसको बोलते ना, तभी भी इतना वो लगाव नहीं आ रहा था. ऐसे 3 दिन था, बहुत मजा आया. ऐसा मतलब ऐसा निकलने को भी नहीं होता. गुरु पूर्णिमा खत्म हो गई तो भी जाने का मन नहीं हो रहा था. मगर शरीर फिर भी है ना, वो स्वामी जी के प्रति नहीं हो रहा था. वो 2004 में ही हुआ, जब उनकी महाशिविर हुई तभी हुआ. सही है, सही है. और ये 2004 की जो महाशिविर थी, उस टाइम पे हमने जो गुरु कार्य स्टार्ट किया था, पहले मतलब सबसे पहले तो प्रचार कार्य करना था, तो प्रचार के हिसाब से हमने कार्य किया. उसके बाद में हमको बोला गया कि अभी वो आपको गुरु कार्य करना है. तो बोला हाँ जरूर. बोला आप जब तभी वो परमिशन लेनी थी ग्राउंड की. 2004 के ग्राउंड जो चुनापट्टी में हुआ था शिविर, तो ग्राउंड की परमिशन के लिए आप जाओगे. बोले एक हमारे सावंत जी करके ट्रस्टी थे पहले के, तो उनके साथ में सावंत जी का रिटायर्ड कलेक्टर थे, तो उनको परमिशन का काम दिया था. तो बोले मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ कोई चलना चाहिए. तो बोला मैं चलता हूँ. तो मैंने गाड़ी ली और हम लोग सब जगह पे परमिशन लेने के लिए जाते थे. इस तरह से मतलब ट्रस्टियों के साथ में फर्स्ट टाइम हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, उनके साथ कार्य करने का मौका मिला मुझे 2004 महाशिविर से. और जैसे ही महाशिविर आगे बढ़ती गई, और महाशिविर में ऐसे कुछ हमेशा गुरु कार्य के अंदर कुछ तो कुछ तकलीफें आती जरूर है. तो उस टाइम जिसने शिविर स्पॉन्सर किया था, उसने छोड़ दिया कि अभी मेरे से नहीं होगा. और अचानक हमारे को
मनी का जिम्मेदारी ले लेनी पड़ी। हाँ, फर्स्ट डे हो गया, उसके बाद में अब क्या करना चाहिए? तो हमने बोला अभी कुछ कर नहीं सकते, तो मैंने इतना ही धर्मेश भाई को बोला आपको चाहे तो मैं कुछ फंड आपको लोन दे सकता हूँ। तभी इतना भाव नहीं आया था कि मैं डोनेशन दूं। मैंने बोला लोन चाहिए दे सकते थे हम, कार्य हो जाए। तो धर्मेश भाई ने बोला इनको एक काम करो, हमको डोनेशन की जरूरत है, फिर भी एक काम करो, इनको ना कमेटी मिले लो। तभी एक कमेटी बनाई गई थी 5 जन की। उसमें मैं था, खामनकर जी थे, गोंडलिया जी थे और प्रवीण पुरो जी थे। तो इस तरह से हमारी 5 जन के, वीरकर जी थे, हम 5 जन की कमेटी बन गई और फिर हमने एक कार्य किया था। तो जो भी साउंड सिस्टम मंडप वाला जो भी था, तो वो हमारा कच्ची था, तो उसको भी संभालने का कार्य मुझे दिया गया कि अभी वो पैसा मांग रहा है, उसको कैसे भी करके आप समझाओ। तो मैं वो बुजुर्ग था, उसको समझाया कि भाई आपने तो ये सारे कार्य खर्चे चालू कर दिए, अभी आप निकाल दोगे तो भी आपको पैसे मिलने वाले नहीं है, हम आपको पैसे जरूर देंगे। और वो शिविर का इतना अनुभव है कि हमको पैसे की कमी नहीं पड़ी। लोगों ने अपना जो शादी होने वाली थी एक कपल की, उसने अपना शादी के लिए जो दागिना वगैरह परचेस किया था, वो उसने बोला मैं ये ले लो मगर शिविर होने दो। इस तरह से साधुओं का भाव था। वो शिविर बॉम्बे के साधुओं का जो भाव देखने को मिला, वो मेरे लिए मिरेकल था। मतलब इतना भाव स्वामी जी के प्रति कि जो शादी करने वाला है और वो अपना खुद का जो शादी के लिए देना लगा रहा है और वो देना चाहता है। तो इस तरह से लोगों ने इतना डोनेशन दिया कि शिविर का पूरा खर्च निकल गया। और ये मुझे उस टाइम पे फर्स्ट टाइम कमेटी में जुड़ने का मौका मिला। सही है, सही है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, उससे हमारे दिमाग में जो ब्लॉकेजेस है या हमारा जो मिसकॉन्सेप्शन है, हमारी पूर्व धारणा है, वो सब छूटती है। और एक साधक का समर्पण ही दूसरे साधक को समर्पित होने के लिए प्रेरित कर सकता है। यही भाव से हमने दिस इज समर्पण का प्रोग्राम शुरू किया है, क्योंकि आपके जीवन में आप जिस मुसीबतों से गुजर गए हैं और जिस हालात से गुजर के भी आपने कभी समर्पण को या ध्यान को छोड़ा नहीं, गुरु कार्य को या सेवा को छोड़ा नहीं, ये बात सुनकर ही किसी को प्रेरणा मिलती है। अरे मैं क्यों इतनी उलझी हुई हूँ, मैं क्यों इतना चिपका हुआ हूँ, मैं भी तो ये कर सकता हूँ जो प्रताप भाई ने किया, जो हर्षा जी ने किया। और यही बात फिर बाद में अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें रहते हैं ना, ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, उसको ऐसे ही कहना चाहिए, वहीं पे हम अटक जाते हैं और हमारी प्रगति का मार्ग हम ही बांध लेते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर गुरु पूर्णिमा राजकोट। नहीं, उसके बाद में तो 2004 का अभी महाशिविर होने के बाद में हमको वो कार्य चल ही रहा था, उसके साथ में तुरंत समर्पण विवाह था 2004। वो तो हमको कार्य मिला कि आप यहाँ जो बॉम्बे में समर्पण विवाह हो रहे हैं, तो उसको आप कार्य संभालो। तो उसमें भी हमको मतलब लोगों को आएंगे, उनको चेक करो, कूपन होगा उसको आने देने का, वो सारा कार्य हमको मिला। और उस टाइम पे एक छोटी सी मतलब हमने कमेटी बनाई, तो स्वामी जी के साथ हमको मुलाकात करवा दी कि आप स्वामी जी से मिलो, ये 5 लोगों ने कार्य किया हुआ। तो स्वामी जी से एक छोटी सी भेंट भी उस टाइम पे हो गई। और उसके बाद में हमने 2004 का चैतन्य महोत्सव जो वहाँ का अटेंड किया, स्वामी जी का, वो तो आपको बताया मैंने कि वो हमारे लिए भी लंदन था। और लंदन में साधकों का हमने परदेश जाना और परदेश में साधकों का भाव देखा हमने। तो हम किसी के घर पे ठहरे थे, क्योंकि होटल में ठहरने का था नहीं। स्वामी जी ने इतना ही बताया आपको खाली टिकट लेके आना है, रहने वगैरह की व्यवस्था साधक करेंगे, वो लोग करेंगे। सही है, उन्होंने हमको बहुत अच्छी तरह से रखा था। वो अपना घर, वो काम पे जाते थे, जब भी हम आगे गए थे थोड़ा दिन पहले चैतन्य महोत्सव, तो घर हमारे भरोसे पे छोड़ दिया था, आप जो बनाना है बनाओ, जो खाना है खाओ। और जिसके हर अलग अलग घरों पे हमको खाने को मिला, हर अलग जगह पे खाते थे और हम उनके घर पे खाते थे। पूरा घर हमारे भरोसे पे छोड़ दिया था। तो साथियों का वहां भी भाव देखने को मिला, मतलब लंदन में भी मिला। वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि बाहर में इतना भाव नहीं रहता, मगर लंदन में हमको साधक थे, इसलिए उनका भी ये भाव हमको जानने को मिला। उतरते ही पहले वेलकम हुआ था चॉकलेट से। हाँ सही है। और ये आपने जैन मुनियों के बारे में सुना होगा कि जैन मुनि यहाँ से यहाँ जाते हैं और उनकी सेवा की है। आप खुद एक जैन मुनि या स्वामी जी की तरह सम्मानित हुए और सबने आपको अपने घर पे रखा, ये भाव देख के ही आपका बहुत अच्छा लगता है। और यही वसुदेव कुटुंबकम की जो बात करते हैं स्वामी जी, यही है। स्वामी जी ने कहा था उस बारे में, मीन्स 2004 की चैतन्य महोत्सव के बारे में, फिर बाद में इंडिया जाके बताया था कि उनका भाव इतना था कि ये गोरे जो अंग्रेज लोग थे जो इंग्लैंड से आते थे,
उनको इंडिया के लोगों का भाव देख के ऐसा भाव जागा कि हम भी स्वामी जी को बुलाए, साधकों को बुलाए, हम भी प्रोग्राम करें और उनकी खातिरदारी करें। ये भाव एक भाव को जगाता है, समर्पण समर्पण को जगाता है और स्ट्रॉन्ग करता है। यह बात हमें बहुत अच्छी लगती है। ये वो 2004 का हमने जो उन लोगों से हमने जो हमको जो व्यवस्था की, उसके बाद में हमको भी भाव हो गया कि जितने भी फॉरेनर आएंगे हम उनको सबको घर पे रखेंगे। और 2004 से काफी समय 2007-8 तक तो हमारे जितने भी फॉरेनर आते थे, हमारे मतलब घर में जितनी जगह होगी उतना हम घर पे रखते थे, अरेंज कर लेते, दूसरे साधक के या होटल में अरेंज करके देते थे। हाँ, एयरपोर्ट से लेके आना मुंबई और मुंबई से नवसारी पहुंचाना, वो कार्य बच्चे लोग करते थे। हाँ, उसके साथ में बच्चे भी वो कार्य से। तो ये कितना सुंदर परिवार की ओर से गुरु कार्य हो रहा है कि आप फाइनेंशियली और अरेंजमेंट में, मैनेजमेंट में योगदान करते थे और हर्षा जी रजिस्ट्रेशन में मदद करती थी और बच्चे इनके ट्रांसपोर्टेशन और उनको लॉजिस्टिक में मदद करते थे। तो ये बताता है कि ये पूरा परिवार एक अच्छे पंथ से, एक अच्छे मार्ग से जुड़ जाने से पूरे परिवार की कितनी सुंदर आध्यात्मिक प्रगति होती है। और आज आगे चल के हमको बहुत कुछ अच्छा जानना और देखना मिलेगा, बहुत मजा आएगा। बहुत 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 धन्यवाद। मैं थोड़ा समराइज कर देना चाहता हूँ। इफ यू कैन गो बैक टू दी Pratap bhai attended the first Guru Purnima on 2003 in the how you say Navsari. Navsari. It was the Wadi, the Patel community is Tigrawadi, yes. So it was the Wadi. I attended the first Guru Purnima with Kumar Malde from Canada. We went together and our family was there also. So me and Pratap bhai joined Samarpan Guru Purnima at the same time in Tigrawadi. Very beautiful place. This is Guru Ma standing in the center on the stage. And the group of sadhak from UK and all the other places, Afaf Khoury and Liz and Colin Jardine and all those people, Emma Dolman, and everybody was there. Binita was there, Hani Kalaria was there. All those people, we became like one family. And looking at all these activities, the sadhaks from UK wanted to host one event also. And they conducted the Chaitanya Mahotsav, Swamiji's 50th birthday in UK, and it was very successful. But what happened during all this time is Pratap bhai and Harshabin, when they went to UK and saw all these non-Indian sadhak or all these foreigners getting so connected with Gurudev's energy and Chaitanya, they realized that literally Swamiji have made this one family, and if these people can do it, why we should not do it? And that time onward, they started hosting all these guests who were coming from other part of the world to stay at their home or arrange for them in Mumbai in nearby hotels. And not only that, Harshaji was doing Gurukarya of registration in major events because she used to love that kind of administrative work. Pratap bhai was also volunteering, and he became instrumental in the Mahashivir in Mumbai when the sponsor backed up. He even supported financially and administratively because of his business communication skill. He was even able to convince the suppliers not to cut off the service and continue providing the service for all the rentals and other equipment so that this, the Shibir can go on. This kind of dedication from parents tells others that the children especially, that if my mom and dad can do this, I also want to be part of it. And their children, Prince and Jinali, were also becoming instrumental in picking up the sadhaks from the Mumbai airport, bringing them to their home or to hotel, and then also supporting them to reach all the way to Navsari or Dandi Ashram. This is the kind of things. One interesting thing I found in Pratap bhai's Anubhuti is when the sponsor backed up in Mumbai for the major Shibir, Mahashibir, Mega Shibir in Mumbai,
all the sadhaks came together. They put whatever they can contribute and donated the money and made sure that the shibir should not stop. Pratap Bhai at that time initially said that I will loan the money, but after looking at the dedication of all that, he donated. So this is the kind of thing, one sadhak's dedication inspire another sadhak. There was a young couple who was going to get married. They said that we will put the ornaments of our wedding, but this shibir should not stop. That level, that dedication of Samarpan is changing the life of others, because what one sadhak, no matter how rich or poor, how old or young, is doing something, another sadhak catch that vibration, catch that spirit, and in the waves, everybody start getting carried away like the ocean waves. And that is what the miracle of Samarpan meditation. That is what the spirit of Samarpan meditation. Now we have been talking only about 2003-4 experiences. We are going to move forward because Harshaji, I think you had your first anubhuti or first shibir in 2004, right? Guru Purnima? Yeah, Guru Purnima, yes. Yes. Started meditation from 2002, but in 2003 Prince result was there of SSC, so I can't go and मैं इतना समर्पित भी नहीं थी शायद इसके लिए, क्योंकि स्वामी जी ने मुझे स्वीकार कर लिया था लेकिन मैं स्वामी जी को स्वीकार नहीं कर सकी थी, इसलिए शायद 2003 की गुरु पूर्णिमा मैंने नहीं की। और 2004 की गुरु पूर्णिमा जब मैंने फर्स्ट टाइम की तभी टोटली आई सरेंडर टू हिम एंड उधर मैंने संकल्प ले लिया कि नहीं, मुझे भी 5 गुरु पूर्णिमा करनी है। और ऊपर से वो 5 गुरु पूर्णिमा तो नहीं, लेकिन 2004 से करके 2021 तक की कोई भी गुरु पूर्णिमा मेरी मिस नहीं हुई है अभी तक। तो यानी कि आपने चॉकलेट मांगी, स्वामी जी ने डिब्बा दे दिया। डिब्बा दे दिया। ये तो बहुत ही सुंदर अनुभूति है भाई। तो गुरु दीक्षा का इतना महत्व मानना और समझना, तभी आप मांगते हो, तभी आप ग्रहण कर पाते हो। क्योंकि कभी कभी हम दूसरों को देख के मांग भी लेते हैं लेकिन हजम नहीं कर पाते, क्योंकि इंटेस्टाइन इतना नहीं होता है कि इतनी बड़ी चीज हजम कर सके। गुरु का चैतन्य हजम करने के लिए भी उस तरह की प्यास बनानी पड़ती है, उस तरह का एक आध्यात्मिक स्तर बनाना पड़ता है। तो मुझे आपकी स्टोरी में दिख रहा है कि कैसे छोटे से बच्चे थे, फिर बाद में आपके स्वाधिष्ठान, नाभि, हृदय चक्र क्लियर हुए और गुरु आपको ऊपर आज्ञा चक्र की ओर ले जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे, और कैसे आपके जरिए समभाव और सेवा भाव की वजह से इवन विशुद्धि खुल रहा है और आपके जीवन में सफलता के साथ दूसरी आत्माओं का भी कल्याण हो रहा है आपके साथ साथ। बहुत कुछ आगे जानना सीखना मिलेगा, लेकिन 2004 से 21 तक की सभी गुरु पूर्णिमा अटेंड कर पाना, ये दर्शाता है कि आपका जो लेने का और देने का भाव जो है वो कितना पवित्र है और गुरु की आपके ऊपर उतनी ही कृपा है। यही मिरेकल है, वही तो ही पहुंच सकते हैं हम। ये बहुत ही सुंदर अनुभूति है। I really love the fact that Harshaji prayed for I want to attend at least 5 Guru Purnima, and from 2004 to 2021 she never missed a single Guru Purnima. That is the blessing and grace of Gurudev. So Swamiji says miracle kuch nahi hota hai. There is no such thing like miracle. A pure samarpan from a devotee and pure grace from Guru, that is the union of samarpan and grace. That is the union of sadhak and Guru. That is the union of faith, and that is what creates the miracle. It is all about believing. It is all about having the and going on the right direction. This is the time when we change our life and our belief change the life of others. Very beautiful, Harsha. Well, 2012 में मेरी डॉटर इधर आई थी, she was pregnant and she knew that I want to go for Guru Purnima. So मेरे भाई ने उधर से टिकट, लंदन से टिकट भेजा मेरे लिए। कच्छ में, भुज में गुरु पूर्णिमा थी। मैं पूरे गुरु पूर्णिमा के दिन ही पहुंची भुज और प्रोग्राम पूरा उसी दिन निकली, क्योंकि मेरी डॉटर इधर थी घर पे इसके लिए। लेकिन वो भी गुरु पूर्णिमा 2012 की भी मुझे मिस करने नहीं दी।
यानी कि वो कहते हैं ना कि बच्चे तो बच्चे आपके काम में आए, लेकिन अभी उनके स्पाउस, उनके पति पत्नी भी गुरु कार्य में लग गए। पारस जी और स्वाति जी भी आपके साथ उस गुरु कार्य में, उस समर्पण के, ये बहुत ही अच्छी बात है। So what Harshaji was saying that in this, one of the challenging Guru Purnima was 2012 when she was traveling, and her son-in-law Parasji sent and arranged for the ticket from Hyderabad to Rajkot, so that No, she Mumbai to Rajkot. Mumbai to Rajkot, sorry, Mumbai to so Bhuj. that she does not miss this Guru Purnima. And this is amazing. This is inspiring for us to witness that how every member of the family is trying to make sure that if you have a pure wish, we will try to make it fulfill. And there is no greater blessing than this, I can tell you. Yes, yes. Family support is must. हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और 2006 की एक अनुभूति है गुरु पूर्णिमा की राजकोट की। ये उससे पहले जो 2005 में स्वामी जी से हम केरला में मिले थे। हाँ, चलो वो सुनते हैं। क्या हुआ था? केरला की अनुभूति बहुत प्यारी है, और उसमें तो 2005 का है ना, इसलिए मैं पहले वो बता देता हूँ। हाँ जी, जरूर। 2005 में जनवरी का महीना था और स्वामी जी का वहाँ कुछ 3 रिट्रीट रखा गया था केरला के अंदर। तो कोच्चि में जो रिट्रीट थी, तो मुझे वहाँ जिसने अरेंज किया था उसको मैंने बोला था कि मेरा कोकोनट का बिजनेस है, कोकोनट ऑयल का, तो मेरे काफी पहचान वाले भी है, 1-2 रिलेटिव भी है, आप उनसे मिलो और उनको आप शिविर में लेके जाओ। उनका नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ दिया था उनको, पर उसको टाइम नहीं मिला, उसने किसी का कॉन्टेक्ट नहीं किया और मुझे फोन करके बोल दिया, एक काम करो आप यहाँ आ जाओ और आप ही इनको बुलाओ, मतलब आप भी आ जाओ यहाँ। तो मैं बोला चलो, अगर रिट्रीट ज्वाइन करने को मिल रहा है और मुझे कुछ लेके जाने को मिल रहा है तो अच्छी बात है, हम दोनों आ सकते हैं। मैंने पूछा तो बोला आप दोनों आ जाओ। तो हम दोनों ट्रेन से निकले और वहाँ जाने के लिए कोचिन। तो तभी स्वामी जी से मैसेज आया कि आपने परमिशन किससे लिए? अरे मैं बोला अभी हमने तो परमिशन ली हुई है विजय किशन जी ने जो हमको बोला है। तो मतलब ये सिस्टम है कि नहीं वो जानना। स्वामी जी ने कहा कि विदाउट परमिशन तो नहीं आ रहे। तो उस टाइम पे सिस्टम थी कि ऐसे विदाउट परमिशन नहीं जा सकते। तो हम थोड़ा डरते पहुंचे वहाँ और हमने सारे लोगों को बुलाया जो हमारे पहचान के थे, बिजनेसमैन थे, कुछ रिलेटिव थे, और हम 7-8 लोग वहाँ गए। जो समीक्षा आश्रम था कोचिंग के अंदर, वहाँ गए उनको लेके और स्वामी जी से मुलाकात की। और तभी स्वामी जी ने दूसरा जो ग्रुप एक और आने वाला था वो आया नहीं। फिर स्वामी जी ने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद में बोला अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे जो लोग आए हैं ना उनको कल हम जागृति करेंगे सुबह और फिर उनको भेज देंगे और तुम हमारे साथ रहो, मतलब तुम यहाँ हमारे साथ आश्रम में रहो। तो मैं तो खुश हो गया, चलो अभी स्वामी जी के साथ में आश्रम रहने को मिलेगा। और करीबन 7 दिन हम आश्रम में रहे। उनको तो सुबह का जागृति करके भेज दिया गया। और स्वामी जी ने फिर मुझे बुलाया नजदीक बुला के मुझे हेजल कॉटनी की जो बुक थी वो मुझे दिखाया। मतलब हमारी जो स्वामी जी से ऐसे मुलाकात, जो फर्स्ट मुलाकात बोलते हैं ना, ऐसे शॉर्ट में ऐसा बैठ के बात कभी नहीं हुई थी। तो वहाँ बैठ के जैसे हमारा था, तो हमको मुझे वहाँ बिठाया और सब बातें की और धीरे धीरे हमारे कुछ छोटी छोटी बातें चलती रही। फिर उन्होंने मुझे अचानक बताया कि एक काम कर, तू अभी यहाँ से तुम जब जाएगा तो वहां जाना नवसारी, और ये आश्रम देखो इधर समीक्षा आश्रम में क्या है, वो ईंट की दीवारें थी और कुछ भी नहीं था, उसको प्लास्टर भी नहीं किया हुआ था। बोलो अपने को वहां नवसारी में दांडी में ऐसा आश्रम बनाना है, तू जाके वहाँ ट्रस्टियों से बात कर। टोनी जी देख रहे थे कंस्ट्रक्शन का, तो आप उनको लेके जा। तो मैं ठीक है स्वामी जी मैं जाऊंगा। और मुझे इस तरह से उन्होंने गुरु कार्य पहले स्वामी जी के मुख से कार्य पहले मिला कि आप ये जाके दांडी का कार्य करो करके। क्या बात। हाँ, उन्होंने खुद मुझे, और हम 7 दिन जो स्वामी जी के साथ में रहे वो तो आपको मैं शब्दों में कैसे बताऊं कि गुरु के साथ में एक ही गाड़ी में हम लोग रहते थे। स्वामी जी आगे बैठते थे, उसके बाजू में ड्राइवर, पीछे हम लोग 4 जन जेंट्स बैठते थे, पीछे 4 लेडीज बैठती थी सुमो के अंदर। इस तरह से हम पूरा 7 दिन रहे और उसमें घूमे। और मतलब छोटी छोटी शिविरें भी चल रही थी साथ में। तो एक किसी के घर पे हमने शिविर लेने का, मतलब ऐसी छोटी शिविर चल रही थी, हम गए थे। तो कोई भी केरला था तो वहाँ स्वामी जी हिंदी में बोलते थे और ट्रांसलेशन
दूसरी भाषा में होता है, केरल वहाँ की मलयालम भाषा में। तो ये चल रहा था, तो स्वामी जी ने जो ट्रांसलेट करने का बताया कि मैंने एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं है, स्वामी जी हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। तो उन्होंने इतना, तो ट्रांसलेट करने का आया, तो ट्रांसलेटर वाला क्या बोलता है, वो बोलता है स्वामी जी भले बोलते हैं पढ़ा नहीं, मगर उन्होंने एमकॉम किया है। हाँ, तो स्वामी जी ने तुरंत पकड़ा, तुमको ट्रांसलेट करने के लिए बोला है, तुमको बताने के लिए नहीं बोला है। मैं बोलता तो मेरा कहने का मतलब है, जो वो उनके जो शब्द थे भाषा नहीं समझते, लेकिन वाइब्रेशन से पकड़ जान लेते हैं कि आप भले ट्रांसलेट गलत तो नहीं कर रहे हो, भले वो मलयालम बोल रहा था, वो लैंग्वेज से स्वामी जी को वाइब्रेशन से मालूम पड़ जाता है कि क्या कोई गलत बोल रहा है, गलत ट्रांसलेट कर रहा है। ये भी मुझे उस टाइम पे जानने को मिला। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमको उस टाइम पे स्वामी जी से नजदीक रहने से हमको मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब स्वामी जी के ऊपर पूरा विश्वास हो गया कि नहीं अभी इनको छोड़ ही नहीं सकते। मतलब उन्होंने मुझे शायद उस टाइम से बराबर बांध दिया। ये धीरे और उसके बाद में तो मैं यहाँ आ गया, मतलब केरला में बहुत अच्छे से भी 7 दिन तक रहे हम दोनों जन, और बहुत उसकी अनुभूति है खुद की, तो बताएगी बाद में। मगर मैं जैसे यहाँ आया तो मुझे पहले यहाँ आया, टोनी जी से बात किया कि भाई अपने को जाना है, मुझे स्वामी जी ने कार्य दिया है, अपने को दांडी जाना पड़ेगा। तो टोनी जी बोले चलो। मैं यहाँ से निकलता था 5 बजे सुबह, हम लोग जाते थे दोनों दांडी, और दांडी जाके हमने जो वहाँ के जो ट्रस्टी थे उनसे बात किया कि भाई इस तरह से स्वामी जी ने बताया और ऐसे आश्रम अपने को बनाना है। तो हमारी एक मीटिंग हो गई। दूसरी मीटिंग में तब तक स्वामी जी गोवा गए थे, गोवा से शिविर करके वहाँ आ गए। फिर मैं और टोनी जी वापस फिर वहाँ गए और स्वामी जी से काफी मतलब आश्रम के बारे में चर्चा हुई कि ऐसे ऐसे आश्रम बनाना है, यहाँ ये करना है, और टोनी जी वगैरह मेजरमेंट लेते थे और पूरा कार्य उनका चल रहा था। तो मुझे क्या करना है कार्य। तो अभी वहां देखा तो आश्रम अभी कुछ भी नहीं था, पूरा जमीन था, कुछ भी नहीं था, एक कंस्ट्रक्शन एक ईंट भी लगी नहीं हुई थी। तो अभी चाय का या उधर चाय मिलने का कोई सवाल ही नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं गया तो हमने क्या किया, यहाँ से दूध जो टेट्रा पैक में मिलता है, शक्कर, चाय, और हम यहाँ से लेके जाते थे, और बर्तन सब पूरा यहाँ से ही लेके जाते थे। और वहां जाने के बाद में वो 3 पत्थर रख के लकड़ियां जला के हमारा ड्राइवर था, वो चाय बना के सबको पिलाता था, स्वामी जी को और मेरा काम यही था कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक स्वामी जी के पास बैठना और उनके साथ चर्चा करना, वही काम करा। बाकी लोग काम करते थे, मैं बैठता था। ऐसा हर संडे हमारा चलता रहा, काफी संडे तक इस तरह से हमारा चलता रहा। धीरे डेवलपमेंट हुआ। So this is also very beautiful thing to witness. मतलब ये मुझे स्वामी जी वहां से जोड़ने का चालू कर दिया, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं क्यों बुलाया, स्वामी जी को आगे का कार्य करना था, इसलिए वो मुझे उस तरह से एनर्जी दे रहे थे। वेरी ब्यूटीफुल। मेरे से आगे का कार्य करवाने के लिए उनकी तैयारी चल रही थी। Before we go ahead, I want to request Rasika ji to move to the Kerala slide where Pratap bhai had the photos with Mona ji and Payal also. Ek minute, Pratap bhai. We have prepared the photos from the south in that PowerPoint. So I just want to tell everybody what Pratap bhai said. Guru Sannidhya, the proximity of Guru, is such a powerful influence in one's life that simply by staying closer to Guru, you cannot describe what experience you had or what kind of satisfaction and inner transformation that goes on in the presence of Guru. So this is the picture of January 2005 Kerala tour. In fact, Pratap bhai and Harshaji gave the contact of some of their family, friends, and business connections. Because of his business connections, there were many business partners who have the coconut we call wadi or the gardens where these people were supposed to attend the workshop with Swamiji, but the attendance was not great enough, the turnout was not great enough. So Pratap bhai and Harshaji were invited back to Kerala that why don't you come, and if you come probably the turnover will be better. And this gave them opportunity to stay 7 days together with Swamiji. During this time, they were traveling together and they were sharing the knowledge of Samarpan
to the new people. There was translation going on from Swamiji talking in Hindi to the language, local language. And Swamiji spotted one of the mistake that the translator was making. Swamiji says that in my life, I have not studied any book. And the guy who translated, he said that in my life, I have studied only up to BCom, only up to MCom. So Swamiji said, I did not tell you to give the information about me. I tell you to translate what I am telling you, because there is a purpose. Swamiji says that Guru talks from one level and disciple understand from another level. The reason why Swamiji says that I have not studied any book, he mean that I have not studied any scriptures. He mean that I have not studied any literature about meditation or chakras and nadis that he was teaching others. He literally received this knowledge from his gurus in Himalayas on a verbal level, what we used to call the Shruti. That means you are listening and you are remembering that. There is no reading and writing. There is no words, in fact. It is literally transferred either verbally or by the grace of Guru, by Shaktipat. And that is what he means when Swamiji says that I have not studied any book. But in real life, Swamiji is an educated person. He can read, write, and he has studied up to MCom. So this is one misinterpretation of Swamiji's discourse that many people take, especially those who are very close to Swamiji. It does not mean that way. And that is what Swamiji understood in Kerala, in the local language from Kerala. And Swamiji corrected the person after the discourse. So this is something that amazed Pratap Bhai, that how Swamiji is able to pick every little minute details when somebody is even talking in different language. And that is what assured him that Swamiji is all about vibration. He is not about words or knowledge. That is very powerful thing. हर्षा जी, आप इस अनुभव के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि you also have that अनुभूति. Yes, 2005 केरला टूर में मैं भी साथ में ही थी. तो ऐसा सुबह में तो इनका मीटिंग होता था, लेकिन मैं सुबह में जाती नहीं थी मीटिंग में. लेकिन जब बैक वाटर के पास बैठते थे, प्रश्न उत्तर का सेशन होता था, तभी हम सब साथ में तभी बैठते थे और इतने अच्छे प्रश्न होते थे. तभी तो ऐसा वो ध्यान भी नहीं आया कि अगर बुक लेके बैठते थे तो इतने आध्यात्मिक प्रश्न होते थे और इतने अच्छे जवाब रहते थे स्वामी जी के. अभी उसमें से कुछ याद तो नहीं है, लेकिन वो समय इतना अच्छा रहता था कि सुबह हम लोग कभी 6 बजे 7 बजे भी बैठ गए ना, तो नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं होता था. 11-12 कभी बज गए पता ही नहीं चलता था. प्रश्न उत्तरिका और स्वामी जी का कन्वर्सेशन चलते रहता था. बैक वाटर के पास बैठना, वो दिन अभी भी याद करेंगे तो बाप रे क्या दिन थे, ऐसा लगता है वो. Yes, very फिर हम में जो साधक थे वो तो गुरु जागृति करके वो चले गए और हम सब थे. मोना जी की लड़की हर्षवर्धन और सब हम थे. तो हम सब ऐसे ही बैठते थे स्वामी जी के. स्वामी जी एक ओटले पर बैठेंगे, हम सब नीचे बैठते थे और हमारा बातों का सेशन चालू होता था. और 1-2 दिन ऐसा हुआ, हम लोग घूमने गए थे सब केरला. तो ऐसा हुआ था कि मेरा चप्पल टूट गया था. तो मैंने इनको खाली ऐसे बोला कि स्वामी जी को पता ही नहीं होगा. मैंने ऐसा बोला मेरा चप्पल टूट गया है, किधर दुकान रहे तो देखना. और स्वामी जी को पता चल गया है कि इसका चप्पल टूट गया है. तो वो ड्राइवर को बोलते हैं कि देख हर्षा जी का चप्पल टूट गया है, पहले दुकान से हम चप्पल लेंगे फिर ही हम आगे जाएंगे. मीन्स जो ध्यान रखते हैं ऐसा हमारा ध्यान रखा था स्वामी जी ने. फिर हम आगे गए. स्वामी जी ने चप्पल दिलवाया, फिर हम आगे निकले. तो घुमाया गाड़ी को जब तक वो दुकान नहीं मिला चप्पल का. तो ये गुरु की कृपा है. एक माँ के जैसे हृदय रखते हैं और कैसे बच्चों के साथ प्यार से व्यवहार करते हैं. छोटी छोटी चीजों में भी हमारी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखते हैं. ये गुरु का स्वभाव होता है, ये गुरु का प्यार होता है. और साधक कभी कभी सोचते हैं कि मुझे तो गुरु के साथ ऐसे ही रहना चाहिए, मैं गुरु को इतनी सुविधा दूं, मैं उनका ये करूं. स्वामी जी इतने सिंपल है. जो लोग भी स्वामी जी के करीब रहे हैं, मेरा खुद का अनुभव रहा है कि स्वामी जी हमारे घर पे भी पूरा 1 महीना रहे थे. आपको 7 दिन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें पूरा 30 डेज
स्वामी जी आए थे 22 अगस्त 2001 में, और स्वामी जी 21 सितंबर तक हमारे यहाँ रहे थे मॉन्ट्रियल में। तो ये गुरुदेव की कृपा है, और उसका मैं भी यही वर्णन नहीं कर सकता शब्दों में, लेकिन जब आपके साथ या किसी साधक के साथ ऐसी बातें होती है तो पुरानी यादें आती है कि कितनी कृपा बरसाई है हमारे गुरुदेव ने हम सब बच्चों के ऊपर। इसमें एक बच्ची है हमारी पायल लाला जी, नैमिषाबेन की बेटी, और मोना चौकसी जो रूपम चौकसी की वाइफ है। मेरे जीवन में स्वामी जी रूपम और मोना की वजह से आए। तो रूपम और मैं और संजय सोनी, हम लोग बचपन में एक ही स्कूल में साथ में पढ़ते थे, तो जिसकी वजह से हमारे जीवन में गुरुदेव का आगमन हुआ। और फिर बाद में स्वामी जी को हमने कनाडा बुलाया, और आज तो एक हिस्ट्री बन गई कि स्वामी जी कैसे कनाडा आए और अमेरिका में इतना सुंदर गुरु कार्य हो रहा है। वो गुरु की कृपा ही है। लेकिन पायल लाला जी, शी इज नैमिषाबेन एंड बिहाग भाई's daughter, and she is living now in New Jersey area. She is our area head for the East Coast of USA. तो ये बच्चों को स्वामी जी ने जो दिया है, आज मल्टीप्लाई होके ग्रो होके वृक्ष की तरह दूसरों को काम आ रहा है। और उनको जो संस्कार मिले, कभी कभी हमको लगता है कि ये क्या मिला और क्या हुआ, लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि अभी ऐसे लगता है कि हम कितने तकदीर वाले थे कि हमको इतना कुछ मिला और हम समझ नहीं पाते थे। तो ये बहुत ही सुंदर अनुभूति है। आई वॉन्ट टू समराइज लिटिल बिट इन इंग्लिश दैट। उससे पहले एक बता दें, ये जो फोटो है ना उसमें, वो हम ये शंकराचार्य के मठ में हम गए थे, तो अच्छा, उन्होंने तो वाइब्रेशन के बारे में बताया कि सलीलम सलीलम, जो स्वामी जी बताते नहीं है सलीलम, तो मतलब भाषा में उसको सलीलम सलीलम बोलते थे वाइब्रेशन को। वो वहाँ स्वामी जी ने वहां से स्टार्ट किया था। तो इन्होंने बताया, उससे पकड़ा स्वामी जी ने कि शंकराचार्य। वो फोटो है, इसलिए मैं मतलब याद कर रहा था कि वो था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये जो शब्द जो स्वामी जी प्रवचन में यूज करते हैं, सलीलम इज पानी। जब ठंडा पानी हमें स्पर्श करता है तो एकदम ठंडे पानी जैसे वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। तो वही सलीलम जो शंकराचार्य संस्कृत में कहते थे, वो स्वामी जी ने फिर हमें इनसे मिला। तो ये बहुत ही सोर्स क्या है वो आप बता रहे हो, ये सब यहाँ से बात निकली थी। तो बहुत सुंदर लगता है। In her anubhuti, Harshaji was saying that while they were traveling together in these 7 days, her sandals broke, and she needed to buy a new sandal. And Swamiji noticed that her sandals are no more in good condition. So Swamiji reminded the driver sitting in the front passenger seat that please stop somewhere so that we can buy the new sandals or shoes for Harshaji. And she felt so overwhelmed that how Guru is taking care of little things for his disciple. And that is what we all need to understand. Either in the physical level or on a subtle level, Guru is always watching you and trying to take care of you like a mother taking care of the child. That my child is not hungry, my child is clothed properly, my child is sleeping properly. All the happiness, all the amenities that you are searching in the material world, Guru is willing to give you. Swamiji says that I am coming with the complete box of chocolates, but you are so ignorant that you are seeking only one chocolate. You want to pick the best chocolate in the box. Don't do that. Go with the total surrender and Swamiji will give you the complete box, total package deal for you. You know, Swamiji says that happiness, peace, joy, everything will come in your life as a package deal, byproduct. You don't have to look for it. Once you surrender and once you regularly meditate, your mind will be so purified that everything will happen naturally. And I was sharing the fact that one of the person here in the bottom picture, bottom left, Payal Lalaji in wearing white. She is now in USA. She lives in New Jersey with her family, Dilip, and she has 2 beautiful daughters, and they are all doing meditation. Payal is our area head for the East Coast of Samarpan, USA. So in the early days, what Swamiji has invested is paying back to us. And all these young kids and other sadhaks also benefited.
Another person is Mona Choksi. On the top right picture, she is sitting in the orange dress. Mona Choksi is wife of Rupam Choksi, and Rupam and Mona are my childhood friends. In fact, we know each other from very young age, and because of them, Swamiji came in our life, and Swamiji came to Canada for the first time through them, and with the grace of Gurudev, today we are in Samarpan meditation, promoting Samarpan in the USA and other part of the world because of Gurudev's grace. We are thankful to Mona and Rupam also for this occasion. And Swamiji, in his discourse, used the word Shalilam, Shalilam. Many times we are saying that when you are attending a meditation workshop or program like this, where we are praising the Guru energies, you feel cold vibrations as if somebody is blowing the cool air underneath your palm. Okay, and that experience was described by one of the Guru Adi Sankaracharya as Shalilam Shalilam in the Sanskrit word. Shalilam is like feeling cool, feeling cold vibrations. So this word came from this monk who is sitting in the center. He is one of the Shankaracharya in Kerala, whom Swamiji met, and he, while Swamiji was talking about vibration, described that word from Jagadguru Shankaracharya, and Swamiji is sharing that in his discourses from that time onwards. So much history, so many beautiful memories that are coming out. So फिर हम गुरु पूर्णिमा वाली स्लाइड पे चले जाएंगे और आगे उसी को सुनेंगे. बहुत सारी केरला की एक छोटी सी अनुभूति बता देता हूँ कि हम लोग जब वहां से निकलने वाले थे, प्लेन से निकलने वाले थे, बॉम्बे आने वाले थे, हमारे साथ में हर्ष पगारे था. तो स्वामी जी, हम तीनों जन निकले स्वामी जी से परमिशन से. तो स्वामी जी ने हर्ष की टिकट नहीं थी, मतलब उसका फादर उसमें काम करते थे एयर में, तो उसको हाँ अनिल पगारे जी, तो उनको टिकट वो हिसाब से मिल जाती है. तो स्वामी जी ने उसका टिकट अरेंज करके रखा था पूरा. तो उसको इच्छा नहीं हुई कि मैं स्वामी जी की छोड़ के जाऊँ. उसने बोला टिकट नहीं मिले करके निकल गया. स्वामी जी ने बताया तुम्हारी टिकट थी, उसमें तुमको जाना ही था. मतलब स्वामी जी बताते हैं तो टिकट का अरेंजमेंट भी करके देते हैं, मगर हम बच्चों को ऐसा होता है कि नहीं मिलेगा, ऐसा करके निकल गया. स्वामी जी ने बताया तुम्हारे लिए एक सीट थी और रिजर्वेशन करके मैंने रखा था. अरे तो कैसा एकदम स्वामी जी बराबर ध्यान रखते हैं कि वो जाने वाला है, तो उसकी टिकट भी अरेंज करके रखी थी, एक जगह उसके लिए खाली करके रखी थी प्लेन के अंदर. This is what people don't understand, and Swamiji says that when you come to a major function, आप बहुत हड़बड़ करके आते हो. This is where Swamiji says, मेरा हर एक साधक के ऊपर attention रहता है. Anytime people have difficulty to believe that how can Swamiji know about who am I and where I am and what problem I am going through. It is not that. On a subtle level, it is managed in a very different way. What Pratap Bhai is trying to share in his anubhuti is Harsh Pagare, one of the young disciples whose father works in the air travel industry. So he used to get the free ticket or discounted tickets, and he did not want to travel because he wanted to stay with them. And Swamiji said, no. Your ticket has been arranged and everything is good to go. Don't worry about it. So Pratap Bhai was again surprised that how come Swamiji knows every minute detail about every sadhak, and he also takes care of the arrangement for traveling of that sadhak. And I am saying that in major function, when thousands of sadhaks are coming and attending the program, Swamiji is paying personal attention to each and every sadhak, making sure that they come safely and they go back safely. So many major functions have taken place in last 20 years. My experience is nobody had any difficulty, nobody had any trouble or problem or accidents or anything. Swamiji and Guru Shakti protect every sadhak when they are dedicated and they are coming to attend the program. This is our own experience also. And for those who are working and they have difficulty getting the vacation, Kalpana, my wife, had the experience that
not just her, but the entire company got the vacation during the time when she wanted to travel for the Guru Purnima in 2007. And this happened for the first time at workplace, that they declared that this will be a time when there will be no work and the entire company will be closed for 1 week or 2 weeks like that. So Swamiji or Guru Shakti is a mercy, grace, symbol of grace and mercy. We have to believe it and we will reap the fruit of that faith. आगे बढ़े? उसमें केरला की एक अनुभूति बता देता हूँ। अरे जरूर। जब हम स्वामी जी के साथ मिले तो स्वामी जी ने पीछे से हाथ लगा के एक एक चक्र पे हाथ लगा के पूरा क्लियर किया था मेरे को, शस्त्रा तक पूरे चक्र ठक 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 करके पूरे खोले थे उधर ही केरला के अंदर। क्या बात है। तो मैं एक अनुभूति और बता देता हूँ। नहीं जरूर जरूर जागृति किया था उन्होंने। This is the greatest अनुभूति in fact, क्योंकि गुरु का स्पर्श ये तो बहुत बड़ी चीज होती है। गुरु की दृष्टि, स्वामी जी कहते हैं गुरु की दृष्टि पड़ जाए और नजर मिल जाए, उससे भी कई लोगों की जागृति हो जाती है। यहाँ पे तो आपको स्पर्श करके एक एक चक्र की जागृति की और क्लियरेंस किया। ये तो आपके पूर्व जन्म के कर्म होंगे जिसकी वजह से आपको इतना अच्छा सानिध्य मिला। और जो सुन रहे हैं ना, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ये हमारे लिए आशीर्वाद भरी बात है कि प्रताप भाई के मुंह से हमें ये सुनने को मिल रहा है। यानी कि just by listening to this, we are getting that energy, that channel of vibrations that can even awaken our chakras, purify our chakras. This is very beautiful thing. Thank you, Pratap bhai, for wholeheartedly sharing each and every minute अनुभूति और experiences with स्वामी जी। हमें बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़े। वो गुरु पूर्णिमा के 2006 राजकोट गुरु पूर्णिमा की बात कर रहे थे। ये 2006 की गुरु पूर्णिमा है। हाँ जी हाँ जी। तो उस वक्त पे ओम का दर्शन हुआ और लोग बाहर जा रहे थे। नहीं, 2006 का ऐसा 2006 का शिविर चल रहा था गुरु पूर्णिमा और बाहर ओम दिखा तो सब किसी ने बोला ओम ओम, तो सब लोग उठ के बाहर चले गए। अरे ओम, तो स्वामी जी ने बताया तुम ओम को कहाँ बाहर ढूंढते हो, सब ओम तो अंदर बैठा हुआ है। और फिर तो ओम कितने दफे ओम का दर्शन होते रहा। मतलब स्वामी जी ये ओम ये तो एक क्या बोलते एक चिन्ह होता है, मगर साक्षात स्वामी जी हमारे सामने बैठे हैं, तो हमको तभी अनुभूति कराई थी स्वामी जी ने कि साक्षात हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। So this is amazing. Swamiji in his discourses always say that just like every year we get a different model of phone, we get different models of car because they are bringing the innovation and progress in the technology in the new model. The same way Guru Shakti is also progressing on a spiritual level, and they are also trying to give us on the next level. In the old time, a guru used to live his entire life, and whether you go and listen to the story of Buddha or Jesus Christ or many other gurus, during their lifetime, people never appreciated. Even today, it is happening in many gurus' life. But Swamiji says that now, with Gurudev's life, it is happening that the physical body or sthula sharir and subtle body, which is the energy body of a guru, both are developed during the same time. In the old days, after the death of Guru, 20-25 years of worship or prayers from their disciple used to create that strength of the subtle body, and then the miracles used to be experienced by more people. For example, Shirdi Sai Baba. In their life, people never appreciated much, but today millions of people from around the world will go to Shirdi and experience their energy even today in different part of the world. In Swamiji's case, Swamiji's subtle body has been living while Swamiji is alive. And this is the proof. In this picture, what you are seeing is the symbol of Om. During Rajkot Guru Purnima, this Om appeared while Swamiji was giving discourse in the tent inside for the Guru Purnima program. And people, somebody who saw that, said that there is Om in the sky, and people started running out. Swamiji says that
the real Om, the physical body, is sitting inside you. Why you are running behind to see the subtle form? But this is the miracle that is happening between subtle body and physical body. Okay, so this is beautiful anubhuti. Today, thousands of people have experienced and witnessed Om, the symbol of Om, in the sky, through clouds. Even I have witnessed, so many American sadhaks have witnessed. In my life, I would say I have witnessed Om in India, I have witnessed Om in Canada, and I have witnessed Om in USA also. And today I'm sitting in Mexico, by the way. What you are seeing is the Surya Mandir. It is like Sun Temple of Mayan pyramid. And this is a miraculous place of the divine energy. Yesterday I saw Om right above that Mayan pyramid when I was visiting there. So when you talk about subtle body and Om, you will see Gurudev's presence or Guru Shaktis everywhere. This is my experience. आगे बढ़ते हैं. So पुष्कर, आप लोगों को मौका मिला ये गुरुदेव के चरण पूजा करने का? हाँ 2009 पुष्कर में. देखिए, मैंने आपको बोला ना कि हर साल स्वामी जी एक एक चक्र ऊपर ले जा रहे हैं. आज्ञा चक्र तक 2002 से 2009 7 साल में आपको पहुंचा ही दिया स्वामी जी ने. कितना सुंदर अनुभूति है, देखो. बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर. 2003 की पहली गुरु पूर्णिमा और 6 साल में आपने गुरुदेव के चरण की पूजा कर ली इतने बड़े पैमाने पे. दिस इज एन अमेजिंग ब्लेसिंग. गुरु के ग्रेस कह दो या आशीर्वाद कह दो या कृपा कह लो, लेकिन ये बहुत ही सुंदर सम्माननीय पद है गुरु के सेवा का और गुरु की कृपा का. बहुत अच्छा लगा ये देख के. Every year, Swamiji select one or two couple Guru Puja on the special Guru Day or Guru Purnima. This was in Ajmer, which is in Rajasthan in 2009. Next. So Prince took his Guru Diksha in next year after Harshaji. Prince हाँ, जीनाली ने दीक्षा ली थी 2004 मेरे साथ में, और प्रिंस ने दीक्षा ली थी 2006 राजकोट गुरु पूर्णिमा के समय. अच्छा 2006 में ली राजकोट में. 2006 में गुरु दीक्षा ली थी राजकोट में. और वो 2006 की ही गुरु पूर्णिमा की एक अनुभूति शेयर करना चाहूंगी. जरूर. हाँ, क्योंकि मुरुन सेंटर में तभी एक रजिस्ट्रेशन का कार्य मेरा फेवरेट था, और दूसरा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते थे उधर, जो चैतन्य महोत्सव और गुरु पूर्णिमा में प्रोग्राम्स होते थे, सांस्कृतिक प्रोग्राम, उनका सब मैनेजमेंट देखने का मेरा कार्य था. तो 2006 की गुरु पूर्णिमा के लिए हम लोग एक प्ले बना रहे थे. उसमें जीनाली भी थी, प्रिंस भी था, मैं भी था, और समूलन सेंटर के साधक थे. वो प्ले में हमें ऐसा बताना था कि एक साधक की स्थिति कैसी रहती है जब कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो, और एक नॉर्मल आदमी की स्थिति कैसी रहती है जब कोई दुर्घटना होती है तो पूरा हमने उसमें लगभग मुलुंड सेंटर के 30-35 लोग ने सब पार्ट लिया था. उसमें बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे सब थे उसमें. तो सामूहिकता में वो एक प्ले हुआ था. उसमें हम ऐसा बता रहे थे कि चल अभी समझो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो एक साधारण घर रहता है तो उनको फैमिली वाले कैसे हड़बड़ा जाते हैं, कुछ ऐसा होता है तो, लेकिन अगर एक साधक परिवार का घर रहता है तो वो पॉजिटिव ही सोचता है कि नहीं मेरे बच्चों को कुछ हुआ नहीं होगा. और वो प्ले हम लोग गुरु पूर्णिमा में उधर प्ले कर रहे थे राजकोट में, और ऐसा हुआ कि उसी समय मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ. तो स्वामी जी ने बोले कि देखो तुम्हारे सब लोगों की चित्त शक्ति कितनी स्ट्रांग हो गई है कि तुम तो इधर प्ले कर रहे हो, उधर तो वो हो रहा है, इसलिए अभी बाबा ऐसे प्ले मत करा करो. ऐसा स्वामी जी ने बताया था. हेलो. Jai Baba Swami, beautiful Anubhuti. Hitendra ji is probably switching his laptop to different one and he'll be back. So we can continue, and then when Hitendra ji is back, he will be translating it also. So yeah, there you go. Sorry, my network got a little disturbed.
आप अपनी अनुभूति कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद में समराइज कर देता हूँ। ओके। और उस टाइम पे हमारा भी ये हुआ था कि हमारा स्टाफ जो ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहा था बॉम्बे में, और तो हमारी वजह से हमारे स्टाफ को भी कुछ नहीं हुआ। जिसका मतलब कोई डब्बे में, जिस डब्बे में हुआ तो उसको अचानक उसकी ट्रेन छूट गई, या जो फर्स्ट क्लास में जाता था तो दूसरे डब्बे में चला गया कि चलो आज इस डब्बे में नहीं जाना है। तो हमारे स्टाफ को भी प्रोटेक्शन उस टाइम पे स्वामी जी की तरफ से मिला था। मतलब वो भी एक बहुत बड़ी अनुभूति है। हमको तो उसका प्रोटेक्शन मिलता है, मगर हमारे स्टाफ को भी प्रोटेक्शन मिला, वो हमको सबको साथियों को बताना चाहता हूँ। स्टाफ कहाँ हो जाता है, कहाँ कितना कनेक्शन लंबे तक स्वामी जी करके देते हैं इतना। Very, very beautiful anubhuti. In fact, Swamiji says that if one person start doing meditation in a family, because of that, entire family will benefit. Then district, then the people associated with that person in his surrounding, like the business or in the staff members, and even the city, state, country, and even the entire continent can benefit. My personal experience, I can say, I started in Montreal, and today entire America, I am able to work, and even entire world, we are able to connect with on a soul level. And this happens because of the Chitta Shakti, as Swamiji says. So when a sadhak evolve and his receptivity keeps growing, first our heart chakra has to be cleared. As Swamiji said very clearly, if you open up your heart, then you will be able to receive first, and then you will be able to share others. That's why purity of chitta and loving relationship with others are very, very important. So the experience is, during this time there was it was a accident with the train, right? Harshaji, bomb blast. Yeah, bomb blast in Mumbai, and this was the theme of the drama. And this theme of the drama materialized or realized in Mumbai itself while they were doing the drama act in Rajkot. So listen, you have to understand the presence of Guru energy, where things are happening or what we are acting into the words. That's why Swamiji says that be careful what you are thinking and what you are speaking and what you are doing. All these things becomes a reality whenever you are in the proximity of a living Guru or such a enlightened, highly spiritual person. Anything that you desire or anything you speak can happen. That's why chitta purity or purity of consciousness is very, very important in our life. Once we join in the samarpan or in the meditation or in our spiritual journey, very important. Pratap Bhai added to that experience that while they performed the drama in Rajkot, this bomb blast happened. But some of the staff members of PP Oil Limited, where Pratap Bhai's company is and where people are working, they either missed the train or they either got late to their work on that day and they were able to save themselves. So, what is amazing or surprising for one to understand is, if one person is doing meditation and connected with the divine energy of a living guru or higher consciousness, his aura, his energy, people who are putting attention to that person also benefit from that. That's why at least one person in the family should be fully dedicated and doing meditation regularly. Talking about the Guru Purnima and the legacy of the Shah family taking Guru Diksha from Swamiji at the Guru Purnima. Jinali, their daughter, took the Guru Diksha with Harshaji in 2004 Guru Purnima. But Prince, their son, was able to take the Guru Diksha in 2006 the Rajkot. We have made the mistake, and he met his future wife Swati also in 2007 Guru Purnima in Junagadh. I was there in Junagadh also. So my thing is, this family of Pratap Bhai and Harshaji is so interwoven
with the progress of Samarpan Family and all the Guru Purnima and different activities, that everything has a memorable event. Everything is a unique experience that they cannot forget. And there are so many that you will find today's day 24 hours short to listen to each and everyone, every experience of theirs. But we will try to summarize as much as possible. And they have made the promise that we will sit with you no matter how long it takes. Just like Swamiji was telling them, that no matter आपको कितना भी वक्त लगे मैं आपके साथ रहूंगा, आप मुझे पूछिए, आप मुझसे जानिए और अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए। वैसे ही वो लोगों ने हमें भी टाइम दिया है। And I thank you, हर्षा भाभी, प्रताप भाई, for giving us so much information, photos and details and your time, valuable time. We really appreciate that. आगे बढ़ते हैं। So 2013 में क्या हुआ? ये बहुत बड़ी साधकों की और हमारी सबकी परीक्षा थी। स्वामी जी ने बहुत बड़ी परीक्षा ली थी 2013 में, क्योंकि दांडी बारिश के सीजन में दांडी में पानी आता है बहुत, तो स्वामी जी की इच्छा एक दफे गुरु पूर्णिमा दांडी में होनी चाहिए। गुरु शक्ति धाम बनने के क्योंकि बाद में गुरु शक्ति धाम बन जाएगा तो जगह नहीं होगी इतनी, तो आपने को पहले किसी भी हालत में 2013 में आपको एक गुरु पूर्णिमा करनी है। तो हमने उसकी तैयारी कर ली। उस टाइम पे 2013 की एक तो महाशिविर भी थी सूरत के अपना शिरडी के अंदर, वो कार्य करने के बाद में यहाँ का भी कार्य करना था। तो यहाँ अलग अलग टाइप के मशीनरी लाई गई, और वो मतलब ये जो जमीन थी वो सॉफ्ट जमीन थी, तो उसके अंदर मशीनों से करके उसका डोम का किया गया। और इतना करने के बाद में बारिश तो चालू ही थी, तो नीचे कीचड़ के अंदर साधकों ने काम कर रहे थे, पूरा प्लेटफॉर्म बनाया था, और पूरा मतलब डोम वाला भी सोचता था कि उसके पास भी आदमी कम पड़े, तो हमने बाहर से आदमी बुलाए थे। और इतना अच्छा गुरु कार्य सूरत और नवसारी के लोगों ने किया था कि दिन रात मेहनत करके स्वामी जी ने बोला कि यहाँ गुरु पूर्णिमा होनी चाहिए तो होनी चाहिए। इतनी तकलीफें होने के बावजूद करीबन 8,000 लोग इतनी तकलीफ लेके भी इस गुरु पूर्णिमा में अटेंड किया था। इतना बारिश गुरु पूर्णिमा के अंदर भी बारिश चालू ही था, बारिश बंद हुआ ही नहीं था। जैसे गुरु पूर्णिमा खत्म हो गई उसके बाद में बारिश बंद हुआ। मतलब इतनी इस एनर्जी और बारिश की दोनों को मिलाप करना था। और इस तरह से स्वामी जी बोला था कि एक गुरु पूर्णिमा इम्पॉसिबल थी, स्वामी जी की कृपा में सही मानों में इतनी एनर्जी दिया था, जैसे ये स्वामी जी इच्छा पूरी हम लोग कर पाए हो कि गुरु पूर्णिमा 2013 में। सही है। और फोटो के हिसाब से देखो कैसे गुरु कार्य, कितने लोगों ने गुरु कार्य किया और रात दिन मेहनत किया। कम से कम 2 या 3 महीना उसके आगे से ये कार्य हुआ था, और सूरत और के साधकों ने बहुत मेहनत किया उसको। थैंक यू। आप गई थी कि हम नहीं कर सकते, ये कार्य साधकों ने फिर किया था। ये सब आप बता रहे हो, इससे ही पता चलता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम और इतने ऑकवर्ड सिचुएशन में, कि बारिश, नेचुरल कैलामिटीज, ये सब में फ्लड होने के बावजूद भी अगर होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पवित्र चित्त और डिटर्मिनेशन चाहिए कि बस हमें गुरुदेव ने कह दिया हम करेंगे। तो सारे संसार के लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि रेन और शाइन, वी विल बी देयर एंड वी विल मेक इट हैपन। जब गुरु के ऊपर विश्वास है और गुरु की कृपा है, साधकों का मन अगर जुड़ा हुआ है तो गुरु कार्य करवा लेंगे। आप सिर्फ तैयार रहिए। और इसमें जिम्मेदारी दी गई थी पहली बार पूरी गुरु पूर्णिमा की, हर्षा जी आपको, राइट? आप अपना कुछ अनुभव कहना चाहेंगे? ये गुरु पूर्णिमा की अध्यक्ष मुझे बनाया गया था और मुझे इस कार्य में कुछ पता ही नहीं था। मैं उधर जाके सब देखा कि बाप रे ऐसा सब कार्य होता है करके, और जो बोलते थे उस तरफ से, जो मैसेजेस देते थे उस तरफ से सब कार्य करते थे हम लोग सब। और थैंक्स टू सूरत के साधकों ने, उन्होंने जो तन मन और धन से जो कार्य किया था, उनकी टीम आती थी और कार्य करके जाती थी। और समझो ना, आज शाम तक जितना कार्य हुआ है, रात को बारिश हो गई तो वापस फिर 0 हो जाता, फिर नेक्स्ट डे फिर शुरू होती थी। ऐसा करते करते वो कार्य हुआ था। और एक स्वामी जी का भी चित इतना था कि एक घंटे में फोटो मंगवा देते, अभी कितना कार्य हुआ। और इधर से सब अनुराग जी उन्हें फोटो भेजते थे कि देखो अभी स्वामी जी अभी ये स्थिति, अभी क्या करना है, अभी और अभी है क्या कैंसिल करने का, तो अभी भी कैंसिल कर देते हैं। लेकिन स्वामी जी ना हाँ बोलते थे ना बोलते थे, लेकिन उनका चित्त पूरा था कि हो तो जाएगी। शायद स्वामी जी को विश्वास था। और मुझे ये दिन नजदीक आ रहे थे, समझो अभी गुरु पूर्णिमा में 4 दिन बाकी है, तो अभी तो कुछ कार्य बहुत बाकी है। अभी क्या करूं, तो मैं तो है ना
सीधी जो प्रथम गुरु शक्ति धाम था तभी तो उसमें जाके स्वामी जी के चरणों में ऐसा साष्टांग नमस्कार कर दिया। स्वामी जी अभी आप ही देख लो, अभी मेरे को तो इसमें कुछ अक्ल ही काम नहीं करेगी, नहीं होएगा, अभी आप ही देख लो। और मैं तो अभी मैंने तो ऐसा ही प्रण ले लिया कि स्वामी जी अभी जब तक ये कार्य पूरा नहीं होगा मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। और सच में मैंने पानी भी नहीं पिया था तभी तक। ऐसा मैंने बस खा लिया था। स्वामी जी अभी आपको देखना है क्या करना है, वो स्वामी जी नहीं दिखा था वो कार्य। तो इसीलिए जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा समर्पण चाहिए, उतना बड़ा दिल चाहिए, उतनी बड़ी भावना चाहिए, तभी कार्य होता है। कभी कभी हमको लगता है कि इतना बड़ा कार्य करने के लिए स्वामी जी ने मुझे क्यों जिम्मेदारी दे दी, स्वामी जी ने मुझे क्यों चुना, क्योंकि साधक तो बहुत हैं, लेकिन उस तरह का समर्पण भाव और उस तरह का दिल होना चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि आपने पानी भी नहीं पिया, यानी कि ये तो आपके लिए वो जैन लोगों की अथई हो जाती है, वैसा ही व्रत हो गया कि इस माहौल में मैंने चैलेंज किया, स्वामी जी को चैलेंज किया था। हाँ, मैं आपको और स्वामी जी को ऐसी चैलेंज पसंद है। मैं आपको कहता हूँ स्वामी जी इज हैप्पी कि ऐसे लोग आते हैं और गुरु कार्य करके निकल जाते हैं। स्वामी जी को मालूम है आप कितने लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, आपको मालूम नहीं। हमारी ये कनाडा की साधिका है नीताबेन पटेल, वो लिख रही है कि मैं खुश नसीब थी कि मैंने वो गुरु पूर्णिमा अटेंड की। हमारे कनाडा से कई लोग साधक गए थे उस वक्त पे, आई थिंक राजेंद्र भाई और दूसरे लोग भी गए थे। दिस वॉज ए मेमोरेबल गुरु पूर्णिमा। लेकिन गुरुदेव का प्यार और साधकों का समर्पण, ये समर्पण देखो, फूड पैकेट फर्स्ट टाइम हमने फूड पैकेट लॉन्च किया था वहाँ। फूड पैकेट क्योंकि वो सब रसोई बनाने की भी तकलीफ थी, तो हाँ सही है पिरसने की तकलीफ थी, तो फूड पैकेट फर्स्ट टाइम हमने सबको पिरसवा था। ऐसा आ गया था, सब लोग के फूड खाते थे, फूड पैकेट लेके, ऐसा पिकनिक हो गया था, पिकनिक जैसा। और ऊपर तो हम बैठे थे ना, तो ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग में ही बैठे थे। बाहर का वातावरण क्या हुआ क्या नहीं कुछ नहीं, अंदर बैठे थे ऐसा लगे जैसे स्वर्ग में ही बैठे हैं। राइट। और मैं नवसारी और सूरत के साधकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनका समर्पण उस वक्त पे गुरुदेव के स्वप्न को तो साकार कर गया, क्योंकि गुरु तो कृपायमान है, देने के लिए ही आए हैं इस धरती पर। लेकिन आपके समर्पण ने हम सबको भी प्रेरित किया है। इतना जो कार्य कर रहे हैं, फोटो देख रहा है, उससे पता चलता है कि हम तो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट ही देखते हैं। स्वामी जी स्टेज पे बैठे हैं, लोग सामने बैठे हैं, लेकिन ये फोटो आपके जरिए हमें मिली, उससे हमारी आंखें खुल रही है, हमारे हृदय खुल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये 2 महीना आगे कार्य चला था और 1 महीना पीछे भी कार्य चला था। ये सब पूरा समेटने को बाद में 1 महीना पूरा लगा था। सही है सही है। और आई थिंक कि उस वक्त पे कुछ इंश्योरेंस का और वो सब भी मसला था जो स्वामी जी ने वो बाद में, वो चैतन्य महोत्सव में। अच्छा, चैतन्य महोत्सव में हुआ था, बिकॉज 2019 में हुआ था चैतन्य महोत्सव में। हाँ जी, वो जब अपना खुद का टेंट बनाया तभी की बात है, राइट? जब ये आश्रम में हम अपना खुद का टेंट लिया तभी टाइम बना, उसी टाइम की बात है। हाँ सही है सही है। आगे बढ़ते हैं। तो 2021 में तो स्वामी जी ने घर पे बैठे बैठे ही सबको गुरु पूर्णिमा कराई, 20 में भी। तो पे आपका क्या अनुभव हुआ हर्षा जी? वो तो चैतन्य ही चैतन्य था घर पे, ऐसा लगता था जैसे हम आश्रम पे ही बैठे हैं। और ये फोटो में तो दिख रहा है कि आपने आश्रम की तरह ही बहुत सुंदर श्रृंगार किया है गुरुदेव की फोटो के पास। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एज वी ऑल नो, जैसे स्वामी जी ने तभी बोला था कि हमेशा आप मेरे पास आते हैं, अभी मैं सबके घर घर जाने वाला हूँ। तो इसीलिए वो ऐसा भाव आ गया था कि चलो अभी ये टाइम गुरु पूर्णिमा में हम स्वामी जी को अच्छा कुछ, क्योंकि हम हमेशा तो गुरु पूर्णिमा में चैतन्य महोत्सव में चले जाते हैं, तो हमारे घर पे जो स्वामी जी है उनको तो हम सजाते नहीं है, तो अभी हम घर पे है तो हमारे घर के स्वामी। सही है सही है। और ये भाव ही एक गुरु को गुरु बनाता है और एक साधक को एक पवित्र आत्मा बना देता है। सच बोले तो बहुत ही सुंदर बात है। आपका समर्पण हम सबको एक प्रेरणा देता है, एक इंस्पिरेशन देता है। वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट। तो मोस्ट ऑफ देम आई ऑलरेडी ट्रांसलेटेड। बहुत सारी चीजें साथ में ही मैं बताते गया। आई ट्रांसलेटेड इन बिटवीन बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू मिस द
point. आगे बढ़ते हैं. Yes. तो हालांकि आपने तो बहुत सारे गुरु कार्य किए. सबसे पहला गुरु कार्य और किस तरह से शुरू हुआ, गुरु कार्य की परंपरा कैसे शुरू हुई, उसके बारे में बताइए प्रताप जी. वो मैंने खुद तो बता दिया आपको कि हमारा 2004 अपना 2003 से बाबा धाम का कार्य हुआ. फिर 2000 में महाशिविर का एग्जीबिशन से कार्य, 2003 से एग्जीबिशन का कार्य साथ में चला. 2004 में भी एग्जीबिशन का कार्य महाशिविर में हुआ. 2004 में फिर अपना बॉम्बे महाशिविर का कार्य मैंने बता दिया. और उसके बाद में 2004 में लास्ट में नवसारी का और शिविर हुआ, उसमें भी एग्जीबिशन का ही कार्य हुआ. और फिर 2005 में हमारा केरला हुआ. केरला के बाद में आश्रम का कार्य हुआ. और वो करते करते 2005 में जो हमारा कार्य स्वामी जी ने जब तभी दिया था कि आगे जाके स्वामी जी की जो मूर्ति बनानी थी 2005, वो कार्य हमको दिया गया कि आप उसके लिए मार्बल का पत्थर ढूंढने के लिए आप जाओ. तो मैं अभी मार्बल की अनुभूति बताता हूँ कि हम जब 2005 में हम लोग पत्थर ढूंढने के लिए गए थे, तो हमको पत्थर का सही में नॉलेज नहीं था कि कैसा पत्थर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए. तो कुछ थोड़ा सा हमको वहाँ के एक लोकल साधक था नवसारी का, जो शायद अब्रामा का था या कहीं अमलसर का कोई था. उसने बताया था कि आप पत्थर ऐसा देखना कि उस पत्थर में कोई भी लाइन नहीं आनी चाहिए, कोई धारी नहीं आनी चाहिए, और एकदम पत्थर प्लेन होना चाहिए, एकदम वाइट होना चाहिए. इतना ही बताया था. वो मार्बल के जो व्यापारी होते हैं जनरली वो कैसे करते हैं, तो वो पत्थर आपको दिखाएंगे और उसके दागी वगैरह जो भी रहती है, कुछ काला दाग पर रहता है, चिन्ह रहता है, वो पीछे इस तरह से छुपा के रहते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा. पर स्वामी जी की कृपा देखो कि हम जो भी पत्थर देखते थे तो कितना भी छुपाए हम उसको पकड़ लेते थे. नहीं, इसमें पत्थर बराबर नहीं है, इसमें पत्थर बराबर नहीं है. हम करीबन 8 दिन तक अजमेर में रहे पत्थर ढूंढने के लिए. इतना दिन कभी कोई रहा नहीं होगा. पूरे अजमेर में हमारी लाल गाड़ी फेमस हो गई थी कि ये अजमेर इनके पत्थर नहीं है. फिर हमको बहुत मुश्किल से एक जगह पत्थर मिला, जो हम पत्थर ढूंढने के लिए गए, और एकदम सफेद पत्थर, जिसकी वो ज्यादा करके यहाँ बेचते ही नहीं है, वो पूरा एक्सपर्ट ही होता है कि यहाँ जितनी भी मूर्तियां बनती है ना, उसमें कुछ न कुछ आप मूर्ति को सही तरह से देखेंगे ना, कुछ कालापन होता ही है. स्वामी जी को ऐसा पत्थर चाहिए नहीं था, एकदम प्लेन, कोई भी दागी नहीं, कोई कुछ नहीं. तो इस तरह से स्वामी जी ने हम जब पत्थर चुनने जाते थे तो वो लोग बोलते थे आप तो बहुत बड़े जानकार हो, आप तो कई सालों से मूर्तियों का काम कर रहे हैं. तो अभी उनको हम क्या बताएं, मूर्ति आए हैं तो स्वामी जी की दृष्टि है, और वो उनका एनर्जी से हम एनर्जी कार्य करें. तो मेरा इसमें ये भी एक बताने कार्य है कि हमने बहुत सारे गुरु कार्य किए होंगे, पर सही मानों में गुरु कार्य गुरु ही करवा लेता है. हमको स्वामी जी मोहरा बनाते हैं, चलाते भी वही है. जैसे हम चेस खेलते हैं तो मोहरे का कुछ काम नहीं होता, चलाने वाला दूसरा ही होता. तो इस तरह से जितने भी कार्य हमने किए, जितने बहुत कार्य गुरु कार्य कराए स्वामी जी ने, तो सही मानों कार्य वही करता. आज भी देखो ना, आज कितने ट्रस्टी बदलते हैं, हर साल में 3 साल में नए ट्रस्टी बदलते हैं. तो चाहे जूना और पहले का ट्रस्टी होगा, अभी का ट्रस्टी, सबसे स्वामी जी कार्य करवा के लेते हैं. आज किसी की ताकत नहीं कि चलो मैंने इतना कार्य किया मैं कर सकता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है. तो गुरु सत्या ही कार्य कराती है कि हमने यहाँ से सीखा मार्बल से कि नहीं, हमारी कोई दृष्टि ये ऐसा हम पत्थर चुन सके. ये यहाँ से आपको समझने की जरूरत है कि स्वामी जी का कार्य किस तरह से होता है, कैसे करवा लेते हैं, और उसके पीछे की अनुभूति तो मैं बताऊंगा ही, जो आपने अभी दिखा. जरूर. तो this is very important experience of Pratap Bhai, that when they were looking for the marble to make the living statue, और या मंगल मूर्ति जिसे हम कहते हैं, living statue of Gurudev Baba Swami. This was during the time when Swamiji first wanted to make the first energy statue. They went to Makrana, which is the place in Rajasthan, very well known for the marbles, and they were looking for the stone. As you see, every stone has some sort of black line or black
image inside. And Swamiji was seeking for a marble that is pure white marble, and it was very difficult to find that kind of marble. But Pratap Bhai went with one of the sadhak, and one of the sadhak from Abrahma guided Pratap Bhai that if you are looking, you want to make sure that there is no such black spot in the white marble, and it is very difficult to find. Sometimes it is hidden or you will not see it, so you may want to turn around the marble and see it properly that it is a good quality marble. So Pratap Bhai was going from one place to another, from one rock quarry to another rock quarry, to find out where I can find the clean, good vibration marble. And their red car was very famous. People, the marble suppliers started knowing that these people came, and they started giving compliment that, boy, you guys are very professional and knowledgeable people. You know what you are looking for. The Pratap Bhai started laughing that how can I get that credit? How can I take that credit? It is my guru who gave me the information, who gave me the knowledge, and who is making me just a medium or using me as an instrument to get this job done. And this is the message for each and every sadhak who are doing Gurukarya. When we are going out and when we are doing something special for Gurudev or for Samarpan family, you are not doing anything. It is in fact a guru who is doing the job through you, and everything is happening. This attitude will always keep us away from the ego, and this will help us to progress in our spiritual journey. Very, very important. So that is the very important message or teaching that he learned from this experience, and we will move on the next one. Very beautiful anubhuti, Pratap Bhai. आगे बढ़ते हैं. You are muted. आप लोग muted हो. Unmute करना. Microphone. हाँ, अभी आवाज आ रही है. हाँ हाँ हाँ. अच्छा, वो अभी 2005 की और एक अनुभूति आपको बता देता हूँ. हाँ जी, हाँ जी. मेरे लिए वो दूसरा जन्म है. 2005 में मकराना से हम वापस आ रहे थे. मकराना से पत्थर का जब होने के बाद में वापस आ रहे थे, तो करीबन शाम का 9:30 का, रात का 9:30 का समय था. तो स्वामी जी का फोन आया. उस टाइम पे व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, फोन ही करते थे डायरेक्ट. तो स्वामी जी का फोन आया कि आप कहाँ हो. तो हम बोला हम श्रीनाथ जी से 1 घंटा पहले है. तो बोला आप श्रीनाथ जी मत जाओ, अभी यहाँ के यहीं रुक जाओ कहीं भी. तो बोला यार यहाँ कहाँ रुकेंगे, रास्ते में कहीं रुकने की जगह ही नहीं थी. तो हमने श्रीनाथ जी से अभी आधा घंटा ही था शायद, तो हमने आधे घंटे में पहुंच जाएंगे. तो हमने कुछ इतना बात को सीरियसली नहीं लिया और हमने गाड़ी चलाते रहे. और उस टाइम पे कोई भी ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा रास्ता था. हमारा ड्राइवर की गाड़ी एकदम सीधी जा रही थी, ऐसे राउंड हो गई पीछे, मतलब पीछे हो गई पूरी. आगे जाने वाली गाड़ी पीछे हो गई. कैसे हुआ, क्या हुआ, हमको समझ में नहीं आया. फिर हमने एकदम ट्यूबलाइट, स्वामी जी ने हमको बोला आगे नहीं जाना है. हम क्यों जा रहे हैं, ये शायद कुछ तो कारण है. इसलिए गाड़ी ऐसे पूरा आगे जाने वाली एकदम पीछे हो गई, उसका मुंह पीछे हो गया एकदम. तो हमने पूरी टर्न हो गई, फुल टर्न हो गई. और फिर हमने उसी एक थोड़ा सा ऐसा ठीक ऐसा मिला, हम वहाँ रात को सो गए. और सोने के बाद में चला अभी आगे ड्राइव नहीं करना है, ऐसे करके हम वहीं सो गए. और दूसरे दिन सुबह हम उठे, और उठने के बाद में हम नवसारी पहुंचे शाम को. और शाम को हमको स्वामी जी ने बुलाया, बोला कल तुम्हारे साथ मुझको बॉम्बे आना है. कल बॉम्बे जाने वाला हूँ. हाँ कल बॉम्बे जाने का है. बोला मैं तुम्हारे साथ में आऊँगा. ठीक है, ऐसी बात हो गई. और सुबह में तैयार होकर ड्राइवर और मैं हम स्वामी जी के यहाँ सुबह 5:45 बजे पहुंच गए. 6 बजे निकलने का था. 5:45 के हम 15 मिनट जनरली जल्दी पहुंचे. हम पहुंच गए. पहुंचने के बाद में स्वामी जी ने पहले तो ड्राइवर को बुलाया, खबरदार गाड़ी 60 की स्पीड से तुमने आगे चलाई. तो ड्राइवर बेचारा घबरा गया, वो तो हमेशा 60, 70, 80 के नीचे चलाता ही नहीं था. तो बोला ठीक है, तो उसको पहले से समझा दिया. फिर हम लोग बैठ गए. बैठने के बाद में
हम एक होटल आती है, वहाँ हम नाश्ता करते हैं, पारसी डेयरी करके जगह है, वहाँ करीबन 1.5 घंटे के बाद में आती है। तो हम 7:30 बजे वहाँ नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद में हम स्वामी जी से बातें कर रहे थे, और हमने मृत्यु के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, स्वामी जी उसके आंसर दे रहे थे, और स्वामी जी बोला पूरा टाइम मृत्यु के ही मैं कुछ ना कुछ उनके साथ बात कर रहा था, अधिक मृत्यु, भविक मृत्यु, सारे पूरे मृत्यु के हिसाब से मैं बात कर रहा था। और करने के बाद में हमारा कुछ 1 घंटा वहाँ बैठे रहे, उसके बाद में हम निकलने के बाद में हम जैसे आगे बढ़ रहे थे, और गाड़ी एकदम 60 की स्पीड से 50 की स्पीड में, बहुत कम स्पीड में गाड़ी चल रही थी, कोई भी गाड़ी एकदम वो नहीं चल रही थी। जब थोड़े आगे गए तो हमारा ड्राइवर ने एक सलिया भरी हुई ट्रक है, उसको ठोकने की कोशिश की, लगाने उस गाड़ी को, और एकदम ऐसे लगा कि अभी चपक ही जाएगी। तो मैं एकदम जोर से चिल्लाया, मतलब तुम ड्राइवर क्या कर रहे हो करके। तो उसने राइट लेफ्ट किया, उसको ब्रेक मारने को भी नहीं हुआ, और लेफ्ट से थोड़ा सा टच हो गया बैरियर को, और गाड़ी वहां टच होके रुका दिया फिर उसने। और हम लोग शांति से सोचे कि क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, स्वामी जी साथ में है। स्वामी जी तो हमेशा बोलते हैं कि आप, मेरी गाड़ी का तो एक्सीडेंट भी नहीं होता, और ये कैसे हो गया, हम ये सोचते रहे। हमका अगले दिन का भी वो उसको मगज में नहीं आया। जैसे भी करके हम पहुंच गए, पहुंचने के बाद में बॉम्बे पहुंचे, स्वामी जी ने कुछ नहीं बोला। फिर हम एऊर स्वामी जी को छोड़ के मैं वापस फिर दूसरे दिन गया स्वामी जी से, एऊर में मुझे बुलाया था, मैं गया। तो स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आप तो हमेशा ऐसे बोलते हैं मेरी गाड़ी का तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, और ये कैसे हो गया। बोला ये तुम्हारे पे 3 दिन से तुम्हारे ऊपर आई हुई थी, इसके लिए मैं तुमको उसी दिन बोला था जो श्रीनाथ जी में, कि तुम गाड़ी वहां रोक दो। मुझे उस टाइम से पता चल गया था कि तुम्हारे ऊपर आ रही है कोई। तो हमने वो उधर भी नहीं सुना। उसके बाद में मुझे जब मालूम पड़ा, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ बॉम्बे आने का प्लान किया, जो मेरा प्लान बॉम्बे आने का था ही नहीं, मगर तुम्हारे लिए खास में बॉम्बे आया कि तुमको अकेला में नहीं जाना देना था। इसलिए मैं तुम्हारी गाड़ी में फर्स्ट टाइम कार में बैठे, और कार में बैठने के बाद में, इसलिए मैं घर पे सबको बोल के आया था, मैं खुद का व्हील बना के आया था। स्वामी जी ने बताया कि मुझे कुछ हो जाए तो भी चिंता मत कर, मैं व्हील बना के छोड़ कर अपना खुद का व्हील बनाया उस टाइम पे स्वामी जी ने। गुरु माँ को भी बोला था कि आज शायद मेरी मृत्यु आने वाली है, आज यहाँ तो कोई साधक की मृत्यु आने वाली है, तो मेरी नहीं, साधक को मृत्यु बचाने के लिए मेरा भी हो जाए, तो इसके लिए उन्होंने व्हील बना दिया। मतलब ये सुन के, ये बोलने में इतना आसान लगता है, मगर वो इतना आसान शब्द नहीं है। और ये जब स्वामी जी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पे इतनी आई थी और इसके लिए मुझे आना पड़ा, तो तुम्हारे साथ आना पड़ा, तो सुन के सही मानों में मुझे इतना जब स्वामी जी बोल रहे थे, तब मुझे सही में ऐसा फील हो रहा था कि स्वामी जी ने मेरे को दूसरा जन्म दिया है करके। ये 25 नवंबर 2005 मेरे लिए वो दूसरा जन्म है। और ये अनुभूति स्वामी जी ने 2005 की महाशिविर में, राजकोट महाशिविर में भी आपने बताई होगी, नाम नहीं लिया मेरा, तो स्वामी जी ने बताया हुआ है। सही है। वेरी अमेजिंग अनुभूति आप कह रहे हो, और सबके दिल जैसे थाम के रख दिए आपने। तो many of us have heard this experience of Pratap Bhai in 2006 Rajkot 2005 December Rajkot Mahashivir, because this experience happened in November 25, 2005, and within a month Swamiji had the Rajkot Mahashivir in 2005 December. So it happened so that we were talking about the Makrana marble tour, and Pratap Bhai was traveling. Swamiji sensed that Pratap Bhai's life is at the verge of end, and Swamiji called him right away and told him to stop traveling and come back, not to go any further from wherever he is. And Pratap Bhai says that it was almost like we were driving 9:30 in the evening, and we continued going a little bit further, and just disregarded what Swamiji said, that okay, after finishing this much distance, we will stop and we will return. But in that time, the Guru energy's attention was so powerful to catch them into their words. Something happened, and the driver lost the control, and the direction of the car almost reversed. It is like a U-turn, and it went in the opposite direction. So for some reason, this made them realize that we should have listened to what Swamiji said. They took the break,
Next day, Swamiji said that passed by Navsari. So they went back on the way to Mumbai to Navsari, met Swamiji, and next day they traveled back to Mumbai. But Swamiji says that I'm coming with you to Mumbai. He was surprised what's happening. When Swamiji sat in the car, Swamiji told the driver, make sure the car does not go higher than 60 kilometers per hour. He has to be careful. So they were talking. Pratap Bhai and Swamiji was in the back seat. They were talking, and driver was driving. Suddenly, a point came when a heavy truck loaded with the iron bar, as you can see in this picture, was going further, and driver lost some control, and he almost hit this truck, but he pulled on the right side near the pavement, and little bit of scratch happened, but nobody was injured. And Pratap Bhai scolded the driver, what are you doing at that time? But they were safe. Driver got back his control, and they drove back and reached to Mumbai. Next day, Swamiji said to the answer of Pratap Bhai. Pratap Bhai said that Swamiji, you told that in your discourse that no matter where I am traveling, with whom I am traveling, there is no accident that can happen in my car. So how come we almost went through the accident yesterday? So Swamiji then explained that for last 3 days, what we call in Hindi, मृत्यु की घाट होती है. That was the kal or time that was destined for him. But since Swamiji sensed it, Swamiji wanted to be with Pratap Bhai and protect through his aura, through his grace, to make sure that he is safe and he is protected. This experience became part of Swamiji's discourse from the next Mahashibir. And Swamiji shared this story while explaining how there are 3 types of death: Adi Bhautik, Adi Devik, and Adi Atmik. Okay? Adi Bhautik death is the death when some sort of medical treatment, some sort of doctor, some sort of financial help is going to protect you. Material world thing is going to protect you through your karma, through your achievement, through your success. That is Adi Bhautik Mrityu. Adi Devik is a guru or a master or a saint share his punya karma with you and try to protect you from that death. Adi Atmik is the ultimate. In this, your soul is on its way to be liberated from the cycle of birth and death. That is destined, you cannot escape it. And when that time is there, you don't have to worry because you are not attached to the world, you are not attached to the birth and life or Moh Maya, what we call. So this is the anubhuti of Pratap Bhai that even strengthen our faith, why we should be doing meditation, why we should be connecting our soul with the collectivity of pure soul that we are seeing in the Samarpan family. Swamiji says, today I am alive and the energy is in the physical body form as well as in the collectivity of soul. But tomorrow, Gurudev's subtle body and energy can be experienced only in a collective, soulful relationship of sadhaks. We want to stay in that soulful collectivity as much as possible so that we can avoid this kind of calamities or accidents or problems in our life. And we can purify our chitta, we can strengthen our aura, and we can always benefit from the Samarpan meditation like that. Very amazing and inspiring anubhuti. Thank you, Pratap Bhai, for sharing that.
आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक बात कर लेता हूँ जरूर। कि अभी हमारे सन इन लॉ दामाद जी वो भी गुरुकार्य से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, अभी लंदन के अंदर है और उन्होंने उनका कोऑर्डिनेटर थे, अभी लंदन के आचार्य है। अभी उनका फ्लाइट है या गोवा से उनका अहमदाबाद जाने का, तो उनकी कुछ अनुभूति है, तो मैं बोलता हूँ कि पहले उनसे आप थोड़ा सुन लो क्योंकि अरे उनके ये तो बहुत ही अच्छी बात है पारस भाई। हाँ, तो उनको जय बाबा स्वामी जय पारस। जिनेन्द्र, जय बाबा स्वामी। Welcome, welcome. May I request our volunteers to make Parasji our co-host, so he can Yes, share. yes, he is co-host and he's yeah, we are set. Jai Baba Swami, Jai Jinendra. जय बाबा स्वामी, जय जिनेन्द्र। I don't know you can see my video or no. No, we Probably I can must see try it. you are with the seat belt. You are driving, I believe. Now is better. हाँ जी. So the direction changed. You have to Okay, keep the lens towards you. हाँ अभी ठीक है. Now it is fine. So I want to introduce Parasji. He is son-in-law of Harshaji and Pratapji. He lives in London, England. Go ahead, Parasji. Well, there's a lot of experience. I don't know where to start. The one thing which I will start is how I met Jinali. So this is where the real game-changing for my life. And this is how I got connected through Samarpan, and that's how my journey began. It is where we met, we live in the same building, and we were friends, and that's how we got connected, and we were friends. And one time, she told me that let's go for a shibir chal rahi hai, to chalo shibir mein jate. So I as a college young chap that time I used to say नहीं ये सब बाबा बिलीव नहीं करता हूँ, but he said let's चल एक दिन चलते हैं करके. So then that time, that was the first day when I got introduced to the Samarpan meditation through Jinali. So Jinali was the key to take me into that direction. I was not more into spiritual, nor more into any of these sessions which I used to go. But then that were the thing. It was the first time which I got connected. Then I didn't feel anything. That was just the start. One day went. Then I eventually met. Was it in Mumbai? It was in Mumbai. That time I was in Mumbai. Yeah. Right. So that was in Mumbai, and it was the first time I did the 1 day shibir. And then eventually after that I connected to a 8-day shibir. Coordinately उनके घर में ही 8 दिन का शिविर था. तो ये सब हुआ कि भी 8 दिन का उनके घर पे शिविर हुआ. So that time I was in my final years of graduation, and the incident which has took place, which is a game changer, and which is me and my friend, we both did the 8-day meditation, and my friends who were teaching me, we were doing a group studies and we were teaching me, they all failed and we too passed, and with the good numbers. So the thing is, small experience, but still the life has been going. Then we got married. Got married at the Dandi ashram. So how the things have changed when you connected to Swamiji, one after the other, you will get the hurdles, you will get the lot of challenges. But if you have a faith, I would say, then there is no will, there is no way that it can be stopped. So Jinali told me 3 times, no, I will not marry you. But I was very instinct that yes, I will marry you. So things have changed. The Swamiji, he said, until Swamiji say yes, I will not marry you. So then I specially flew from UK to India to meet Swamiji, because Jinali was instincting, once the Swamiji meets, he tells you yes, then only I will marry. Areva. That is the dedication. So, that is the Samarpan. That is the Samarpan. And then I think Swamiji did set some of the discourse. I don't remember. कि एक लड़का आया था, उसने मुझे मिला था और फिर उसकी शादी हुई थी.
हाँ, तो स्वामी जी ने कहा फिर, हाँ तुम ले जाओ, कोई बात नहीं। तो आजीवन आजीवन साधिका है, उनकी बेटी है स्वामी जी की। So that time when it was in Dandi ashram, the whole atmosphere, when Swamiji said yes, the atmosphere was so amazing that you feel like it was in another world. The whole Dandi ashram was, everyone is celebrating, everyone is distributing the sweets. So it was not a wedding, but it was just when he said yes. So, so that is small experience. This is a beautiful experience and very inspiring experience. Jinali is not just daughter of Pratap and Harshaji. Jinali is daughter of Swamiji and Guruma also. If you can keep back this wedding picture, I would appreciate that. Why I am saying that? Swamiji's elder son Anuragji is also getting married in the same wedding ceremony that Jinali and Parasji got married. And you are seeing these beautiful photos of these two couple. Jinali is also here now on the video. It is amazing to witness how many lives Swamiji is touching and how many young people are coming and becoming part of Samarpan mission. And what a level of dedication, Jinali, I hats off to you for having that much love and dedication, because in today's time, there are children who don't even want to listen to their parents. You have that much love and dedication, Samarpan to Gurudev, that mere Guru nahi swikarenge, to main tujhse shaadi nahi karungi. I believe that is a big signature of Samarpan in one's life at that age. And today, Paras is taking care of the center in London, UK. Is that right? Yeah, so I was a center coordinator, then I was an area head. So now my term has finished in the May end. But yes, we have been connected through a lot of Jain's organization. So I'm currently leading and supporting that project. Very beautiful, very beautiful. And that is amazing. I would, do you have any other thing to share before you get cut off from this? There is lot of the other things, but I would say continue, because then uska koi end nahi hai. You will keep on adding more things. एक काम कर दो ना, मैं आपको लॉक कर देता हूँ। फ्यूचर में जब भी आप दोनों तैयार हो तो आपका पूरा एक सेशन बना देंगे और बहुत अच्छी मजा करेंगे। How about that? Definitely. Anytime, anywhere say. Thank you very much for taking out. Thank you very much for sharing this time and anubhuti with us. And let me request Jinali to say 2 words, or probably Jinali, if you are home, you can join us while we are coming to that question. Jai Baba Swami, we can cover the question of Jinali ji here itself. Okay. With also Paras ji and Jinali, Prince. Jinali, there is one thing I can tell you in This is Samarpan. I rely on Sonal ji's words as much as you relied on Swami ji's approval. तो उन्होंने कह दिया यानी कि मुझे करना है, कोई बात नहीं. So tell us a little bit about you and your Gurukarya, Jinali. Jai Baba Swami. I will just say that Gurukarya, we don't do Gurukarya. It just happens, and it's the dedications that we just need to surrender, and it should just happen, and it just happens. I did like as my parents told already that. You got muted, Jinali. Hello, now you can hear it? Yes, now we can listen to you. Yeah, so I will just say that Gurukarya is we don't do Gurukarya. Gurukarya is done if we just surrender ourselves. Swamiji just make us a media. Like my parents already said that they were involved. First, I was also not happy that why are they behind some of the Babas. So that was my opinion. But as a child, we can never say anything. And like I didn't say anything. And I took whatever they said, whatever they told me to, I continued that. They told me to, let's go for Guru Purnima, let's do the Gurukarya. Things was going on.
But the incidents that my father told of 25th November 2005, that incidents changed the life. That if a person can give a like he can save someone's life, yes, Yes. then that's it. Then he is something. He is not just a normal person. And Absolutely. then after that, that's what Paras said, that then that decision made me stronger, that if he knows everything about your past and future, so without his permission I will not go ahead, because for the time being I think that is right, but that can't be the right thing for my future. Very, very true. Very practical and very wise decision that you made. And I see the same level of serenity and stability in your mind and in your words as Harshaji. Very grounded personality. I like that. And it is very, very important in our life. Whatever we are doing, we understand, because that is what Swamiji also says. Whatever you do, regardless of who is telling you, whether your parents or what, you have to have that inner voice, inner feeling, inner guidance that we have heard in Pratapji's story, Harshaji's stories, Paras, or even you. It is very important that your soul is guiding you and you feel that this is something for me, this is something that is right for me or my family, and you follow that. So your words are $1,000,000 for our young generation, simply because it is worth following and understanding for anyone. And this experience of life-saving experience for your father literally awaken your mind and your consciousness that if somebody can really protect you from the life death situation, then that person is really enlightened or heightened person. It is a different level of personality. It is extraordinary, not just ordinary person. Very, very true. So I see of Bhadreshwar with Swamiji and Guruma in Scotland, UK. You can see that? Yeah. So Memories with Paras and kids and yeah, we were lucky in the situation. I just want to share one experience, that when I was pregnant and when I was in India, Swamiji came to our house and he was talking to father, and but we think that Swamiji is talking to someone else, but we are sitting next to him, but he was giving vibrations. And then I was feeling the kick of my baby, and then he suddenly said that teri beti teko kick kar rahi hai, your daughter is kicking you. And everyone was surprised. I was knowing that I'm going to have a baby girl, but everyone was surprised that while he was talking to somewhere, he's giving energy to somewhere else. And that kick and everything was filled. He was giving that energy. I can feel that. This is a photo of then after that I was very, it was a good opportunity, or you can say it was a blessing, that both my kids were named, was given by Swamiji. So that was a fortune again by, and even the first Annaprasanna, that has been important for the first child. So that was given by him. And in 2013, Swamiji met Priya after so long. And then it was in 2016 when Guruma came, and we went to, it's 2016, not 17. And then at that time I was pregnant with Puneet. No one knew, because it was my first 2 months of my pregnancy. But I think Swamiji was knowing about it, and I was fortunate to do lots of Gurukarya at that time and go with Guruma on that Scotland trip also. And it was really like we involved lots of people for doing that Gurukarya, but to come and have a chance to go on a holiday. But it was fortune to go with them on a holiday with them. Very beautiful, very beautiful. तो गुरु सर्वज्ञानी अंतर्यामी है, और गुरु के प्रति जितना हमारा समर्पण बढ़ता है उतना ही हमारा जीवन बदलते रहता है. I am so happy to
hear your stories. As I will, yeah, just the last one I will just share. In 2006, I got the fortune to do the Gurukarya in Kutch. The place where we were staying, it was a hunt. I don't know, but it was a haunted place. There were 13th souls, which we say Banjara. The dancers came and where they died there many years ago, and we were staying there. But when you are there for the Gurukarya, me and other sadhika felt we were the only two girls in that village, and we felt that some energy, some bad energy, some soul going on, some atma going on from there. And then we closed the window and we put Swamiji's photo. We were staying there for 1 month. With all other sadhak also came later on for Gurukarya. We stayed there 1 month, and after that, when Guruma came and stayed there, Guruma told that there are 15 souls there waiting, like were there, and you were staying with them. It was only Swamiji's protection who protected you from there. Absolutely, absolutely. So this is Banjaras are like nomads who travel from one place to another, and some ghostly spirits were living in this place. And these two young girls, including Jinali, our star, was living in that place, and they were protected. It takes a lot of courage when you experience this kind of spirits and their negative energy or their presence. Not all of them are bad spirits. They are not harmful. I want people to realize that not all the ghostly spirits are bad people, or they know that when somebody who is enlightened or who is connected to the divine energy of a living guru who can liberate, they try to be around you simply because through you they can have access. It is like a green card. They can have access to the guru energies. So as young girls and inexperienced sadhika, they could feel the energy, but they could not understand much about it. When Guruma came and stayed there, she felt the energy of 13 to 15 different souls, and they got liberated eventually after when Swamiji gave the workshop and came into that township. So this is the power of Guru energy, that Guru not only liberate or saves your life, but Guru can liberate even the departed souls. Amazing, amazing anubhuti, Jinali. This was Chaitanya Mahotsav 2006. Yeah, Chaitanya Mahotsav 2006, and in 2006, yeah, this is a Gurukarya which I was talking in the same village that these things happened. We have the picture of the palace also, if I'm not wrong. Next slide, can you go? Did we remove that picture? It's okay, no problem. Go back to that. Yeah. So it was in Mandvi, right? Yeah. And that is also near Kutch. That's in Kutch. Right. Okay. So this was the workshop in Kutch, and Jinali, like her mom and dad, was fortunate to be part of bringing Guru energy in that area, and she stayed there almost for 1 month for doing Gurukarya. Yeah. That's an amazing level of dedication. And you got recognized here. What is happening here in Chaitanya Mahotsav? It's the prayer center that we have right now. That was a donation. So for the Pratna Dham. That was a property paper of that property. Oh wow! So very good. Yeah, so it was in 2006 that I got, like, I went in the ashram, and then we brought the property, and that was given in November, Chaitanya Mahotsav 2006 to Swamiji. Very beautiful. I remember Rupam Choksi telling me more about this, that before
People used to call him because he was always with Swamiji, and Swamiji says that we should have the Pratna Dham, and it is with the grace of Guru, of course, because he is doing that. But those sadhak in the earlier days, like Pratap Bhai, Rupam Choksi, all of you, Sanjay Soni, they were all so dedicated that they made all these Swamiji's dream and projects materialize. And thank you very much for all those souls who contributed and make this kind of activity today to benefit the entire world. So many people are benefiting from the prayer center or Pratna Dham today. So this is the history. In fact, these are amazing photos and memories that we are getting today. Thank you. आगे बढ़े. Thank you, Jinali, and thank you, Paras. Jai Baba Swami. Can we invite Prince Ji also at this point if he's available to share his magnificent after 10 minutes. Okay, sounds good. So we will take a break here, and आप लोगों को, and we'll cover upcoming, and then whenever in 5 minutes you can join back and resume. Zarur, zarur. Thank you. Jai Baba Swami, everyone. I hope everyone is enjoying this episode full of anubhutis and miracles. We would continue this further, but for now, I want to call upon Sagar to tell us something about upcoming events. Jai Baba Swami, Jai Atmeshwar, thank you, Ashwarya. This talent show is going to be not next Saturday, but next Saturday. And we aren't receiving any more entries for the talent show, but it's going to be a fun-filled talent show with a lot of participants showing their bhav to Gurudev. And so that's why I request you from the talent show team that please come to watch this talent show on the Zoom meeting. All the details are provided on the slide above. Thank you, and now back over to Ashwarya. Yeah, thank you, Sagar, so much. We have such a wonderful talent show that we have every time. Can we have Jigarji to tell us about our next event? Hi, Jai Baba Swami, everyone. Before I start, I might want to share one thing. So I started my Samarpan journey with Paras and Jinali when I was in the UK. So that is how I started my Samarpan journey. Paras and I used to be the friends, and then they got married, and then I was actually with them in the UK until year 2009. So that is just one, amazing thing that has happened to not only their life but my life as well. So I just wanted to share that. I just wanted to talk here about the e-newsletter, just to let everyone know that we have America's own website, and on our website we publish e-newsletter which gives all of the different informations on the activities that happens in USA, in Americas particularly. And we also have an option to sign up to receive this e-newsletter via email. So we generate this e-newsletter or publish these newsletters once every month, and that gets delivered directly to subscribers' mailboxes, or you can also access copies on our website as well. So if you have not signed up, if anybody is interested in learning more about activities that happens in the USA, please go ahead and sign up on our website. Thank you so much, Jigarji. Thank you for especially mentioning your connection with Jinali ji and Paras ji.
such a loving. I hope it reminded you of your experiences. Absolutely. Beautiful, beautiful connection. Can I have Krishna ji for some other announcement? This one also needs to be announced by Jigarji, 2 slides. So if you can come back. Yeah. Newsletter subscription, please. Previous slide. So here is the details about Madhu Chaitanya. So as everyone knows, for almost like last couple of years, Madhu Chaitanya physical copy was not being published and it was only being available electronically. But since, COVID has been going away, and we are so fortunate that the editorial board is resuming the publications of actual physical copy of Madhu Chaitanya. Madhu Chaitanya is a global magazine that provides all of the information about the Samarpan meditation. There are plenty of Swamiji's and Guru Ma's messages and so much spiritual information overall. So if anybody wants to receive the actual physical copy of Madhu Chaitanya magazine, please make sure that you sign up by using the provided link. The amount for subscription is $25 for a year, and this is a bi-monthly magazine, so we would get 6 copies in a year time. It is also available in 4 different languages: English, Hindi, Marathi, and Gujarati. And as a matter of fact, now for Madhu Chaitanya magazine itself, since its start, the 100th issue is going to be released. The next issue is going to be the 100th one. So if anybody has an interest in signing up to receive a physical copy of Madhu Chaitanya magazine, then please make sure to sign up. We have shared this particular link on various different WhatsApp groups for sadhaks who are in Americas. And if anybody has any questions, they can also reach out to me directly if you want to ask any specific questions. These are going to be delivered directly at the addresses provided. And you can also sign up to give it as a gift to your friends, to your family. So make sure everybody signs up for Madhu Chaitanya magazine. I'll share my phone number here as well in the chat window, so that if anyone has any questions, please feel free to reach out to me. Jai Baba Swami. Now, can I have Krishna ji, please? Thank you, Jigar ji, so much. Jai Baba Swami. Samarpan Meditation USA does offer Bal Vikas classes for kids between age group 4 to 12 years, which is happening every Sunday. Starts at 4:30 p.m. Eastern Time, or 3:30 p.m. Central Time, or 1:30 p.m. Pacific Time. Kids learn a variety of activities such as shlokas, bhajans, stories, meditation, games, arts, craft, and much more from our professional teachers. You can please contact Dara or Priya through one of the numbers which is going to be listed on a slide, or we will be providing it later to contact. So Vishal Bal Vikas Shibir. So Swamiji is having Vishal Bal Vikas, Bal Shibir on a special occasion of 2022 International Yoga Day. This Shibir will be live on YouTube on June 19, 20, and 21, or June 18, 19, and 20 in USA. At 10:30 a.m. and 10:30 p.m. Eastern Time, 9:30 a.m. and 9:30 p.m. Central Time, and 7:30 a.m. and 7:30 p.m. Pacific Time. We would like to request all the parents and children to join this online Shibir.
Guru Tattva is in search for 10 kids. It is possible that you could be a part of Guru Tattva. Jai Baba Swami. Thank you so much, Krishna ji. Do follow these events and try to attend them. They are for everyone, like talent show is for everyone, Bal Vikas is for kids. So we have every event for everyone. I would like to have Hitendra ji back to continue the interview. Thank you. Thank you, Aishwarya. Thank you, Jigar. Krishna ji. We really appreciate your input and promoting the events. I encourage every parents with the young children to take advantage of this Bal Shibir, and it is for your young children, and you are certainly going to like it. Madhu Chaitanya, I myself has been subscribing for all these years from the beginning, and I can tell you, if you want to stay updated with Swamiji's mission, direct messages from Swamiji and Guruma, and all the activities all around the world from Samarpan family, then you should be subscribing for this. Not only it gives good information about Samarpan activity, every month, every second month in this publication, they introduce a living or enshrined guru and their information. So you will certainly appreciate what you are getting from this, and you should be subscribing it. I subscribe for both English as well as Hindi, so that anybody whom I know and are interested in knowing more about Samarpan, in my library, in my collection, they can refer to this and they can know more about it. Myself also, of course. Are we ready, Pratap Bhai, Harshaji? So we were talking about your anubhutis and Gurukarya. And Prince is ready also. Sorry? Prince. Oh, Prince is here? Yeah. So, आइए Prince से बात कर लेते हैं. We will go back to the Prince part. That's very nice. Jai Baba Swami, Jai Atmeswar Prince, how are you doing? You are muted. Please unmute. Mute. Yeah, Jai Baba Swami. Jai Jai Baba. Atmeshwar. Jai Atmeshwar. Good to see you after a long time. Yeah, very long time. Yes. So, who does not know Prince? You are not just Prince of Pratap, you are Prince of Samarpan family. It's all Guru's grace. Yes. You are as loved and respected by the Samarpan family as we respect Anuragji and Amreshji because of your commitment and dedication in Gurukarya. So very, very excited to welcome you to This is Samarpan program, and tell us a little bit about your involvement. I think you became famous with Amreshji's information when he was talking about his tour to Dada Guru's cave, Gufa. Can we put those pictures of Nepal tour? Yes, this was a unique experience. In 2015, when did you go for this Nepal tour, Prince? It was 2017, I guess. Oh, 17. Okay. Yes. So we had some years mentioned wrong here. No problem. We will correct that. And you want to tell us a little bit about it in your own words? So basically, it was mid of summer when we were deciding to go somewhere. So myself, Ambrish and Swati, we all said, and we were planning to go somewhere. So let's go Nepal. So initially, it was not like that. We were planning to go to Shivu, or the cave where Swamiji got his enlightenment. So at that point of time, when we thought of Nepal, so
a moment we thought of going to Shibu also, because many sadhaks have tried to visit that place, or many sadhaks have tried to find that place. But the explanation of Swamiji was it was very different when it was explained, because that point of time various modes of transportation was taken by Swamiji, and it was way back 20-25 years back. After that, various transportation modes have increased, and because of that, it was not easy to find. So it was not in our mind to go to that place till before 2 or 3 days of leaving Nepal. So then Ambriji thought, let us try once more, and let us put a message to Swamiji that if we are over here and we are willing to find this place, so we got approval from Swamiji. It's okay if you want to go. So I am not having that images right now with me on my laptop, or I would have shared it. So when we were trying to find out Shibu, so when we searched on Google Map, it was there were approximately 3 to 4 Shibus in each directions of Nepal. On north also there was one Shibu, on east also there was one Shibu. So we were not knowing which Shibu Swamiji was talking about. So then we thought that let us try to go at least one Shibu. Then point was that if we visit one Shibu, then other Shibu is altogether 2 days far from the previous Shibu which we have visited. So if we try to cover all 4 or 5 Shibus, it will take 10 to 15 days. So then we sat for a few minutes, and while going through on Google Map, as you said that Swamiji gives indication, so there was an drawing of Om, we can say, which was created with the help of nature or with the help of trees over there. And we thought that this Shibu would be this place where the Om is drawn with the help of trees or with the help of nature, because there was no such resemblance of anything else, but the Om was very much clear in that image, in that Google Map location which we found. So we took a decision. We directly left for that place. It took us approximately 2 days by car to reach over there. So we left early morning, and as per the indications given by Swamiji or in his discourses, it was said that various small temples were there in between. So we saw that various small temples in between. We saw that all small temples were there, Ganesh temples and everywhere. After it, when we reached to that place, we asked to a local guide that do you know about some cave in Shibu? So they were not able to express, or they were not able to say, because it was a language barrier. So we had one sadhak, one local Nepali sadhak with us, Tulsi ji. He helped us to translate the things, and with the help of one branch manager of a bank, he was able to say us that there is a place which you are saying it is resembling same, but it is a very old place, so we don't know that whether it is accessible right now or no. So after thinking for a few more minutes and we thought that let us give a shot, and finally and we proceeded further to that place. So when we reached to this village, it was a very small village, so we were not exactly in Shibu. Before that, we had a village which was 5-6 kilometers ahead of this Shibu. And there was a work of dam going on in the nearby place of village, nearby Shibu village. So many people have been they have been transferred from their previous locations. So there were very few places available. So once we reached over there, we thought of asking somewhere local who can guide us. So the basic issue was of the crowd over there, because when Swamiji visited, after that, approximately we visited around 25 to 30 years before that. After that, after 25-30 years, we visited that place. So there were no elderly people available whom we can discuss and describe about the situation which happened 25 to 30 years back. Yes. So when we sat over there, we had a photo of that cave, and we tried to explain that we are in search of this cave. Then you could have seen in the video also, which was released by Amrish ji during the Chaitanya Mahotsav event, Yes. that one of the guy was very much shocked by seeing that cave and said that we will never ever go to that cave because it is very holy cave. Once a girl visited that cave, and because of that, earthquake happened in our area, and it was the epicenter when the earthquake happened in Karnataka, in Nepal, in Kathmandu. The epicenter was that place. So they are saying that
It is very holy place and we would not like to visit that place again. And we also request you should not visit that place again. So after requesting for a few times that we have over here for meditation, and as we feel that this is the place of our Guru's Guru, so we would like to visit, we will not be disturbing anything over there. But they were not ready to help us with that. So there is an association of cave over there. If we want to visit any cave, we need to seek permission from that association. So after finding few contacts, we were able to get a person who helped us to get the permission for visiting that cave. Meanwhile, when we were searching for that permission of searching for that guy for the contacts to help us with that, we contacted few locals and we tried to find out any elderly people available. And luckily, we got one elderly people who was at the age of 45 or 50 right now. But he was at the age of 10 when Swamiji visited the place, visited the Shibu. And by looking at the image of Swamiji, he was not able to recognize him. But when Ambrishji was there, he said that I saw this person. I don't know other person which you are saying, but I saw Ambrishji 10, 15 years back. It was resembling him. So based on what he was explaining us, we understood that Ambrishji's face was very similar to Swamiji's face before 30 or 25 or 30 years. So based on that, when we discussed with the local person, he said that yes, Swamiji has came to this village and this is the same place where you are sitting right now. He slept for a night when he rested for a night. And after that next day morning, we left for the cave. So we were fortunate enough to find that place where Swamiji had come down and rested for a night, because as you see in the description, it was that the Swamiji reached to the village at very late in the night and early morning he left for the cave. After that, with the help of locals, we went to the cave and it was really an amazing experience which I cannot explain further in any words. Yes. And we tried to enter the cave, but as Swamiji has said earlier also, that cave is in the position of closing itself. It is not willing any sadhaks or any other person to visit over there. But what unique experience that I can explain right now is when we were out of cave, the temperature over there was approximately 25 to 30 degrees. But inside cave, it would be below 0 degree because it was ice all over. So it was just matter of one or not even 1 or 2 meter. It would be matter of less than 1 meter. Inside cave, it was ice, and outside cave, it was whole normal temperature. So that spiritual energy we were able to feel over there. We did meditation. Yeah. So we did meditation. We took Swamiji's Sukshma Sharir photo also with us. So we kept that photo over there. We lit a diya over there. And after praying for some time, we did meditation. We spent some time over there. And then we left from that place. So this was glimpse what we enjoyed or what we were able to witness in this Shivu Yatra. Boy. To hear that from somebody who already was there, it itself is very vitalizing, energizing, because you are bringing so much vibrations of that place and Guru's grace. We met Shiv Krupanand Swamiji. We never met Shiv Baba. But from the day I met Swamiji, I have been praying to Shiv Baba and thanking him for giving divine energy, consciousness, Chaitanya, blessings to Swamiji. Because without him, Swamiji will not become who he became. And today, by listening to your story, I feel that it was not Amrishji and you, but it was myself who was there in that place. We can see even in your pictures that dedication, that love and samarpan that you have expressed by going there, by putting Swamiji's subtle body photo and lighting the lamp. May Gurudev bless you for this. It's all Guru's grace. We were fortunate enough to get this opportunity. Right. तो हमारे भारतीय दर्शकों को मैं बता दूं कि अमरीश जी के साथ प्रिंस को मौका मिला. Was Swati there with you in that yatra? No, she was not available. No, she was not.
So this was a unique experience. ये इनके जीवन का एक अविस्मरणीय अद्भुत अनुभव रहा है कि जिस जगह पर स्वामी जी अपने गुरु से मिले, जिस समर्पण की गंगोत्री जिसे कह सकते हैं, वह यह गुफा है, क्योंकि यहाँ से चैतन्य की गंगा हिमालय से सारे विश्व में फैली है। तो ये जो गुफा है, अभी तो ऑलमोस्ट उसका मुख बंद हो गया है, इसमें से किसी को जाने को मुमकिन ही नहीं है। और जो बात हमें यहाँ से जानने को मिल रही है कि शिबू नाम जो है, ऐसे एक नहीं 4 गांव है नेपाल में। तो कौन सी जगह पे जाना और कहाँ पे वो ओरिजिनल शिबू होगा, वह इनके लिए कंफ्यूजन था। सबसे पहला तो ये था। और गूगल मैप पे देख के उन्होंने एक ही संकेत लिया, और वो संकेत, जैसे प्रताप भाई की अनुभूति में हमने ओम के बारे में बात की, वह संकेत था सूक्ष्म और स्थूल शरीर के चैतन्य का, जहाँ पे ओम के दर्शन होते हैं। उनको मैप में पेड़ों की वजह से जो ओम जैसा आकार दिखा, वह उन्होंने संकेत के रूप में स्वीकार किया, और 4 में से एक शिबू गांव को पकड़ा कि हम चलो इस दिशा में जाते हैं, क्योंकि 2 शिबू गांव एक दूसरे से करीब 2 दिन की यात्रा जितने दूर थे। तो उनके लिए यह निर्णय लेना बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने गुरु के चरण में समर्पित करके यह संकेत को पकड़ा और सही शिबू गांव तक पहुंच सके। दूसरी दिक्कत यह थी कि एक संस्था है जो ऐसी गुफाओं में जाने के लिए आपको परमिशन देती है, तो उनका भी परमिशन लेना जरूरी था उनके लिए। वो भी लिया। यानी कि स्वामी जी हमेशा कहते हैं ना, कुछ भी करो कानूनन करो, सही ढंग से करो, कुछ इधर उधर उल्टा पुल्टा गलत तरीके से मत करो। तो पहले तो गुरुदेव की परमिशन ली कि हम यहाँ पे नेपाल में घूमने आए हैं, हमें इस जगह पे जाने की इच्छा है। गुरुदेव के आशीर्वाद मिले तो पहले ढूंढना शुरू किया कि कहाँ कैसे, फिर बाद में ये एसोसिएशन की परमिशन। कितनी दिक्कतें आती है, कितनी सारी चीजें आती है। अगर आपका भाव स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप नहीं पहुंच सकते। दूसरा एक बताया कि जिस उम्र में अमरीश जी वहां पे पहुंचे, उसके 25 साल पहले स्वामी जी वहां पे थे, तो कोई बड़े बुजुर्ग भी नहीं थे जो उनको याद मीन्स ये दिखा सके कि हाँ ये शिबू गांव है, यहाँ से ऐसे जाओ। लेकिन एक बंदा मिल गया जो जिसको याद था कि स्वामी जी भी उस जवानी के दिनों में ऐसे ही दिखते थे। तो बोलते हाँ इस लड़के को मैंने देखा है, अमरीश जी को देख के स्वामी जी जैसा चेहरा है, इसलिए उन्होंने ये कहा। तो ये सब संकेत और ये सब सिंबल जो होते जा रहे थे, इनके सहारे ये लोग स्वामी जी के गुरुदेव की गुफा, शिव बाबा की गुफा तक पहुंच गए। तो इस गुफा के दर्शन करना, ये फोटो के दर्शन करना और इसके चैतन्य को प्रिंस के द्वारा महसूस करना, ये हमारे लिए आज के TIS की सबसे बड़ी गिफ्ट है। और प्रिंस, I would like to ask you, tell us about how and when you really got inspired to be fully involved in Samarpan, because we have heard a lot from Pratapji, Harshaji, and even your sister Jinali. Tell us about what made you dedicate your life also and find your life partner from Samarpan family. Basically, this all went to 2003, 2004. I was Ah. not very much keen in doing meditation or anything like that, but I was keen to do some work. So when exhibition team was in our house, so I was interested. It was computer related work. So I was basically interested to do some work. I was not very much interested to do meditation or follow someone. Right, So right, because right. of that exhibition, when I went through that exhibition and when I read it that slides, and I felt that okay, we should give a try. So it was that point of time when I started following meditation. Yes, yes, yes. So that is another blessing, I would say, that your mom and dad took the initiative for taking that Gurukarya of exhibition, because with that exhibition you were able to get company of some young
members of Samarpan family. And sometimes it is with the association of other, the collectivity ignite you and inspire you to get involved into the Gurukarya. So that is amazing. This is a lesson for some sadhaks family also. And तो अभी तो जिनाली भी आ गई है हमारे सामने. अब आप लोग कैसे मिले और आप लोगों ने ये शादी समर्पण विवाह के जरिए ही की, तो उसके बारे में बताइए. I will let Jinali share that with you, with us. Swati. Swati, sorry. Jai Baba Swami. We were fortunate enough to volunteer in Guru Purnima 2007 when we were supposed to take care of the duties related with overseas sadhaks and overseas visitors, all the facilities and everything. Very nice. I was the local coordinator at Junagadh, and Prince and Janali, they both were taking care of all the sadhak who were arriving. Yeah, so that's how we met and became friends, and we tied a knot. And in 2010, in Samarpan Vivah, and like it's a really fortunate incident that in front of Swamiji and Guru Ma, the holy, the entire wedding ceremony happened. Very beautiful. We have very beautiful pictures of yours here in the PowerPoint. So that is very beautiful. And how you got involved in the Samarpan? So while my engineering, I was studying and I heard about this, and my mother was involved in this. She was volunteering in many programs and many shivirs. So she just there was one small vacation when I visited my home. So she told me that, there is such thing like meditation, and they do work on your chakras, and this kind of awakening happens on its own. So being a logical young person, I completely denied the possibility that any such thing can be happen on its own. So still I thought like, hey, let's just give it a try and let's go. So I myself felt that vibrations and awakening and everything, and then we started getting involved in Gurukarya, and that's how it evolved, everything. Very beautiful, very beautiful. So like we can understand being young and not totally into this kind of path of spirituality. It must be very troublesome or challenging for you to in the initial days. But look where you are today, and look how great blessings Swamiji has showered on you and your family. We can see that. So your son, you want to tell a little bit about him also? Yeah, that's Piyush. And Piyush, aa jao beta. Please come. So I have felt this special connection throughout my entire pregnancy. And of course, I was with the program which Swamiji runs under the pregnancy blessings, that there's Sadhika Gita Pagare, we have to coordinate with her, and that's how all the things work. So whenever I'm reporting to her about my updates, like whatever is happening, how is the medical condition, what is the update, the normal checkups, and after every visit, I used to report to her and she used to report to Swamiji. So the entire process was so smooth that I never felt like it was any kind of challenges in the entire pregnancy and throughout the like till his birth. And probably he's one lucky soul that has got Swamiji's blessings as well. And first time this was the Annaprashan ceremony
Swamiji fed him for the first time. That's when he had food for the first time, other than mother's milk. Wow. So That is real this was the blessing. golden memories. Yes, yes, yes. Yes, and I am so happy that Pratap Bhai and Harshaji have shared so many beautiful photos of every little memories of uh, all the grandchildren and children also. This is amazing, and this shows the dedication. This shows the love, that how much you guys have love for Gurudev and how much Swamiji is blessing your family too. Piyush, તને કઈ કેવું છે? Do you want to say something? You want to say Jai Baba Swami? Yes. Jai Baba Swami. Jai Baba Swami. Very good. So good to see you. And you like તને તારો ફોટો જોઈને મજા આવી? Did you see your photo? Did you see the photo with Swamiji? Previous picture. Go back to previous picture. Yes. Yes, that's very nice. You are so lucky. You got chance to તને સ્વામીજીને ગુરુમા સાથે રમવા મળ્યું. કેટલો નસીબદાર છે તું. જો. Yes. Very nice, very nice. Good to see all this. And Swati, you want to say something else that we did not ask you? That's all. Thank you so much. Thank you, thank you. We really appreciate. Prince, you want to add something? Yes, this was one of the great memory. Prince, in 2020, we did the first time online Guru Purnima to the greatest level. And Swamiji and Guruma were so happy and excited that only 5 people make that program such a great success internationally. So tell us a little bit about this. It was 6 of us. It was basically 6 of us because Yes. Swamiji's settled body was also with us. Yes, yes, absolutely, absolutely. So tell us a little bit about that Anubhuti 2020 Guru Purnima. So basically, when I was in ashram, I was not intending to stay in ashram for a longer period of time. It was during Anushthan when I was in ashram. I was not part of this Anushthan 45 days program, but I used to come and go, and I was very close to Amrishji at that point of time also. So particularly, we were discussing something. We need to do something for this foundation. So that was the first time when we we made a small area, or we made a small office of foundation. It was very first office when we started the foundation office, and everyone was like, "What is this foundation about?" So it was me and Amriji, 2 of us only, to explain everyone what is this foundation about and what is the reason behind developing one more organization when we have other organizations, and why we are developing foundation. So it took us a very long time for explaining everyone about foundation and what activities foundation would be doing in future. And with that, we were facing some issues with donations and everything. Like everyone was reluctant because at that point of time only cash donations was accepted. So Right. we were the foundation was the first one which introduced POS as well as QR code and UPI donations. So we Right. did some activities at that point of time, and then we thought, let us add some more things that what we can develop fast with foundation, and what all activities we can add for Samarpan in foundation. So while discussing, we made list of 26 activities, and we were planning that we will run out these activities phase by phase, like this Himalayan experience which happened last year. So it was prepared in the during the Anushthan 2020. After that, when this lockdown was supposed to announce, we thought that it would be a normal lockdown. See, we were not intending to stay over there for a longer period of time, and we thought, okay, it will be a period of a week or something like that, because earlier it was announced for a day's closure. And after that, when it was announced that it is going to be for longer period of time, and I was in ashram only, so I was like, okay, now it's not possible for me to go back to Bombay. So before anything was decided about Guru Purnima, then
we thought of doing some activities in ashram itself. So I was not close to Swamiji at that point of time. I was just doing small activities, like we tried to develop a Gaushala because it was having some issues. So we tried to fix small things. And suddenly when Swamiji came back from his Africa tour, and he met us, and we were casually discussing everything. It was not something like that. We were planning for Guru Purnima, and suddenly a point came up in our mind that let us take a point and let us make a way to introduce Guru Purnima via online sessions, because Swamiji at that point of time has done have done many online sessions, like a one day shivir or kind of events Swamiji was conducting at that point of time. So myself, one of our sadhak Ramesh, he is also a lifetime volunteer at our ashram. Then Devat and many other sadhaks like Hitesh Bhai and Arshad Bhai. So everyone helped us that we should do something which will help Samarpan to be connected during this crucial time. So we initially started with a mobile stand. With a mobile stand, we started these events of online sessions of Swamiji with various organizations, with various activities we were conducting, various sessions Swamiji has given with the help of this mobile stand. Gradually, we developed our what we say Tools. yeah, Equipment. developed everything. I would like to share one file if it's possible. No problem. Because I just recollected that I have one video with me, which was has sent to me few days back by one of my sadhak. I guess I would not be able to share it. Can I take it from the screen sharing? Make him co-host so he can share. Yes, He's you are already co-host. co-host. He should be able to share. You will be able to share. Okay. Okay. Wait. I will switch on my. Wait a second. Let me just find that video. Then I can start my screen sharing. No problem. This is very inspiring. तो जब तक वो ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2020 की गुरु पूर्णिमा एक पहली ऐसी सेलिब्रेशन, पहला ऐसा एक घटना था, ऐसी घटना थी, ऐसा उत्सव था जिसमें हमने ऑनलाइन ही पूरा प्रोग्राम किया। और उसके बारे में प्रिंस हमें बता रहे हैं कि वो तो अनुष्ठान के लिए गए थे और ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन स्वामी जी जब अफ्रीका टूर करके आए तो फिर बाद में ऐसे ही कैजुअल सामान्य बातें करते करते ही इस प्रोग्राम के बारे में आयोजन और वो सब किया। और दूसरी अनुभूति हम हमारी ओर से बताना चाहते थे कि अमेरिका के साधकों ने मिलकर स्वामी जी और गुरुमा के साथ एक यज्ञ किया था उस वक्त पे। तो जून महीने में जब हमने यज्ञ किया तो प्रिंस वहां पर ही थे, तो अमरीश जी और प्रिंस ने हमें बहुत साथ दिया। लाइव यज्ञ वो भी एक पहला अनुभूति था राम भाई के साथ लाइव यज्ञ करने का, तो जिसमें भी बहुत मजा आया। सो थैंक यू। वो भी एक यादगार प्रसंग था हमारे लिए प्रिंस। Okay, I am sharing this video right now. हाँ जी। We can see it. This was a setup. हाँ जी। ये रमेश भाई लालवानी। This is one of the image when we were trying to do lightning equipment testing, and Swamiji was sitting patiently for us to test everything. Very beautiful. ये सबसे पता चलता है कि कितनी मेहनत जाती है और कितना पेशेंस से स्वामी जी हमें साथ देते हैं। I'm not able to stop my screen sharing. Wait. कोई बात नहीं। We are able to see that glimpse of video. Very beautiful. Thank you for sharing that unique thing.
और इस सब से पता चलता है कि कितनी मेहनत होती है, कितनी तैयारियां जाती है और कितना एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तब जाके इतने सारे लोगों को इसका फायदा मिलता है। और स्वामी जी जैसे उन्होंने उस वक्त पे भी कहा था गुरु पूर्णिमा के बाद, जब आप लोगों को सभी पांचों साधकों को सम्मानित किया तभी भी, और आज भी स्वामी जी मानते हैं कि युवा साधक जब आते हैं और गुरु कार्य करते तो स्वामी जी बहुत ही नम्रता और धैर्य के साथ उनको साथ देते हैं। और स्वामी जी कभी भी नई टेक्नोलॉजी या नए आइडियाज का इनकार नहीं करते, वो चीजों का स्वीकार करते हैं और साथ देने की कोशिश करते हैं। सभी पेरेंट्स के लिए और सीनियर साधक के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो सीखनी चाहिए हमें अपने गुरु के पास से, ताकि हम यंगस्टर्स के साथ नए लोगों के साथ भी कार्य इतनी ओपन माइंडेडली कर सकें। तो बहुत ही I wanted to add one thing, just if we can I talk? Paras here. Please. When Prince, during the lockdown, when Prince was in the ashram, and Prince helped us to, there was a sessions, we did 12 sessions in UK with the help of Prince and all the team in India as well, with the Jain Association, and also from the Maharaj Sahib, who gave the discourse as well, and how Jain Muni got involved into Samarpan meditation. And like Swamiji said in these books, okay, he met Jain Munis in Himalayas, and how now they are doing meditation, even they are doing 45 days meditation in ashram. And that was a key changing how Jain meditation, Jain thing has been developed so much in Mauri, and all this. So with the help of Prince, we were able to do that as well in UK. Very beautiful. Prince has been instrumental as like mom and dad. So so I learned one thing from your story, and I want our audience to notice that not everybody is spiritually inclined. Okay, तो सबको पहले से ही आध्यात्मिकता के लिए कोई रस नहीं जागता है। हमारी जो अभिरुचि होती है, हमारा जो भाव होता है, उस हिसाब से, जैसे प्रिंस को गुरु कार्य में कुछ ना कुछ एक्टिविटी में अपना कंप्यूटर का नॉलेज था, तो उस दिशा में जाने को अच्छा लगा, तो उसने उस तरह से जुड़ गया। आपको जो अच्छा लगता है, आपकी जो हॉबी है, उसको पहले बाहर निखार के लेके आओ गुरु कार्य के जरिए या साधकों के साथ रहकर, और फिर धीरे धीरे ध्यान तो हो जाएगा, समर्पण में आध्यात्मिक प्रगति तो हो जाएगी। ये प्रिंस की स्टोरी से जानना सीखना मिलता है। और पारस जी से भी हमें ये सीखना मिला कि अगर प्यार है भी मिल ही जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि उनको जिनाली से प्यार था और फिर जिनाली को स्वामी जी से प्यार था, तो ये प्यार के जरिए ही उनके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति हुई है। और ये सब देख के अच्छा लगता है। स्वाति ने भी हमें यही दिखाया कि वह मम्मी से प्यार करती थी और मम्मी स्वामी जी से प्यार करते थे, तो उनकी वजह से वो समर्पण से जुड़े, और ये सब बातें धीरे धीरे यंगस्टर्स से मिलने से पहचान बढ़ी और उनका जीवन में मिलन हुआ, समर्पण विवाह तक बात गई, और उनका आज जीवन इतना सुखमय, आनंदमय और आध्यात्मिकता के मार्ग पर भी चल रहा है। तो ये दो कपल्स की स्टोरी सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, वेरी इंस्पायरिंग, equally inspiring like Parasji and Harshaji story. Thank you very much, Prince, Swati, Parasji and Jinali. I really appreciate your journey. Thank you for sharing. Thank you so much for giving us the opportunity. Yes. We will bring you in our live session one time. और डिटेल में सुनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी अनुभूतियां मिलेगी शेयर करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं, गुरु कार्य के बारे में ही आगे बात करते हैं पारस जी, प्रताप जी और हर्षा जी के साथ। क्या आप हमें गुरु कार्य की शुरुआत जो हुई,
आगे बढ़ के आपने आगे का तो बहुत कुछ कहा 2003, 4, 5 का, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं कि आगे कई गुरु कार्य किए आपने और कई बड़े पैमाने पे गुरु कार्य किए, तो उसके बारे में बताइए प्रताप जी। अभी मैं 2006 का एक बता रहा हूँ कि 2006 कच्छ का जो कच्छ का दर्शन शिविर था, तो पहले स्वामी जी को मालूम नहीं था कि मैं कच्छी हूँ करके, तो वहाँ मैं एऊर में बैठा हुआ था और कुछ कच्छी लोगों को बुलाया था, जैसे किशोर कावड़िया जी है, शामजी भाई करके जूस है, ये सब कच्छी है, तो उनको बुलाया था कि आपको कच्छ में शिविर करनी है। तो मैं बैठा था खाली बाजू में उधर, मैं तो कुछ सुन रहा था, सब बात चल रही थी। तो कावड़िया जी ने बोला कि प्रताप भाई भी तो कच्छी है। अच्छा, तो मुझे स्वामी जी बोले मुझे नहीं मालूम था कि ये भी कच्छी है करके। तो मुझे बोला सब लोग मिलके जाओ और कच्छ में आप शिविर करो, शिविर के लिए तैयारी करो, दर्शन शिविर के लिए। तो हम लोग, मैं और शामजी भाई, हम सब लोग गए कच्छ में और शिविर के लिए प्रचार करने के लिए गए। तो शामजी भाई को अचानक, जो शामजी भाई वापस आना पड़ा, तो कुछ कारण से उनको वापस आना पड़ा। हम लोग गए, हम आगे बढ़े, हमारे पास न गाड़ी थी न कुछ भी था। हम एक वहाँ के एक लोकल एक आदमी था, उसकी थोड़ी सी पहचान थी शामजी भाई की, उससे बात करके हमने गाड़ी ली। गाड़ी लेने के बाद में उस गाड़ी की लाइट भी नहीं थी, पीछे का कांच भी नहीं था, और उससे सारा कच्छ के अंदर हमने प्रचार किया। और प्रचार के अंदर कच्छ के अंदर 72 शिविर का आयोजन हुआ। हम लोग क्या करते थे, जहाँ भी जाएंगे वहाँ एक ही बताते थे कि ये आपके समाज के लिए करना है। जैसे लोहाना समाज है तो उनको बताते कि आप लोहाना समाज के लिए करना है, आपके लोगों आपके उनके समाज में आप आइए, हमको आपको कुछ भी नहीं करना है, हमको कुछ पैसा भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको आके बैठना है, आपकी वाड़ी के अंदर आपको बैठना है। हम लोग सब लेके आएंगे, रिकॉर्डिंग के लिए कैसेट आएगी सुनाने के लिए, आप खाली टीवी का अरेंज करके दो और बाकी सब हम अरेंज करेंगे। इस तरह से 72 शिविरों का आयोजन हुआ। क्या बात और मतलब ये बच्चाओं से लेके बच्चा हुआ, उसके बाद में गांधीगाम, मांडवी, कोठारा, नखत्राणा, भूज, और बीच में जो एक उनरोड करके गांव था जो अचानक स्वामी जी ने तय किया। तो हाँ, रापर था, रापर का फिर कैंसिल हुआ था ना, रापर कैंसिल हुआ, बदले में शामजी भाई का एक छोटा सा गांव था, वहाँ हमने शिविर किया था। तो इस तरह से पूरे शिविर का आयोजन हुआ। 72 शिविर, मतलब कितनी एनर्जी स्वामी जी की काम कर रही थी, कितना बड़ा। तो उसकी अनुभूति मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, कच्छ के शिविरों की अनुभूति। सबसे पहले बचाव जैसे पहुंचे तो एक लड़की का अनुभव है, आपको शायद वो फोटो था कि वो लड़की बोल नहीं सकती। 2002 में जो एक्सीडेंट हुआ था कच्छ में, अर्थक्वेक हुआ था, तो उसके वजह से उसको माइंड पे इतना असर हो गया कि वो बोलने का ही उसका बंद हो गया था। तो स्वामी जी को किसने बताया कि लड़की उस टाइम से बोल नहीं सकती है, तो स्वामी जी ने उसको एनर्जी दिया, उसके चक्रों को क्लियर किया और लड़की उसके बाद में बोलने का स्टार्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। सही। हमारे लिए बहुत शॉकिंग था कि जो आदमी लड़की बोल नहीं सकती है तो बोलने का चालू कर दिया। ये स्वामी जी के देखो एनर्जी कैसे काम कर लेती है वो। ये हमारा बचाव में एक अनुभूति हुआ। उसके आगे हम मांडवी गए तो जहाँ स्वामी जी ठहरे थे वहाँ एक झाड़ था, पेड़ के ऊपर में ऐसा बचपन की याद आ गई कि मैं उसके ऊपर चढ़ना चाहिए। तो मैं बोला इसके ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं, मेरा तो अभी बॉडी ज्यादा बड़ा हो गया, अभी नहीं चढ़ सकते, ऐसा बस सोच रहा था। तो सोचते ऐसी बात चल रही थी हमारी, और हम मजाक में स्वामी जी से बोलने लगे, स्वामी जी प्रताप भाई को ऊपर चढ़ना है झाड़ के ऊपर। बोले अरे मैं भूल गया। ऐसा करके वो अंदर गए, वापस आए तो क्या किया हमको पता नहीं, स्वामी जी ने कुछ किया झाड़ के ऊपर और फिर चले। फिर गाड़ी में बैठे तब स्वामी जी ने बताया उसके ऊपर प्रेत आत्मा थी और वो 3 दिन से मुझे मोक्ष मांग रही थी। मैं बोला जब निकलूंगा तेरे को तब छोड़ूंगा। तो ऐसा 3 दिन तक पे बैठी थी। तो ये विक्रम बेताल जैसी स्टोरी लगती है। और उस टाइम पे एक अलग अनुभूति हुई कि वहां से हम जैसे निकले और हम पहुंचे कोठारा में। तो वैसे अनुभूतियां बहुत है मगर मैं छोटी छोटी अनुभूति क्योंकि टाइम और उसके देखते हुए बता रहा हूँ। कोठारा में एक रूम में स्वामी जी सोए थे रात के समय में, और एक दूसरे में जयेश भाई और अमरीश जी दोनों सोए थे। मतलब रोड के साइड में था, उसमें जयेश भाई और अमरीश जी थे और बीच में पैसेज था और उसके बाद में स्वामी जी थे। इस तरह से था, हम दूसरी साइड पे सोए थे।
तो रात को एक सफेद सफेद कुछ आया और वो जयेश भाई और अमरीश जी के कमरे में आया। अमरीश जी ने देखा और वो स्वामी जी के कमरे में गया। फिर स्वामी जी कमरे में था, फिर स्वामी जी कमरे में सफेद आया और फिर बाहर चला गया। और जयेश भाई ने सुना, जयेश भाई को तो रात भर नींद ही नहीं आई। जयेश भाई बोले क्या हो गया, क्या हो रहा है? फिर स्वामी जी ने बताया कि ये हमने जो स्वामी जी के रहने की व्यवस्था कुछ अलग जगह पे की थी। तो बोला ये देखो, ये जो प्रेत आत्मा थी ये जैन गुरु थे, आज से 500 सालों से मेरी राह देख रहे थे। यहाँ 500 सालों से भूत योनि में थे, कई सालों से मतलब, और ये मेरी राह देख रहे थे कि मैं कब आऊं और उनको कब इसमें से मुक्ति दूं करके। तो बोला स्वामी जी की जो जगह थी वो अच्छी जगह पे लेके गए। भूत लोगों ने, प्रेत लोगों ने स्वामी जी की जगह चेंज किया। हमने जो जगह तय की थी उन्होंने जगह दूसरी की और वो जगह पे स्वामी जी रात को ठहरे। कोठारा की बात है ये। और वहाँ इस स्वामी जी ने वो ऐसे वो बोल रहा था जो आत्मा थी कि मुझे नहीं, मेरे शिष्यों को भी वो मुक्ति चाहिए, तो शिष्यों को छोड़ दे, पहले तू मुक्ति ले ले, बाकी के को मेरे पे छोड़ दे। ऐसा करके स्वामी जी ने उसको कोठारा में उसको मुक्ति दिया। कोठारा का प्रोग्राम भी शायद उसने ही अरेंज किया था। तो ये अनुभूति एक और है। और जैन गुरुओं की जो शुरुआत हुई, कोठारा में एक जैन मुनि थे हमारे, तो उन्होंने बताया कि मुझे स्वामी, जब मैंने बताया कि कल हमारा स्वामी जी का प्रोग्राम है, आत्मज्ञानी स्वामी जी आए हैं और वो कल आप सभी लोग, मतलब जैनों का उधर प्रोग्राम था, उसमें मैंने अनाउंसमेंट किया कि आत्मज्ञानी आए हैं और आपको उनका दर्शन का लाभ और उनका प्रवचन का लाभ लीजिए। तो ये हमारे जैन गुरु ने सुन लिया। तो उन्होंने बोला अरे आत्मज्ञानी है और वो ये बात करने, तो मुझे तो उनसे मिलना है, मगर मैं जैन हूँ, गुरु हूँ, तो मैं तो वहाँ आ नहीं सकता हूँ। तो स्वामी जी को बोलो मेरे यहाँ, मैं कैसे मुझे मिलेंगे। फिर मैंने स्वामी जी को बात किया। स्वामी जी बोले ठीक है अपन वहाँ जाएंगे। तो हमने तय किया कि जैन मंदिर के अंदर मिलेंगे। तो जैन मंदिर में तो आ सकते थे जैन गुरु, और स्वामी जी भी वहाँ गए और उनसे पहली मुलाकात हुई। और फिर स्वामी जी को उससे पहले भी था कि जैन गुरुओं का शिविर लेना है, क्योंकि नवसारी में हाईवे के पास में एक जैन मंदिर है, वहाँ के गुरु तपोवन में, वो काफी समय से बोल रहे थे कि मुझे स्वामी जी से मिलना है, स्वामी जी से। उनको भी कुछ सुना था। तो हाँ, उनका नाम था चंद्रशेखर। हाँ, तो उनको मिलना था। वो हमेशा स्वामी जी से टाइम लेते थे, आते नहीं थे, हमेशा टाइम लेते थे, आते नहीं थे। तो उज्ज्वला जी बोलती थी अरे इतना टाइम से टाइम ले रहे हो, आते क्यों नहीं हो। फिर बाद में उनको पता चला स्वामी जी को कि जैन गुरु है, तो उनको आना जाना, दूसरे गुरु के पास जाना, मतलब जैन समाज में वो अच्छा नहीं लगता है। तो स्वामी जी बोला मुझे मालूम होता तो मैं उनके पास चला जाता था। बाद में उनका योग तो मिला नहीं, वो बॉम्बे आ गए और फिर उनका बॉम्बे में ही उनका काल हो गया। तो वो स्वामी जी से तो नहीं मिलने लगे। तब से स्वामी जी को मालूम पड़ गया कि जैन गुरुओं को अगर मिलना है तो मुझे ही सामने जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से 2006 से शुरुआत हुई, मगर वो तक तो बाद में स्वामी जी ने उसको मतलब उसको आगे नहीं बढ़ाया। 2012 से जैन गुरुओं का कार्य चालू हुआ। तो ये शुरुआत एक अच्छी से हुई गई कोठारा से जैन गुरुओं के साथ में। उसके बाद में हम नखत्राना गए थे। तो नखत्राना में एक अनुभूति ऐसी हुई, एक साधक आया, साधक ने, एक नॉन साधक था और उसका बेटा गुम हो गया था। तो स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी अभी क्या था, अभी हम ऐसे ही कुछ लोगों को मिलते थे, मतलब दर्शन शिविर से पहले ही स्वामी जी ठहरते थे ना, तो कोई ना कोई आता था, मिलते थे, ऐसे कुछ एकदम स्ट्रिक्ट नहीं था उस टाइम पे। तो आया, मतलब जिसके बंगले में ठहरे थे उसका पहचान वाला था, उसने वो लेके आया कि मेरा लड़का मिल नहीं रहा है। तो स्वामी जी 5 दिन आंख बंद किए, फिर बोला मैं कल ध्यान में बैठता हूँ, फिर तुमको बताता हूँ कि कल तुम्हारा लड़का कहाँ है, कैसे, मैं बाद में बताऊंगा। तो ऐसा करके वो चला गया। फिर स्वामी जी ने तुरंत बता दिया उसका लड़का मिलने वाला नहीं है, मतलब वो लड़का है ही नहीं करके, मतलब उसके सामने नहीं बोला, उसके बाद में तुरंत बोल दिया, तो 2 मिनट के बता दिया कि उसका लड़का नहीं है करके। तो एक हमको वो भी एक अनुभूति मिली, स्वामी जी ने देखो कितना जान लिया और कैसे बताना चाहिए, किसको कब नहीं बताना चाहिए, वो भी एक बहुत चीज मायने रखती है। और सही, और इससे एक सबसे बड़ी अनुभूति अब आपको जानना चाहता हूँ। नखत्राना में हम जब गए तो नखत्राना में लोगों ने बोला अरे बहुत सारे हमारे पास गुरु आ गए, बहुत सारा हमने सुना है, मगर कच्छ के अंदर तो बारिश ही होना चाहिए, बारिश के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। हमने बहुत प्रवचन सुन लिए, बहुत गुरुओं को देख लिया, बहुत कुछ कर लिया। तो हमने उनको बोला ये स्वामी जी बारिश भी दे सकते हैं, आप प्रवचन सुनिए, उनकी बातें सुनिए, सब कुछ करिए, आपको बारिश कब चाहिए, कब होनी चाहिए। तो बोला हमारे यहाँ कच्छ में जून में बारिश आती है, जून में हमको बारिश चाहिए। तो 21 जून के आसपास, 20 जून के आसपास बारिश हमारे होती है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने
हमने वहाँ तय किया कि हम 21 जून को हम सब लोग मिलके, 20 या 21 जून थी, हम सब लोग मिलके हम प्रार्थना करेंगे कि कच्छ के अंदर बारिश हो। ये बात हम करके वहां से निकल गए। मतलब वो कच्छ की शिविर हमारी तभी हुई थी मई महीने में, और फिर हम जून में मैं आश्रम में गया, आश्रम में बैठा था। मैं तो तारीख भी भूल गया था कि हमने 20 जून में प्रार्थना करनी है, ये करना है। फिर अचानक सुबह में याद आया, अरे आज तो प्रार्थना करनी है, आज प्रार्थना का दिन है, हमको सबको प्रार्थना करनी है। तो मैं भी प्रार्थना करने के लिए बैठ गया कि कच्छ में बारिश हो। उसका प्रार्थना करने के बाद में मैं आश्रम में था, मैं आश्रम से बाहर आया, बाहर आके देखता हूँ तो स्वामी जी जनरली कभी ऐसे बाहर नहीं बैठते हैं बेंच पे वगैरह, ताकि सुबह के टाइम में नहीं बैठते या राउंड मार के अंदर ही जाते कुछ। तो बेंच पे बैठे थे और मैं देखा तो स्वामी जी एकदम ध्यान अवस्था में बाहर, कभी बाहर और ध्यान अवस्था में, और उनका चेहरा एकदम लाल। तो मैं एकदम डर गया, मैं बोला क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो मैं धीरे से स्वामी जी के पास गया, स्वामी जी ऐसा 2-4 दफे बोला, तो स्वामी जी कुछ बोल नहीं रहे, एकदम ऐसे बैठे हैं। तो मुझे और डर लगा, मैंने क्या करूँ अब, कैसे बताओ स्वामी जी कैसे हो इधर थोड़े, क्योंकि पब्लिक आने का समय हो गया था, करीबन 7 साढ़े 7 बज गए और सब साधक वगैरह आने का चालू हो जाएंगे ना आश्रम के अंदर। तो मैंने अभी कैसे करें। फिर तभी संजय भाई थे, उनको मैंने फोन किया कि ऐसा ऐसा है, स्वामी जी बाहर ध्यान कर रहे हैं और उनका चेहरा भी दिख रहा है, मैं तो एकदम घबरा गया हूँ। तो बोला तुम उठा उनको बात कर जरा सा। मैं 2-3 दफे बात किया, अब मैं अब आगे कैसे बात करूं, मैं कुछ बात ही नहीं कर पा रहा था। बोला संजय भाई, बोले मैं आ रहा हूँ, तुम वहाँ बैठो, तब तक मैं करते हैं। फिर मैं उधर बैठा रहा नीचे, और फिर थोड़े टाइम पे बोलता रहा स्वामी जी ऐसे मैं बोलते रहा। और फिर थोड़े टाइम के बाद में स्वामी जी ने आंख खोली, तो आंख खोलते ही बोलते हैं युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है। अरे बोला नहीं, युद्ध नहीं हो रहा है। बोला कुछ लोग निस्सहाय लोगों को मार रहे हैं, मतलब एक साइड में जो मारने वाले हैं और दूसरे लोग निस्सहाय हैं, तो इनको मार रहे हैं। मैं क्या बोल रहे, ध्यान में से आके स्वामी जी क्या बता रहे हैं, मैं तो कुछ समझा ही नहीं। फिर बोला तुम्हारे कच्छ में हो रहा है। कच्छ में अभी हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, युद्ध हो रहा है, क्या बता रहे हैं, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा। बोला नहीं, ये बहुत साल पहले कच्छ के अंदर ऐसा हुआ है कि इसके वजह से तुम्हारे कच्छ की नेगेटिविटी है, और ये नेगेटिविटी मुझे आज ध्यान के अंदर में दूर किया मैंने। तो ये बहुत बड़ी अनुभूति है कि उसके बाद में कच्छ के अंदर आज तक 2006 से आज 2022 है, कभी कच्छ में पानी दुकार हुआ ही नहीं। हमेशा पानी गिरा है, हमेशा कभी भी ऐसा, मतलब दुकार जैसा बोलते हैं, दुकार बोलते हुआ कभी, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप देख लो, सूखा ड्राउट, सूखा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो ये मतलब ये स्वामी जी ने आखिर नेगेटिविटी कच्छ की क्लियर की, और उसके बाद में बारिश हमेशा गिरती है। तो ये बहुत सारी अनुभूति है। तो ये कच्छ की आपको एक थोड़ा सा अनुभूति था, वो बताया मैंने। नहीं, ये बहुत ही बढ़िया है, और कई लोगों के लिए ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि when a living guru comes in the physical form, he does not come for himself. We have to understand that, because these are the enlightened spirit or soul who are beyond the physical level or moh maya what we have. They come specially to liberate so many souls who are waiting for liberation or moksha. In Pratap Bhai stories, we heard one anubhuti of a Jain monk who was waiting to be liberated for almost like 500 years. And he made the organizers, including Pratap Bhai and others, to change the spot where Swamiji will be staying overnight. By doing that, they literally witnessed Jayesh Bhai Pandit and Pratap Bhai and them, that the spirit of Jain monk passed by from the room where they were sleeping and went to Swamiji's room and then came out. Then next day, Swamiji told the story that this Jain monk was waiting for me to liberate him, but his condition was to liberate his disciples also. So Swamiji says that at least you are here with me, let me give you liberation first and I will take care of your disciples later. This was the promise Swamiji made. And later on, in the another Anubhuti, Swamiji, after coming back to Dandi Ashram, the Jain Munis or the other
they put the condition in Kutch that we have masters and but we are interested in bringing the rain to this land because it has been always drought, it has been always dry. We don't see the rain, and generally the period for rain is June 21st, when the first rain of the monsoon comes over there. If that happens, then we will believe that your guru is real and he has some miraculous power. So Pratap Bhai was at the Dandi ashram, and suddenly he was reminded of that time that he should be making the prayer for the rain in Kutch. He made that prayer. When he came out of the room inside, he saw Swamiji, who is supposed to take rest inside. He was not inside. He was sitting outside in the ashram, and he was in the meditative pose. To his amazement, Swamiji's face was totally red, as if he is really struggling. Then Pratap Bhai tried to talk to him, Swamiji, Swamiji. Pratap Bhai prayed to him. And when Swamiji came out from the meditation, he shared what he saw in the meditation. He literally noticed that many years ago, in the land of Kutch, there were some helpless souls or people. They were being harassed or attacked by those who had power and who were stronger. And that created the curse on the land of Kutch. That's why it was always in a drought, or it was not getting any rain. Of course, it is a land of desert, so it is always dry there. With Swamiji's grace, from 2006 of this Anubhuti and onwards, there is rain every year. In other words, Swamiji not only liberated the Jain monks or other souls in that area, but Swamiji blessed them to remove the curse of drought in that land. It is a green land. Same thing with Dandi Ashram. Dandi Ashram is at the coast of Indian Ocean on the west side. The land was very bare land where you cannot grow any trees. Today, you can see greenery in the Dandi Ashram. The trees that were planted by the sadhaks and Swamiji, it became like a garden. So this all can happen by the grace of Guru and in the presence of such an enlightened spirit. That is what we want to understand. Thank you, Pratap Bhai, for sharing such a beautiful thing. Because many people don't know. Many people don't know. And with the help of Pratap Bhai and Dharmesh Bhai, Swamiji has brought the blessing of awakening to so many Jain monks. It is because of this Anubhuti of Pratap Bhai that Swamiji came to know that Jain monks like Chandrasekhar Suriji, who used to be the main lead for the Tapovan, one of the major educational institution for Jains in Navsari highway area, national highway area. He took the appointment to meet Swamiji several times. He was missing the appointment. He was not able to travel. But because of involvement with Pratap Bhai and other Jain monks, he came to know that Jain monks will not be able to go to a guru like Swamiji to protect their image in their community. Because what they are teaching, sometimes it can go against their teachings and their words. Today, so many Jains Munis are coming to Dandi Ashram for 45 days Anusthan, and they are taking advantage of it. So many Jain monks are practicing Samarpan meditation, and they have accepted Swamiji as their guru. This is the blessing. This is the real Gurukarya, you can say. As Swamiji says, moksha is not a sthiti or a state to be achieved. Moksha is liberation by letting go and donating that state of liberation to others. Through this Gurukarya, Pratap Bhai became instrumental
to bring blessing to so many living people as well as the departed souls, the spirits to be liberated. Amazing anubhuti. Thank you. तो ये जो फोटो है सब अलग अलग जगह पे है, जैन मुनियों के साथ आपके जो मुलाकात हुई स्वामी जी की, शिविर की और वो सब बात। 2006 से। This Kothara is the birthplace of Pratap Bhai in Kutch. So this is also 2006. Next, 2006 Kothara again. उसके मतलब फिर स्वामी जी ने 2012 में बोला कि अपने को जैन गुरुओं की शिविर करनी है। तो मैं भी कच्छ में था, स्वामी जी भी कच्छ में थे, तो मुझे तू बोला तुम जाओ जैन गुरुओं के पास जाओ और उनसे बात करो कि अपने शिविर करनी है। तो मैं सिर्फ महोदय सागर को पहले जानता था जो कच्छ में मिले थे। मैंने उनसे बात किया कि ऐसे ऐसे अपने को शिविर करना है। तो उन्होंने बोला हाँ करेंगे। तो बोला कहाँ करना है? तो उन्होंने बोला ऐसी जगह ढूंढते हैं कि मतलब वो जैन है तो उनको कोई तकलीफ ना होनी चाहिए, कि ऐसी जगह ढूंढते हैं कि मतलब लोगों को ऐसा नहीं लगना कि जैन गुरु दूसरे गुरु के पास जा रहे हैं करके, क्योंकि समझ में नहीं आता तब तक तो लोग बात करेंगे। तो इसके लिए हमने बाड़ा चुना कि बाड़ा एक अलग जगह है, वहाँ कोई भी नहीं होता, एक मतलब वहाँ ज्यादा करके बॉम्बे वालों ने बंगले लेके रखे हैं, उधर कोई लोकल का कोई आदमी नहीं रहता बाड़ा के अंदर, एक दूसरा एक है। तो वो हमने एरिया चॉइस किया। उससे पहले एक बता दूं कि हम 2012 में ही, उससे पहले मतलब ये शिविर हुई थी 2012 में शायद जनवरी में, और 2011 में हम गए थे कच्छ में। तो हमको एक दो जैन गुरु मिले थे कोठारा के अंदर हमारे गांव में। तो हमारे कोठारा तो जैन गुरु मिले, तो उन्होंने स्वामी जी का फोटो दिखा था कहीं, और उसमें लिखा था आत्मज्ञानी स्वामी, और उन्होंने उसके बारे में पूरी इंक्वायरी की थी कि कहाँ है, किधर उनका शिविर होता है, कैसे होता है, और तपास कर रहे थे। और वो कोठारा पहुंचे थे, तो कोठारा में बात किया होगा इनके बारे में। तो कोठारा वालों ने बताया कि प्रताप भाई अभी आ रहे हैं, आप उनसे बात करो। तो मैं उधर पहुंचा, वो मेरी राह देख रहे थे कब मैं पहुंचूं और कब मैं उनसे बात करूं। मैं उनके पास गया और स्वामी जी के बारे में सारा बताया, तो बहुत खुश हो गया। तो उन्होंने बोला अभी मुझे शिविर करनी है। तो हमने कोठारा में 8 दिन का शिविर का आयोजन किया, उन्होंने 8 दिन का शिविर किया। तो इस तरह से वो 2 जून जुड़ गए, और रत्नाकर सागर महाराज साहब और मलय सागर, ये दोनों से उस टाइम से जुड़ गए। 8 दिन का शिविर किया। फिर ये सब बात करने के बाद में मैं उनको बोला, उनसे भी बड़े घनी बार बोलते हैं जो महोदय सागर, वो बड़े गुरु कहलाए जाते हैं, उनसे बात किया। ऐसे भाई कई लोगों से उन्होंने जहां जहां बोला इनसे बात करो, उनसे बात करो, ऐसे करके हम करीबन छोटा सा शिविर हुआ। 15 जैन मुनियों का शिविर हुआ बाड़ा के अंदर, और वो 3 दिन का शिविर हुआ। तो हमारे लिए भी बहुत कुछ नया था कि अभी हम जैन गुरुओं का इतना दिन से हम सुन रहे थे और वो स्वामी जी का सुन रहे थे। मतलब मैं तब मुझे समझ में आया कि इनको भी अभी मोक्ष के बारे में जानकारी है, पर मोक्ष प्राप्ति के लिए तो स्वामी जी के पास ही आना पड़ेगा। बहुत कुछ पास से जानने को मिला। तो उससे पहले एक गुरु थे जो उदय रत्न जी महाराज साहब है, वो बॉम्बे में कोई साधक ने उनसे शिविर करवाई थी 8 दिन के लिए। तो उसकी भी अनुभूति ऐसी है कि उन शिविर करने के लिए उनको ना बोलना था, तो साधक ने ऐसा बोला था आप बोलो तो 4 बजे मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो 4 बजे आया। उसको लगा 4 बजे साथ थोड़ी आएगा, तो लड़का 4 बजे लैपटॉप लेके चला गया शिविर कराने के लिए। अरे वो नींद में सोए थे, वो तो उठे, बोला आपने 4 बजे बोला। अरे आ गया, चलो अभी शिविर कर लेते। ऐसे करके उन्होंने शिविर ज्वाइन कर लिया। तो 8 दिन का उन्होंने भी शिविर किया। तो वो सबसे पहले वो जुड़े थे, मतलब महोदय सागर के बाद में वो जुड़े थे। तो उनको भी समय से इच्छा थी कि स्वामी जी का दर्शन करना है। तभी 2012 का ये शिविर हो गया ना बाड़ा के अंदर। तो उनसे बात किया हमने कि भाई स्वामी जी ने बोला है आपको भी शिविर करना है, तो पालीताना में, तभी वो पालीताना थे, तो आप पालीताना में शिविर करते हैं। तो बोला अच्छी बात है, आप पालीताना आ जाइए। तो बोला मेरे मतलब उनका भाई था, वो भी रिक्शा लिया था, वो भी जैन गुरु है, तो उनको वो भी पालीताना आने वाले थे। बोला वो आ जाएंगे तब आप हम सब करेंगे करके। तो हमको उस महीने में 2 महीने का टाइम मिल गया, कच्छ की शिविर और पालीताना के शिविर में। तो 2 महीने पालीताना गया। जितने भी जैन गुरु थे पालीताना में, बहुत सारे जैन गुरु रहते भी हैं, सबसे मैं 2 महीना वही कार्य किया कि इन जैन गुरु को मिलो। और मतलब वो उदय रत्न भी मेरे साथ चलते थे, हम सब जगह पे प्रचार करते थे, क्योंकि वो साथ में रहेंगे तो मेरा जैन गुरु जल्दी सुनेंगे।
इसलिए मैं उनको भी साथ में रखता था। फिर कभी कभी वो बोल देते थे मेरा नाम लेके तो उनको मिल जा। ऐसे करके हमने 2 महीना अच्छे से प्रचार किया। प्रचार करने के समय में स्वामी जी का फोन आए बार बार बीजे, जब आने का समय हुआ क्या मुझे, प्रताप भाई मैं आ रहा हूँ। मैं बोला तो तय है, शिविर तो तय है, ये तारीख को शिविर करें, मुझे क्यों फोन करके बताया आ रहा हूँ। फिर 1 दिन होगा, फिर बोला स्वामी जी मैं, प्रताप भाई मैं आ रहा हूँ। अरे मैं बोला ये स्वामी जी इसके लिए क्यों फोन कर रहे हैं, तो मैं आ रहा हूँ करके। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों करे। कोई ऐसे गुरु थे जो नहीं इच्छते थे कि स्वामी जी जैन गुरुओं में शिविर करें, तो उसके लिए कुछ तो ऐसा कुछ कर रहे थे, वो स्वामी जी को पता चल रहा था। तो स्वामी जी मेरे माध्यम से वो गुरुओं को बहुत बोलना चाहते थे कि प्रताप भाई मैं आ रहा हूँ। मतलब वो मुझे नहीं बोल रहे थे, वो और किसको बोल रहे थे। अच्छा। अब जी कैसे काम करते थे ये हम सोच भी नहीं सकते, कोई कनेक्शन नहीं। वो स्वामी जी मुझे बता रहे हैं और मैं उनको बता भी नहीं रहा हूँ, मगर उन तक बात कैसे पहुंचती है ये अनबिलीवेबल बात है। अब सूक्ष्म रूप से होता है जो हमको नहीं समझेगा। हाँ, सही। और ये शिविर हमारा जो पालीताना में शिविर हुआ, बहुत जबरदस्त शिविर हुआ। ये शिविर इतना मतलब स्वामी जी के लिए मतलब बहुत कुछ नया था। उन्होंने एक साधिका का जो फोटो दिखाया, तड़ेटी का जो दिखाया, वो मेरे ख्याल से 50 या 60 साल की उम्र की थी। बोला हम इतना से पालीताना में दर्शन करते हैं, आज पालीताना की तड़ेटी जो जमीन मतलब जहाँ से पालीताना डूंगर चढ़ते हैं उसको तड़ेटी बोलते हैं, जहाँ से शुरुआत जहाँ से शुरुआत उसको तड़ेटी बोलते हैं। तो वहां मुझे दिव्य का दर्शन हो गया, दिव्य ज्योत का दर्शन हो गया। तो साध्वी जी बोलती है मैं इतना सालों से पालीताना जा रहे कभी नहीं हुआ, अब स्वामी जी के साथ में हम आए तो हमका दिव्य ज्योति का दर्शन हो गया। और वो व्हील चेयर पे है, चल भी नहीं सकती है, ऐसी जैन गुरु को ऐसे दर्शन हो गया। और पालीताना जब ऊपर पहुंचे, ऊपर पहुंचने के बाद में स्वामी जी बोले ऐसे दर्शन नहीं होते हैं, पहले अपन सब बैलेंस होते हैं। हम सबको बाहर बिठाया मंदिर से बहुत लंबा, हम सब बैलेंस हो गए, ऊपर चढ़ के गए थे ना, तो वहाँ बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद में अभी देखो मूर्ति की एनर्जी तुमको बताऊंगा। जैन गुरुओं को भी बताया कि मूर्ति की एनर्जी कैसे चेक करते हैं। पहले तो हमको लेके गए, बोला आपने तो सामने नहीं जाना है, सामने सब मांगने वाले होते हैं, मूर्ति के सामने ज्यादा करके लोग सब मांगने वाले होते हैं। और कभी भी मूर्ति के चारों बाजू एनर्जी होती है, तो हम पीछे जाएंगे, हम पीछे से एनर्जी चेक करेंगे। पीछे कोई मांगने वाला होता नहीं और पीछे गर्दी भी नहीं रहती है। तो हम पीछे गए और पीछे बोला अभी देखो आपको कहाँ स्पंदन हो रहा है। तो हमको शुरुआत में तो समझ में नहीं आया, फिर बाद में समझ में आया कि हाँ नाभि पे कुछ तो हो रहा है। तब स्वामी जी ने बताया ये मूर्ति के अंदर जो वाइब्रेशन, जिन्होंने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की है उन्होंने उसका नाभि के अंदर प्राण डाले हुए हैं। और उसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पालीताना पे जो भी आए उसको संतोष और समाधान हो, इसके लिए उसके अंदर नाभि के अंदर वाइब्रेशन डाले। और स्वामी जी ने दिखाया कि हर मूर्ति के अंदर अलग अलग वाइब्रेशन होते हैं, इस मूर्ति में ये है, इसकी वजह से लोगों को संतोष और समाधान मिलता है, इसलिए लोग पालीताना यात्रा करने के लिए आते हैं। तो इस तरह से वो अनुभूति हुई। और उधर भी कच्छ के अंदर और इधर पालीताना में दोनों जगह पे जैन गुरुओं को हाथ लगा के सबका चक्र एक एक आपने देखा होगा, एक एक चक्र क्लियर किया। हाँ, तो इस तरह से भी हाँ इस तरह से देखो आप देख रहे हैं, इस तरह से पूरा उनको क्लियर किया था। तो आज भी वो जुड़े हुए स्वामी जी जो बताते हैं। बहुत दफे मेरे साथ 2 जैन गुरु आए थे, मैं उनको बॉडी छोड़ के बिहाइंड बॉडी का जो कराने को बोला था, बियॉन्ड बॉडी एक्सपीरियंस, वो कराने का इनको ही बोला था, मगर वो स्वामी जी बताते हैं ना, फिर इन्होंने सोचा कि हम मर जाएंगे, उस डर की वजह से छोड़ दिया। तो ये जी और यही है। तो इन सबको बहुत सारी अनुभूतियां। इसके बाद में एक हमारी बड़ी शिविर हुई अहमदाबाद में, बहुत बड़े आचार्य है जय गोसूरी जी, उसका बहुत बड़ा नाम है, उनके सानिध्य में एक बड़ा शिविर हुआ, करीबन 100 साधु साध्वी थे। और वो शिविर भी बहुत बड़ा हुआ, उसमें फोटो उसके नहीं लिए गए थे क्योंकि उनकी परमिशन नहीं थी। और उसमें जो स्वामी जी बताते हैं कि एक 60 साल नहीं 90 साल की जैन मुनि थी, उसको छोड़ बिल्ली कभी हो गया था उसके हाथ से, तो वो अभी भी उसको याद आ रहा था, बहुत दफे बताते हैं ना वो वहां का। और दूसरा एक अनुभव वो था कि जो जय गोसूरी जो मेन आचार्य थे, उन्होंने बताया था कि आप बहुत संस्कृत के विद्वान हो और आप तो जैन धर्म का अध्ययन किया हुआ है। तो उन्होंने पत्र लिखा था। तो शिविर खत्म होने के बाद में स्वामी जी उनसे मिलने गए, जय गोसूरी जी महाराज साहब को, और उनको बताया कि मैं जैन धर्म का एक पुस्तक भी नहीं पढ़ा हूँ, मैं संस्कृत भी नहीं जानता हूँ, मैं जैन गुरुओं के सानिध्य में रहा हूँ
और उस सानिध्य में रहे थे। 45 जैन साधु थे, उनके साथ में रहा हूँ। और बाद में दूसरे दफे गया तो 65 थे, और उनसे मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, उन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं। उनके सानिध्य में रहने से मेरे में ये पूरा जैन धर्म का ट्रांसफर हुआ, एनर्जी। तो ये शिविरों में मतलब हमको और इसके बीच में हमारा जोगेश्वरी में एक शिविर हुआ बॉम्बे के अंदर, वो भी बहुत बड़ा शिविर हुआ। उसके अंदर भी काफी जैन गुरुओं ने लाभ लिया, बहुत सारे। तो इस तरह से जैन गुरुओं के शिविर शंखेश्वर में हुआ, उसमें भी और आश्रम पे भी बहुत दफे जैन गुरु आके गए, और अनुष्ठान के बाद में अनुष्ठान में रुके भी बहुत समय में, और अनुष्ठान के बाद में भी काफी सारे शिविर होती थी। अनुष्ठान के बाद में स्वामी जी 8 दिन का शिविर रखते थे जैन गुरुओं के लिए, बाद में वो सब गुरुओं को भी अलाउड किया था। तो इस तरह से जैन गुरुओं का बहुत सारा कार्य 2012 से अब तक चल ही रहा है, लॉकडाउन के बाद में बंद हुआ है। तो इस तरह से जैन गुरुओं का बहुत सारा कार्य हुआ। और ये कामधेनु गाय का क्या है जो फोटो में है? ये ऐसी है ना, कामधेनु गाय जो होती है ना, ये इंडिया में 1 या 2 है। ये शंखेश्वर में है, और इसकी जो फूंक देखते हैं ना ऊपर, वो बहुत बड़ी है। ये जनरली गाय कामधेनु गाय को ही होती है, बाकी को नहीं होती है। और ये इसकी सारी खासियत है, अभी मुझे याद नहीं उसके बारे में। तो स्वामी जी ने उसको देखा था, उसके दर्शन किया था। हाँ, तो इस तरह की गाय कहीं होती नहीं है, सिर्फ इधर ही कामधेनु गाय थी शंखेश्वर में, और कहीं भी है नहीं, और एक साउथ में कहीं तो है, और बाकी जगह कामधेनु गाय नहीं होती है। तो अभी भी जो देसी गाय होती है ना, अपनी देसी की गाय, उसके ऊपर ये होता है, मगर छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है। हाँ, ये जो फूट होती है ना इसकी, जो पीछे की यहाँ, उसका दूध बहुत अच्छा होता है। आजकल जर्सी आ गई है, तो उसका दूध अच्छा नहीं होता है इसका। हाँ, ये जो बात करें ये नहीं होता है, जर्सी गाय में ये नहीं होता है, तो उसका दूध नहीं होता है। सूर्य किरण खींचती है ना वो, इसके लिए। अच्छा। हाँ, तो ये सब कामधेनु गाय में बहुत सारे गुण है। इसका नॉलेज मुझे इतना, स्वामी जी को थोड़ा सा उन्होंने समझाया था, क्योंकि ये समझने वाले भी बहुत कम लोग हैं इसको। नहीं, कुछ लोगों ने, I have seen some WhatsApp videos about you can even experience the vibrations from almost 25 feet away, just like a yogi. When you are checking the vibrations, the energy you can measure, and the quality of the milk. It has the elements like gold. It has all the earth element into this cow's milk. So these are all the different thing. Amazing story and anubhuti. I want to make everybody aware that in the presence of Pratap Bhai and Dharmesh Bhai and all those sadhaks, by the grace of Gurudev, in the previous experience he mentioned they made more than 72 different workshop for the people in Kutch area where he was born and nearby. And there were multiple sadhaks who became instrumental for this work. After meeting different gurus, Jain Munis, they were able to bring Swamiji to the Palitana, which is one of the most important pilgrimage for Jains. This idol of Adinath Bhagwan, or the first monk of Jainism, is also there. And so many Jain monks from different places participated in that workshop at Palitana, and they had amazing anubhutis, including some who said that I had the vision of divine light, Divya Jyoti. Some who said that I have never experienced such vibrations, or I have never seen such aura before. Some who have said that when Swamiji brought them all the way up, after reaching to a certain point away from the temple, Swamiji says, now let us first meditate and balance ourselves. We will not experience the energy staying in front of the idol. We will go behind the idol and experience the energy. Because in the front, everybody is asking for material things. In other words, they are the beggars. They are just asking for material things. But Swamiji says those who really want to experience the energy, we should be going in the back, because the energy is all over in all the directions of the idol.
Swamiji says, try to experience the energy of Adinath idol. And some of them, they experience the energy in the Nabi chakra, okay, in the navel point. Swamiji says, the person who consecrated this idol, he implanted the energy in the Nabi chakra so that at that time when it was created, probably people needed the awakening to the satisfaction level, and that is the reason why people, when they go to Adinath Darshan in Palitana, they come back after this yatra, the pilgrimage visit, with satisfaction, with more happiness in their life, in their mind. And that was the experience of so many people, including those Jain monks who attended the Shibir. Very beautiful Anubhuti, Pratap bhai. Thank you for sharing that with us. And we वो keep अनुभूति on. आपने बताया वो जो स्वामी जी मैं आ रहा हूँ. So that was one very unique Anubhuti. As Pratap bhai was just a medium, but suddenly Swamiji called him and said that I am coming, Pratap bhai, I am coming. So Pratap bhai was wondering why Swamiji is calling me. I know that Swamiji is coming for the Shibir. Why he is calling me? But then Swamiji explained that there were other spirits who were trying to stop this organization of the workshop with the Jain monks, because they were very rigid or very orthodox type of Jain monks who did not want any other religious leader or guru or spiritual person to come and distract them from Jainism or distract them from their way of doing the things. So they tried to stop Swamiji, but Swamiji says that by telling Pratap bhai, I am coming, Swamiji was giving message to those souls who were trying to obstruct Swamiji's visit to awaken these current living Jain Munis. Because Swamiji was simply becoming a medium for those Jain monks or Adinath himself to liberate these Jain monks who are living in current time and who were attending this workshop that was organized by Pratap bhai. Thank you very much. This is a very subtle level of communication. With ordinary mindset and intellect, we may fail to understand this. The objective of this is to understand and to realize that for someone with the spirituality of Swamiji, it is beyond our laukik or intellectual things. It is beyond our three dimension or fourth dimension. It is like fifth dimensional level anubhuti, where duality is not existing, where the words or logic or intelligence is not existing. It is only the consciousness. It is only the vibrations. So that was the part of the things that we can understand from this anubhuti. Let's go on the next part, next question rather. अगला क्वेश्चन क्या है? ये हमने कर दिया सब, भूमि पूजन का और वो सब कर दिया, जैन इसका भी कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं. Yeah. So महाशिविर बहुत सारी की आपने और आवाज તમારો સ્લો આવે છે. Sorry, તમારો આવાજ સ્લો આવે છે જરા. Okay. Is it आपको सुनाई देती है? ओके, मैं थोड़ा नजदीक आ जाता हूँ. मेरी बैटरी डाउन हो रही है ऐसा लग रहा है. तो
आप लोगों ने तो दर्शन शिविर भी इतनी ही की, महाशिविर भी इतनी ही की, इतने सारे प्रोग्राम्स किए, उसकी यादें, उसकी सब बातें अगर कुछ आगे के अनुभव में रह गई तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए। ये सब करेंगे तो कम से कम और 2-3 घंटा लगेगा। मैं फिर भी थोड़ा बहुत आपको बताते जाता हूँ। मैं पहली अनुभूति बताता हूँ। सबसे पहले जब स्वामी जी ने मुझे बोला था कि आपको ट्रस्टी बनाएंगे, तो उसकी अनुभूति मैं बताता हूँ। हाँ जी। मुझे सबसे पहले तो मतलब यहाँ बॉम्बे में मालूम पड़ गया था कि मुझे ट्रस्टी बनाने वाले, क्योंकि जब खामनकर जी को योग प्रभा भारती का ट्रस्टी बने, हम सब जो 5 लोग ने महाशिविर में काम किया था 2004 में, तो उसमें योग प्रभा भारती का ट्रस्टी बनाया। तभी वहाँ बात चली होगी कि प्रताप भाई को कहाँ लेंगे, तो स्वामी जी ने बोला उनको नवसारी में लेंगे या आश्रम ट्रस्ट के अंदर लेंगे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको आश्रम ट्रस्ट में लेने वाले हैं करके। तो ठीक है, मैंने उतना कुछ उसको नहीं लिया। फिर जब मैं आश्रम पे गया था, मतलब कुछ काम से मैं गया था, तो स्वामी जी ने मेरे साथ में ख्याति करके एक लड़की थी, वो भी थी, हम दोनों जन गुरु कार्य के लिए गए थे। तो ख्याति को स्वामी जी बोला तुम चले जाओ, प्रताप भैया रुकने दो। तो मेरे को उधर आश्रम पे रुकने को बोल दिया और उसको ट्रेन की टिकट निकाल के उसको भेज दिया। मैं वहाँ रुक गया। के बाद में स्वामी जी मुझे दरिया किनारे पे लेके गए और शाम का कुछ 6 बजे का समय था। हम दरिया किनारे, और दरिया किनारे पे 6 बजे से करीब 2 घंटे तक हम वहाँ दरिया किनारे पे बैठे रहे और स्वामी जी मुझसे बात करते रहे। काफी सारी बातें हुई। और जब 8 बज गए तो मैंने स्वामी जी को बताया, स्वामी जी 8 बज गया, तो मतलब बहुत अंधेरा भी हो गया। तो स्वामी जी बोले तुमको मालूम नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे हार्ट से तेरे हार्ट को जोड़ रहा हूँ। अब ये मेरे लिए तो बहुत एकदम शॉकिंग था, एकदम तेरे हार्ट से जोड़ रहा हूँ। तो ये प्रक्रिया कर रहे थे 2 घंटे तक, वो बिठा के दरिया किनारे पे, मेरे हार्ट से तेरा, क्योंकि मैं तुमको ट्रस्टी बना रहा हूँ, तो मतलब ये सारे कार्य करने के लिए मैं मेरे हाथ से तेरे हाथ को जोड़ रहा हूँ। ये सुनने के बाद में सही मानों में मैं रात भर तो सो नहीं सका, पहली बात तो, क्योंकि वो कैसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं कि उन्होंने किस तरह से किया होगा। तो ये बहुत जबरदस्त बड़ी बात है सबसे पहले। और इसके बाद में अनुभूतियां जब बताता हूँ कि हमारी जो दर्शन शिविर हुई, उसमें एक हमें अनुभूति बता। हम सुरेंद्र नगर गए थे और सुरेंद्र नगर का ही कच्छ जैसी एक अनुभूति है। वहाँ पानी के ऊपर कुछ तो हो गया था, तो कोई लोग, कोई संत थे या कोई भी थे, उन्होंने श्राप दिया था सुरेंद्र नगर में बारिश नहीं गिरेगी। ये उन्होंने दिया था। पहले जन्म में श्राप वगैरह ऐसा कुछ होता था पहले जमाने में। रानी राणा देव की तो ये सुरेंद्र नगर के लिए था। तो हमारा सुरेंद्र नगर में दर्शन शिविर का आयोजन हुआ। हम वहाँ गए तो वहाँ यही बात निकली कि यहाँ बारिश बहुत समय से नहीं गिर रही है और यहाँ कोई श्राप है करके ऐसे बताया गया था मुझे। और हम जैसे सुरेंद्र नगर में पैर रखे, इतनी बारिश हुई सुरेंद्र नगर के अंदर कि वहाँ हमको शिविर करने के लिए गाड़ी के अंदर, हमारी जो इनोवा गाड़ी थी ऊपर होती है, उसके अंदर पानी। और ऐसी परिस्थिति में हम वो गए, हम ग्राउंड पे दर्शन शिविर का स्वामी जी को लेके। तो वहाँ ग्राउंड पे कंडीशन ही नहीं थी। फिर एक हॉल था उस ग्राउंड के बाजू में, उसके अंदर हमारा शिविर हुआ। पब्लिक भी इतनी बारिश में आई थी, भले ग्राउंड में आई थी मगर आई थी। और अहमदाबाद के साधकों ने बहुत सारा मेहनत सुरेंद्र नगर के लिए किया था। और वो शिविर जो हुई तब समझ गए कि देखो कि इतनी बड़ी बारिश के अंदर लोग भी आए और इतना सुरेंद्र नगर, पूरे सुरेंद्र नगर में कम से कम 1 फुट या 1.5 फुट या 2 फुट पानी था और उसके अंदर शिविर हुई। और ये स्वामी जो नेगेटिविटी जो थी इतने सालों की, वो स्वामी जी ने तोड़ा था। तो क्या ये 2 अनुभूति आपको बताया, उसके आगे की फिर बताता हूँ। So this is very unique experience because the curse on the land of Surendranagar was again keeping it in the state of drought. When Swamiji went, to the amazement of the organizers and those who attended, it was such a heavy rain that it was difficult for one to go and reach to that place. However, people did attend and they transferred the location from the open land to a hall nearby. So that was the part. और वो आगे का दूसरा क्या कहा आपने? सुरेंद्र नगर के आगे का जो दूसरा अनुभव था, सुरेंद्र नगर का वो पानी का बताया ना। हाँ, उसके पहले आपने कुछ कहा? पहले तो वही उधर का जो दरिया किनारे पे स्वामी जी मुझे।
So another thing is, when Swamiji decided to appoint Pratap Bhai as the trustee for the ashram, he came to know about it from Mumbai, but later Swamiji invited him to Dandi, and he brought him to the coast of Dandi on the seashore, and they both meditated together. And it was almost like up to 8 o'clock in the evening, it started getting dark, and Pratap Bhai told Swamiji that let's go, Swamiji, back to the ashram. Swamiji said, no, you sit here. You don't know what I'm doing. He said, what are you doing? So Swamiji replied, I am connecting my heart chakra with your heart chakra. I am transferring my heart energy to your heart energy, or the love and compassion Swamiji had. Swamiji passed it to him, because you are going to take over such a big mission. And this is something that Pratap Bhai said, I don't understand how you can do or what he was doing to me, but he felt very blessed, and he was literally, how you say, grateful to Gurudev for showering that grace on him by giving this responsibility and by giving this opportunity to serve Swamiji and the entire Samarpan global family. Amazing. Today, Dandi Ashram is so well established and so self-sustained that Swamiji let it run by itself, and he moved from Dandi and Mogar to now Nijdam in Mahodi in Ahmedabad area. So this is really amazing thing, that how Samarpan family is growing, and it is inspiring us for learning that how much investment and how much efforts were going into different Gurukarya, and so many people were involved. Amazing. Thank you, Pratap Bhai. और दूसरे सब एक गुरु की अनुभूति बताता हूँ जरा। हम जो टूर पे गए थे सौराष्ट्र में, तो इसमें एक लिलिया करके गांव आता है, तो वसंत दीदी करके है, उन्होंने 14 साल तक मौन रखा था। अच्छा। 14 इयर्स। और उन्होंने, उनके पास स्वामी जी को मिलने की बहुत इच्छा थी, तो उन्होंने स्वामी जी को पत्र लिखा था कि मुझे मिलना है। तो स्वामी जी उसको मिलने के लिए गए, और स्वामी जी ने, उसने अकेले में मुलाकात चाहिए, तो स्वामी जी अकेले में थे। उनका एक जो साधक था, उनका जो गुरु थे वसंत दीदी, उनका एक साधक था, और स्वामी जी थे। वो तीनों जन का एक मीटिंग हुआ अंदर, वो मौन में थी, वो पार्टी पे लिख के दे रहे थे। तो स्वामी जी ने उसको बताया कि तुम आज्ञा चक्र तक पहुंच चुकी हो, तुम्हारा ऊपर तक पहुंचाने का। तो उसने, स्वामी जी ने उसका तिलक करके उसको आज्ञा चक्र से शस्त्र चक्र पहुंचाया। तो स्वामी जी जब वहां से बाहर निकले, तो स्वामी जी को बहुत आनंद हुआ, क्योंकि कोई भी गुरु को उस स्थिति में लाना, तो स्वामी जी बोला उसको बहुत ठंडे वाइब्रेशन स्वामी जी को महसूस हुए, और उस वसंत दीदी को भी बहुत अनुभव हुआ। और वो होने के बाद में उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं आश्रम पे आऊंगी, स्वामी जी को बताया था। और मैं कभी कोई गुरु अभी मतलब इतने नहीं जुड़े थे, 2006 की बात है, तो गुरु इतने कोई जुड़े, तो स्वामी जी बोला ठीक है तुम आना उधर। तो उसको तो ट्रस्टियों ने बाद में उनको रोक लिया, आने नहीं दिया, मगर वो स्वामी जी के लिए बहुत बड़ी अनुभूति थी, और वो दीदी के लिए भी बहुत अनुभूति थी कि शस्त्र चक्कर खोलना ये बहुत बड़ी चीज हो गई थी। हमारे सामने हुआ था, हमने बहुत देखा हुआ था। ये रोशन दीदी कच्छ में या फिर लिलिया सौराष्ट्र में, लिलिया गांव। ओके, लिलिया गांव। So this is a beautiful anubhuti. Again, one of the guru, female guru, her name was Roshan Didi. She was in Maun, in silence, for almost 14 years. And she requested that I want to meet Swamiji and I want to get the awakening. When Swamiji met her, she had very beautiful aura, very beautiful energy. But Swamiji noticed that she was able to reach through her sadhana, through her tapasya, only up to Agya Chakra. Swamiji put the tilak on her Agya Chakra and help her rise to the ground chakra. And this happened in front of Pratap Bhai.
And he says that it was blessing to witness such a highly evolved soul in the presence of Swamiji reaching to a next level. And Swamiji says that Swamiji also felt very good by meeting this Guru. और आपने गुरु कार्य के बारे में बड़े बड़े महाशिविर और इसकी बात अभी वैसे तो मेरा 2005 में मैं अभी संजय सोनी उस टाइम पे मैनेजिंग ट्रस्टी थे और उस टाइम पे मेरे को स्टार्टिंग में उनके साथ में गुरु कार्य करने को मिला। महाशिविर पहला 2005 में संजय सोनी के उसमें हुआ। उसके बाद में 2006 का जो सूरत शिविर हुआ वो मेरे लिए बहुत बड़ी जबरदस्त अनुभूति है, क्योंकि 2006 में 2 लाख लोगों का शिविर होना ये हमारे लिए, हमने इतना सोचा भी नहीं था। तो हमने ग्राउंड 2 लाख लोगों का बुक किया था। तो स्वामी जी ने उस टाइम बताया था तुम कितनी चादर डालोगे, जितनी चादर डालोगे उतना ही सब कुछ हो जाता है। तो हमने ये मैं चादर उड़ा दूंगा, स्वामी जी कहते हैं। हाँ, तो हमने 2006 में 2 लाख लोगों का किया। अहमदाबाद में बोला 1 लाख का करो, 1 लाख का किया तो 1 लाख का ग्राउंड भर गया। हमने अजमेर में जो ग्राउंड मिला हमको 1 लाख का मिला, 1,80,000 का कुछ ग्राउंड मिला तो 80,000 हुए। तो जहाँ भी ग्राउंड जितने बुक होते थे उतना पूरा भर जाते थे। अपना हम इधर हुआ गोवा के अंदर, गोवा में तो बहुत ऐसा हो गया था कि वहाँ साधक कम थे और वहाँ प्रचार कार्य भी बहुत कम हो रहा था। तो स्वामी जी को एक इच्छा थी कि मराठी में शिविर होनी चाहिए। उनकी इच्छा थी, मातृभाषा मराठी है तो मराठी में एक होनी चाहिए शिविर, उनकी इच्छा ये थी। तो इसके लिए वहाँ तय हुआ था कि हम गोवा में शिविर करेंगे। तो मैंने स्वामी जी को फोन किया, स्वामी जी यहाँ तो इतनी बड़ी महाशिविर हम कर रहे हैं, यहाँ प्रचार वगैरह कुछ हो नहीं रहा है और ऐसे शिविर कैसे होगा। तो स्वामी जी ने बोला तू चिंता मत कर, अपन 5 लोग बैठेंगे तो भी अपन शिविर कर लेंगे, क्योंकि अपने को तो सिर्फ रिकॉर्डिंग करना है। तो ठीक है, मैंने अभी आगे कुछ बोलने का कोई सवाल ही नहीं था प्रचार वगैरह। फिर भी गुजरात के कुछ लोग आए थे और कुछ लोग गोवा के भी थोड़े लोगों ने काम किया, पर जितना चाहिए उतना काम नहीं हुआ। फिर भी पूरा ग्राउंड, भले वो 10,000 या 15,000 का ग्राउंड था, पूरा ग्राउंड भर गया। तो मैं जो नहीं कर रहा था कि 500 लोग भी आएंगे, तो वहाँ पूरा ग्राउंड वो भी भर गया था। तो ये इतना मैंने ये सारा देखा, इतने सारे चैतन्य। गुरु पूर्णिमा भी अलग अलग, सूरत में भी अलग तरीके से हुई थी। वहाँ भी एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, क्योंकि वो बारिश के अंदर जो हुई थी, वहाँ भी पूरा प्लेटफॉर्म रख के गुरु पूर्णिमा सूरत में हुई थी। इस तरह से काफी सारी कार्य हुआ है। उसका कोई मतलब करने जाओ तो बहुत बड़ा है, मगर ये मैं देखा कि ये सब कार्य के लिए कभी पैसे की तकलीफ हुई नहीं। भले अपने को हमेशा शॉर्टेज जरूर रहती है, पर कार्य के अंदर पैसे कहाँ से आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। हम लोग बस सोचते हैं कि अरे पैसा हम देंगे तो ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु तुम्हारे से कार्य 1 रुपया भी मांग रहा है, तुम्हारे भले के लिए मांग रहा है। अगर हम उसको देने के लिए है ही नहीं। अगर स्वामी जी वैसे बहुत दफे बताते भी हैं कि आप 10% दो, 10% देने से आपके बिजनेस में बहुत सारा फायदा होगा, बहुत दफे बताया, मगर हम समझते नहीं। हम सोचते हैं नहीं, अभी 10% का 1 रुपया भी देने को नहीं सोचते हैं। मैं तो अभी भी सबको बता रहा हूँ कि अभी जो कार्य होने जा रहा है, जो मध्य भारत के लिए आश्रम होने जा रहा है नागपुर के अंदर, वो स्वामी जी की जन्मभूमि है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस आश्रम के लिए, क्योंकि ये आश्रम जो हो रहा है अभी तक जो आश्रम हुआ उसमें एक अलग ही हो रहा है, क्योंकि स्वामी जी की मातृभूमि है और वो जगह पे आश्रम हो रहा है। तो मैं सारे इंडिया के साधकों को खास करके बता रहा हूँ कि आपसे जो भी बन सके, मतलब अभी तक आपने जो भी दिया होगा दान, वो अर्पण किया होगा, अभी समर्पण की जरूरत है। आप ज्यादा से ज्यादा एक दफे अभी आप दान करना चाहिए, मैं सबको बता रहा हूँ। क्योंकि पैसे के बगैर काम, आश्रम तो बनने वाला ही है, किसी हालत में बन जाएगा वहाँ, मगर आप जितना जुड़ेंगे, जितना आपका समर्पण रहेगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं इंडिया के साथियों को खास विनंती करता हूँ कि मध्य भारत का जो आश्रम बनने नागपुर जा रहा है, स्वामी जी की जन्मभूमि है, हम सबको उसमें डोनेशन देना चाहिए। मैं सबको हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, आप उसमें जरूर से लाभ लीजिए। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो as Pratap bhai said, Swamiji in his discourse often mentioned, stretch your feet as much as you want, and I will put the bed sheet over you. I will cover you up with the blanket. In Gurukarya, nothing stops simply because we don't have money. So Pratap bhai said that Swamiji's promise to us is, as much as you wish, as much as you want, I will provide you. He is the provider. He is making the provision to each and every one of us
especially when it comes to Gurukarya without any selfish motives. There are many sadhaks who do not donate or who hesitate that how we'll be able to do such a big Gurukarya. For example, many countries who don't have that many sadhaks, they are worried that how we'll create the Guru Shakti Dham. But Pratap Bhai says that it is our experience that when they were doing when he took over the trustee position for the ashram, and they were involved in organizing different mega shivers. Okay, if they found the ground for 100,000 people and they aimed for it, they were able to get it. In 2006 itself, within a year after he took over the responsibility, Surat Mahashivir was attended by 200,000 people. Now, this was something that nobody can even imagine, that how come 200,000 people will be attending this event. It happened. Why? Because they wanted to do this and they made a dream big enough to help that many souls. Another anubhuti he mentioned was about Goa. It was Swamiji's wish that in his mother tongue, Marathi, he wanted to give one live mega shibir. In Goa, they were wondering that we don't have that many sadhak, hardly 500 people will be able to bring. But when they got the place for more than 10,000 people, it was filled with that many people. What is the purpose of this anubhuti? Pratap Bhai said, think bigger. You have to not limit yourself with the intellect or your own limitations. Be ready to give, be ready to do, and Swamiji will make it happen for us. This is his experience. And lastly, he requested that Swamiji's birthplace is Nagpur, which is in the center of India. And now we are aiming to construct an ashram in the Nagpur area. So he wanted to request each and every sadhak from India to come forward and open up their heart and their wallet to contribute toward this mission of constructing the ashram in Nagpur area. So that was an appeal, and I myself also say that wherever you are, whatever country you live in, we have projects going on to give permanent residence to the living energy statues of Swamiji, what we call Mangal Murti. We are trying to construct the Guru Shakti Dham, the place that will be used not just today, for next 800 years, for the upcoming generations, for their self-realization, for their enlightenment. And you cannot use your wealth in a better cause than this, where 7 generations of upcoming families of yours and others, humanity, will be able to take advantage of it. This is a long-term vision. This is a long-term planning, and we all could contribute and make the best use of our wealth. So come forward and donate for this mission. Thank you. तो ये स्वामी जी गोवा में हाँ, गोवा में स्वामी जी ने पत्रकारों का शिविर लिया था, तो उस टाइम खेडूतों का आत्महत्या की बहुत बात चल रही थी। तो पत्रकारों ने पूछा था कि शिविर से आत्महत्या रुक सकती है कि? स्वामी जी ने तब बताया था कि हाँ, जरूर रुक सकती है, क्योंकि हमारे समर्पण में जो साधक है, किसी की भी आज तक आत्महत्या नहीं है। तो अगर खेडूत भी अगर ध्यान करेंगे तो उसका भी आत्महत्या नहीं होगी। और वो पूरे गोवा की पेपरों में और इंडिया के पेपरों में आ गया था कि अगर शिविर के ये मेडिटेशन करेंगे तो आत्महत्या नहीं होगी। मतलब ये बहुत बड़ा सब पूरे न्यूज में आ गया कि मेडिटेशन करने से नहीं होगा, आत्महत्या नहीं होगी, सुसाइड नहीं होगा। This is a beautiful news. So this is the press conference with journalists in Goa in 2008, and they were requesting Swamiji that in Maharashtra, Goa, all these areas, there are so many suicide happening in the farmers community. So do you think Samarpan meditation can stop this kind of incidents? And Swamiji say absolutely yes, because he says that for so many years I am teaching meditation and none of our sadhak have made any suicide. That means Samarpan meditation is capable to
strengthen one strong enough to not go for the option of suicide, because this is the path of collectivity. And in suicide, one seclude himself from the society, from the family, and go away from everybody, and find himself or herself so lonely and so helpless that at the end they have no more resource, but the depression make them go take the path of suicide. But in Samarpan meditation, it is totally opposite. Here, even if somebody is orphan, if they join the Samarpan family, they feel like I am being loved and I belong to this family. And they are encouraged to do more interesting things, more creative things in their life, and they have hope. The most important thing is Samarpan will give you hope and strength and energy to live your life. बहुत खूब, थैंक यू। एक अभी गुरुमा की एक बात कर, हाँ जी, हाँ जी। एक ये इसको एरोप्लेन में तो उससे पहले एक अनुभूति बता रहा था, इसके बाद में बात करेंगे। 2007 में पहली मूर्ति का अनुष्ठान हुआ। उस टाइम पे समर्पण विवाह होता था, उस गुरुमा के उसके अंदर में होता था। स्वामी जी अनुष्ठान में अंदर रहते थे और वसंत पंचमी के दिन यहाँ समर्पण विवाह होते थे आश्रम के ऊपर। तो उस दिन गलती से जो कुछ 4 या 5 पैर थे, उन्होंने स्वामी गुरुमा को पैर छू लिया। तो बहुत लोगों ने तभी ध्यान नहीं दिया और बाद में उनको मना भी करने में आया कि गुरुमा को पैर नहीं छूना चाहिए। तो अब सोचने की बात यह है कि उस दिन तो हो गया, मगर दूसरे दिन गुरुमा ने हमको बताया, देखो उनके हाथ पूरे सूजे हुए, पूरा हाथ में सूजन था, पैर में सूजन था, पैर भारी हो गए थे, एकदम जबरदस्त सूजन हो गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्वामी गुरुमा की उस वक्त भी स्वामी जी जैसी स्थिति होती है कि अगर कोई उनको पैर छू जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। कि मैंने उस दिन देखा, तब 2007 की बात कर रहा हूँ, उसी टाइम पे भी गुरुमा की और स्वामी जी, अभी तो गुरुमा की स्थिति क्या होगी, आप स्वामी जी जैसी ही होगी, और उस टाइम पे भी हमने जो अनुभव किया था 2007 में कि गुरुमा को भी कितनी तकलीफ होती है। खाली पैर जो कपल थे उन्होंने पैर छुआ था, खाली इतने में कितनी तकलीफ होती है। So this is very important to follow Swamiji's guidelines and not to touch Guru or Guruma's feet. Swamiji always asks people or sadhaks to stay away. Because of the Samarpan Viva that is taking place when Swamiji is in the 45 days Mahadhyan, Gandhyan Anushthan. Swamiji is in isolation and Guruma is attending this Samarpan Viva of the young couples. Some young couples touched Guruma's feet, and as a result, Guruma had to do the cleansing of those souls. But it gives her discomfort. So next day, she showed to Pratap Bhai that, look, sadhaks touch us, and then this is what happens. So he witnessed this in front of his eyes, and that's why we encourage people not to do this kind of act. We discourage them to touch Swamiji or Guruma's feet. तो ये फ्लावर्स ऊपर से 2006 में जो अपना दांडी में आश्रम बना, 2005 से शुरू हुआ था, 2006 में कंप्लीट हुआ था, 2005 से कार्य तो शुरू हो चुका था और 2006 में नवंबर में उसका उद्घाटन हुआ। तो मुझे चांस मिला था कि पूरे आश्रम के ऊपर 7 गंठरी भर के दिया था, 7 फूल की गंठरी, और वो प्लान हमने बड़ौदा से प्लान किया था। जो उज्ज्वला जी ने आपको बताया था कि वो भी पायलट थी तो उनकी पहचान थी, तो उन्होंने मुझे चार्टर प्लान करके दिया था। मैं वहाँ से बड़ौदा से चार्टर प्लान से सूरत आया था, सूरत से प्लान में बैठा था मैं, और सूरत से फिर आश्रम के ऊपर एक गंठरी विंडो खोल के, प्लेन की विंडो खोल के ऊपर से फूल वर्षा करने का मुझे मौका मिला था। और वो क्या बात थी ऐसी, तो चैतन्य महोत्सव के टाइम पे सब साधकों पे और आश्रमों पे ये फूल वर्षा करने का मुझे मौका मिला था। क्या बात है, क्या बात है। This is really amazing gift and opportunity that Pratap Bhai got during the inauguration of our Dandi ashram, the first ashram of the Samarpan America, like Samarpan global family that Swamiji had. In fact, we are also working on our Samarpan America ashram. That's why it is on my tongue. So this time,
with the help of Ujjwala ji, they were able to get the charter plane, and Pratap Bhai was lucky enough to sprinkle these petals from the plane all over the ashram premises. And here we can see Swamiji, Guruma, Saraswati ji, and Amrish ji looking in the sky at the plane. And Rasika ji made very beautiful display of this photo, and Yes. makes it look like yes, they are really Real. watching at the plane. Beautiful. तो एक फोटो थी जिसमें यहाँ पे, हाँ, कच्छ दर्शन शिविर के वक्त मांडवी में, ये किसकी बर्थडे है, क्या हो रहा है? हाँ, ये 2006 की कच्छ गुरुमा के साथ हमारी कच्छ दर्शन शिविर है। तो इसमें हम लोग सब गुरुमा के साथ हम सब गए थे दर्शन शिविर में। ये मांडवी का है। मांडवी में इनका बर्थडे था 13 सितंबर को, और ये 12 सितंबर को रात को हम लोग 12 बजने का राह देखने के लिए सब रात को गरबा खेले थे इधर, और फिर केक कटिंग किया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। You guys are so blessed and lucky that you not only spend quality time with Guru Parivar, but even enjoyed this birthday and celebrations with Guruma. Look, Guruma is enjoying playing Garba. This is amazing. इसमें ही एक वो अनुभूति है जो गुरुमा की मांडवी की है, जो जिनरी ने भी शेयर किया था। वो जिस रूम में वो आत्माएं थी, वही रूम में गुरुमा रुके थे। वो मीन्स वो बड़ा रूम था, इसलिए वो रूम रखा था गुरुमा के लिए। और वो गुरुमा का ऐसा रूम में वो जाने की इच्छा ही नहीं थी, इसलिए हम लोग ये बाहर टाइम पास करते थे, गरबा खेलते ऐसा करते थे। फिर वो जैसे ही रात को इस रूम में गए, फिर वो आत्मा, वो जो आत्मा थे, वो कल्पना और जयश्री, उनका नाम था वो कल्पना और जयश्री। तो वो गुरुमा के साथ में बाथरूम में भी आ गए। वो उनको मीन्स चेंज करने नहीं, शांति से बैठने नहीं देती थी उधर। फिर रात को जैसे तैसा गुरुमा ने निकाली, कुछ बोला नहीं। फिर सुबह में हमें बोला कि ऐसा कोई तकलीफ है वो रूम में। फिर जो गुरुमा के ड्राइवर थे वो उन्हें दरिया किनारे पे ले गए थोड़ा। फिर स्वामी जी को उधर से फोन किया उन्होंने, और फिर वो तो जो आत्माएं थी वो तो ऐसे बोल रही थी कि हम आपका शिविर इधर करने ही नहीं देंगे। वो अड़के बैठे थे कि नहीं होएगा शिविर। और गुरुमा ने बोला मैं शिविर करूंगी कैसे भी करके इधर। और उसी दिन हम जनरली जाते थे, तो एक दिन पहले जाते थे, दूसरे दिन एक दिन गुरुमा मौन में रहते थे, और फिर दूसरे दिन दर्शन शिविर होता था, और फिर तीसरे दिन हम लोग निकलते थे। किधर भी हम दर्शन शिविर में जाते थे तो ये प्रोग्राम रहता था हमारा। तो एक दिन तो मौन था, तो गुरुमा ने कुछ ज्यादा बात नहीं किया, वो रूम में ही थे ऐसे, या तो फिर दरिया किनारे चले गए थे। लेकिन जब वो शिविर हो गया ना, उसके बाद हमको गुरुमा ने बोला कि वो ऐसा सब हुआ था। और वो जब वो शिविर होने वाला था शाम को 7 बजे, तभी वो लाइट ही चले गई उधर प्रोग्राम के वेन्यू पे। तो फिर भी गुरुमा ने बोला मैं तो प्रवचन दूंगी, और उन्हें वो प्रवचन दिया। और तभी वो जो है जयश्री और कल्पना वो थी कि हमें तो मोक्ष चाहिए। तो गुरुमा ने बोला ये मेरी स्थिति नहीं है मोक्ष देने की, आपको मोक्ष चाहिए तो आप सूरत शिविर में आइए, मैं आपको आमंत्रण करती हूँ, आप सूरत शिविर में आके मोक्ष मांगिए स्वामी जी के पास। और वो सही में वो दोनों सूरत शिविर में आई थी, और उधर कई लोगों ने देखा ही था कि वो दो डांस भी कर रही थी वो स्वामी जी के सामने, और उनको उधर मोक्ष मिला था। वो दोनों नर्तकियां थी। Very beautiful. So this is to extend the experience of Jinali that they went for the Gurukarya in that was Mandvi, I think. What was Mandvi. And Guruma came after and stayed in that place. There were two spirits who wanted to be liberated, and they were trying to stop Guruma giving a workshop in that place. But Guruma continued giving the workshop even though there was no electricity. And at the end, Guruma said that if you want to be liberated, it is not in my domain. You can come attend the Shibir with Swamiji, our Gurudev, Mahashibir, and you will be able to get liberated. So they attended the Surat Shibir and they got liberated eventually. That is what the Anubhuti continued. Next.
So this is the Christmas gift during the Surat Mahashibir. You can see so many people got the gift. And what was the purpose? आप जरा बताइए उसके बारे में कि क्रिसमस के टाइम में शिविर हो रही थी और इतने सारे लोग आए थे। ये सूरत महाशिविर का समय था जब क्रिसमस का फेस्टिवल चल रहा था। तो स्वामी जी ने बोला देखो फॉरेनर्स ने इनका साल भर का त्योहार क्रिसमस छोड़ के मेरे साथ इधर महाशिविर करने अपना क्रिसमस मनाने आए हैं, तो इनका डेडिकेशन देखो, इनका एक साल का फेस्टिवल छोड़ के आए हैं इधर करके, और इसके लिए फिर सबको गिफ्ट दिया गया था कुछ प्रोग्राम। So this is the heart of Guru, and you are so lucky and blessed to be part of that things. That those who were visiting international sadhaks, Swamiji specially made sure that they get gift, just like the Santa gives gift to young kids in the Christmas time, and they felt blessed. Pratap Bhai was lucky that he became instrumental to give these gifts to these people who were visiting. Amazing. Next. अजमेर के अंदर बहुत कुछ एंजॉय किया था। एंजॉय की बातें दरगाह पे भी गए थे, गुरु माँ ऊंट में कैमल राइड में बैठे थे और क्रिकेट भी खेला है। अरे वाह so many beautiful memories of the Ajmer workshop with Guru Ma and playing cricket with Guru Ma. Amazing. Next. Yes, ये तो सारे प्रोग्राम हमने बहुत सारे चैतन्य महोत्सव, गुरु पूर्णिमा, ये सब तो आ गया। बड़ी बड़ी शिविर हुई भी बताए। ये आश्रम उसको हेलीकॉप्टर को कहीं जगह न मिली तो आश्रम पे उतर गया था। वो उसमें जब उसको तकलीफ हुई थी हवामान की वजह से, हवामान में प्रॉब्लम था, तो आश्रम पे उतरा था, तो उसका एक फोटो लिया गया है। Right. And अजमेर शिविर। Next is Kutch Ashram. कच्छ आश्रम में ये एक कंस्ट्रक्शन हो रहा था अपने गुरु शक्ति धाम का, उसका फोटो है। Yes. ये शिरडी महाशिविर 2018 2013 में भी हुआ था, 2018 में 2 शिविर महाशिविर हुई थी। राइट। तो यहाँ पे आपको 2018 में भी आपको जिम्मेदारी दी गई थी ये 2013 और 2018 महाशिविर मैं और उमेश भाई जी उन्होंने मिलके इसका कार्य किया था। बहुत सारे साधक भी थे, मगर हमको स्वामी जी ने बोला था आप दोनों मिलके करो करके, और काफी कभी वगैरह सभी लोगों ने साथ दिया था, तभी तो इतना बड़ा कार्य होता है। महाशिविर में तो सभी साधकों का साथ होता है तभी कार्य होता है, ऐसे नहीं होता है। तो बाद में हम जो थीम पार्क में गए थे उसका फोटो है। Very nice. भोजनशाला में गए थे। और ये कच्छ की रण की अनुभूति आपको मालूम है कि स्वामी जी बहुत सारे प्रवचन में बताया भी है कि रण के अंदर जाओ, जो हिमालय में जो अनुभूति होती है वो कच्छ के रणों में मिलती है। तो हम कच्छ के रण में गए थे और स्वामी जी ने वहाँ उसकी अनुभूति कराई थी, उसका फोटो है। क्या बात है। रण का है। ये महुड़ी आश्रम का भी है, यानी कि कहाँ पे आप नहीं थे, मुझे तो ये नहीं दिखता है कि आप कहाँ नहीं थे। जितने स्वामी जी हर जगह पे है, आप भी वहीं पे हो, हर जगह पे। अब जब कार्य से जुड़े रहेंगे तो स्वामी जी सब जगह पे होंगे। मैं अभी आपका एक फैमिली का एक, मैं अभी जब अमरीश जी का जनवरी का कार्यक्रम हुआ था तो उसमें मामा की जरूरत होती है, तो स्वामी जी ने मुझे उसका अमरीश जी का मामा का भी चांस दिया था, तो जनवरी का मुझे करने को मिला था। एक खूबसूरत बात है कि स्वामी के पर्सनल रिश्तेदार की तरह आप जोड़ गए। मैं उसमें एक अनुभूति आपको बताता हूँ। जब इसका जनवरी का कार्यक्रम हो रहा था ना, तो ब्राह्मण बुलाए गए थे और वो मंत्रोच्चार कर रहे थे। तो वो मंत्रोच्चार के अंदर वाइब्रेशन क्या होता है ना, वो ब्राह्मण को नहीं मालूम था। ब्राह्मण बोल रहा था मगर उसको ये पता नहीं था कि इसमें वाइब्रेशन क्या है, कैसे हो रहा है, उसको कुछ समझ नहीं। कि स्वामी जी ने उनको बताया कि ये आप जो मंत्र जो कर रहे हैं उसका ये वाइब्रेशन है, आप इसको चेक करिए। उनको समझा रहे थे, तो वो ब्राह्मण भी चकित हो गया, कह रहे स्वामी जी को हम मंत्र बोल रहे हैं, उसका वाइब्रेशन का पता लग रहा है। तो वो ब्राह्मण बाद में, वो मुलुन के ब्राह्मण थे, बाद में वो भी साधक हो गए अमरीश जी के। तो और ये वाइब्रेशन का मतलब
उनको अभी जितने भी ब्राह्मण है कोई विधि कर लेते हैं मगर उसका वाइब्रेशन नहीं मालूम। स्वामी जी ने उनको सिखाया था और उसके बाद में वो साधक भी हो गए, आज तक अभी भी साधक है। तो स्वामी जी कहते हैं ना कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म की विद्या का ज्ञान होने से, वाइब्रेशन की विद्या का ज्ञान होने से ब्राह्मण होता है। तो इसलिए जिसका दूसरा जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। और ये समर्पण ध्यान ऐसी पद्धति है ध्यान की जिसमें गुरु की कृपा से हमारी आत्मा का दूसरा जन्म होता है। और ये मंत्र की अनुभूति में से एक याद आया कि हम जब पालीताना में थे ना, तो उस टाइम पे जैन गुरु ने बोला कि हमारे भी मंत्र जैन धर्म के अंदर अच्छे अच्छे मंत्र है। तो स्वामी जी बोले तुम बताओ मंत्र। स्वामी जी एक मंत्र, हम बैठे थे सब, तो एक मंत्र एक जैन मुनि था बोला, जैसे ही मंत्र बोला मैं भी आंख बंद करके बैठा था, तो मुझे राइट साइड में फील हुआ, सॉरी लेफ्ट साइड में। तो स्वामी जी ऐसे बैठे थे, तो मैंने स्वामी जी लेफ्ट साइड का मंत्र है, मेरे से निकल गया मुंह में से जबरदस्त कि लेफ्ट साइड का मंत्र है। तो मुझे तब अनुभव हुआ कि मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि लेफ्ट साइड का मंत्र, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड में अनुभव हुई। तो को बताया कि मेरे को लेफ्ट साइड में यहाँ इफेक्ट करके, तो स्वामी जी ने बोला कोई मंत्र होते हैं, कोई लेफ्ट साइड का होता है, कोई राइट साइड का होता है, तो इसके लिए आपको समझ के उसका करना पड़ेगा। तो मुझे फर्स्ट टाइम ऐसी अनुभूति हुई कि जैन धर्म में भले मैं बड़ा हुआ तो मंत्रों का वाइब्रेशन का भी हुआ, पालीताना में मुझे अनुभव स्वामी जी ने करा दिया, गुरु ने बोला, जैन गुरु ने, और मुझे अनुभव हुआ। तो उसके बाद में जो नवकार मंत्र है जैनों का मेन खास बोला जाता है, तो उसका भी वाइब्रेशन मालूम पड़ा। तो शस्त्रार्थ का मालूम, शस्त्रार्थ तक उसका भी वाइब्रेशन है, शस्त्रार्थ का बचा सकता है। तो उसको मंत्र को अगर उस तरह से उस ध्यान की स्थिति में बोला जाए तो ही उसकी अनुभूति होगी, नहीं तो नहीं होती है। तो ऐसा बहुत सारे मंत्र है जो हमको जानकारी नहीं है, मतलब हर धर्म में होगा, जैन धर्म में है, वैसे हिंदू धर्म में होगा, बहुत सारे धर्म में होगा, मगर उसका जब तक नॉलेज नहीं तो उस मंत्रों का हमको उसका कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमको अनुभूति ये भी एक हुई। सही है, सही है। So Pratap bhai is talking about his anubhuti that there was mantra that was chanted by Swamiji and he spoke out that it is the Chandranadi or the left side mantra. And Swamiji then explained that he asked Swamiji that why I ended up saying this. I don't have that kind of knowledge. So Swamiji says that every mantra has its specific energy, that effect, that create the effect on either on your right side, left side, or central nadi, madhya nadi. And that is the impact of different mantra. For example, when you speak Gayatri mantra, it affects your Surya Nadi. When you speak Naukar mantra, it affects your Madhya Nadi. And it can help you reach all the way up to crown chakra. But you have to speak in specific state of your mind and your soul. So that is important. And I have to apologize. I have an appointment for getting vaccine, like a COVID test done, because I'm traveling tomorrow. Sonalji, may I request you to take over the interview and conclude? Probably I will be back before you conclude, but I have to leave. Okay. We can continue Yes. interview and go with the questions. Yes, you will be with us in the energy form. So definitely we will. I'm sorry. I'm traveling. Yes. I'm in Mexico, and this is the formal TIC. Yeah. तो हम आगे बढ़ते हैं. Yes. Sure. Please continue. What time will you be back, Hitendra? I don't know how much time they will take, but it is. No problem. Okay. Thank you. Just Swamiji ki ichha. Yes. Thank you. Yes. Okay. जय बाबा स्वामी. I hope आप लोग ठीक हो, मतलब थके हुए तो नहीं हो. चलेगा कि हम बस वही पूछना था. अनुभव ऐसा है कि कभी भी गुरु कार्य करने को मिलता है ना, तभी बहुत सारा ऐसा लगता है कि एनर्जी बहुत सारी मिलती रहती है. उसके
जब कार्य खत्म होता है फिर लगता है कि हाँ, तो अभी आराम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करते वो जाओ, वही लग रहा है हम सबके लिए। आप बिल्कुल इंस्पायरिंग हो, क्योंकि 12 बजने वाले हैं इंडिया में ऑलमोस्ट, और आपकी एनर्जी एकदम फिर भी पीक पर है। तो यही पता चलता है कि इतने सालों में आपने किस तरह से गुरु कार्य किया और इस तरह से हम लोगों को दिया है इन द पास्ट। सो थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं, और आपकी कहानी ही हमें आगे ले जाएगी और वो एनर्जी को मेंटेन करेगी, इवन दो हितेंद्र जी इज कनेक्टेड विद चित्तल। तो वी विल नॉट stop the momentum of energy and we'll continue with the Shibir stories. Okay, go ahead, Pranamji. Next slide, please. राइट, तो ये आप लोगों ने राजकोट के महाशिविर के तो शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी अनुभूतियां, पर जस्ट आपने वो ग्राउंड की कैपेसिटी के बारे में जरूर बताया था ये सब में consistently when sharing the points. ये हमको मुझे सूरत शिविर इसको बताना पड़ता है। राजकोट शिविर का मैं अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ये राजकोट की महाशिविर अटेंड की थी, मीन्स 8 डेज का महाशिविर मैंने राजकोट का ही फर्स्ट टाइम अटेंड किया था। तो इसमें क्या हुआ था कि एक फैमिली फंक्शन था हैदराबाद में, तो मुझे हैदराबाद जाना था। तो मैं इधर मुंबई से हैदराबाद गई, हैदराबाद से वापस मुंबई, और मुंबई से जामनगर, जामनगर से राजकोट, ऐसा मैं वो महाशिविर के लिए पहुंची थी। और वो मीन्स जब चाहा है तो रहा है वैसा हुआ था। मीन्स मुझे जाना था तो कैसे भी पहुंच गई थी मैं। और ऐसा इतना ट्रेवल करके भी गई थी। और वो भी और दूसरा अनुभव ऐसा है कि ये राजकोट शिविर में ही, महाशिविर में ही स्वामी जी ने इनकी वो कार एक्सीडेंट वाली अनुभूति बताई है। तो उसी दिन सुबह में, और मैं तभी इसके एग्जीबिशन के गुरु कार्य में मैं स्टार्ट हुआ था मेरा राजकोट महाशिविर से ही। तो मैं तभी वो एग्जीबिशन में सुबह में बैठी थी, तो मैं सब वो थोड़ा जिनको पता चल गए थे कि ये कुछ अनुभूति हुई है, तो मुझे बोल रहे थे कि आप लिख के दो ना। तो बोले हाँ चलो मैं लिखने को बैठती हूँ करके। और मैं लिखने को बैठी थी और मैं लिख रही थी, लेकिन मुझसे लिखा नहीं जा रहा था, एकदम हाथ पांव ठंडे हो जा रहे थे और मेरे से लिखा नहीं गया। लेकिन स्वामी जी को क्या पता चल गया कि उसी दिन शाम को वो अनुभूति स्वामी जी ने शेयर कर दी। स्वामी जी को ऐसे लगा कि ये पत्र में आएगा तो थोड़े जन को आएगा, लेकिन मैं पूरे सब लोगों को शेयर कर देता हूँ। और वही सेम डे वो अनुभूति स्वामी जी ने शाम को शेयर कर दी। और जब वो स्वामी जी अनुभूति शेयर कर रहे थे तभी मेरे हाथ पांव ऐसे ठंडे हो गए, ऐसे ठंडे हो गए कि पूछो नहीं, मैं तो वो जगह पे एकदम फ्रीज हो गई थी। अनुभूति मेरी हुई थी जब वो बोल रहे थे, तो मैं भी वहां से एकदम एकदम जकड़ गया था, पूरा हिल ही नहीं पा रहा था काफी समय। यस, बहुत ही सुंदर, क्योंकि वो अनुभूति ही इतनी स्ट्रांग थी। तो लेट मी ट्राई टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे साधकों के लिए। जस्ट 2 मिनट। तो पहली वाली अनुभूति, फर्स्ट अनुभूति was shared by Harshaji. When there is a will, there is a way. So she traveled from hopping one city to another city in India, from Hyderabad, Mumbai, and then to Rajkot. She made it happen because there was a wish of her to attend the Mahashivir, and she reached there. So that just tells us a lot about how if we just wish and Guru Shaktis make it happen. Another anubhuti was Harshaji writing Pratapji's anubhuti when Swamiji was sharing it in Rajkot Shibir. So Pratapji's anubhuti of the car accident that we had just previously seen before the break. So that anubhuti was so intense that Harshaji, while writing that anubhuti as Swamiji was describing, just froze during that and could not write. And actually that anubhuti is still live, Harshaji and Pratapji. That day when we had in the meeting, when you had shared that anubhuti and I was making notes, I was completely frozen in state too. And somehow it happened that Hitendraji's connection dropped out, and he called during that meeting when you were describing in our Zoom meeting behind the scene. And when he called, I literally jumped out of the chair because I got so scared that time when you were describing that anubhuti ki, it is still has that much power of life and situation that Swamiji was telling us. So yes, thank you for sharing those things, Harshaji and Pratapji. Thank you. आगे बढ़ते हैं, बताइए।
ये हैदराबाद दर्शन शिविर 2010 आपके मातृ ऋण की अनुभूति? यस मैं 2005 का हो गया, मैं 2006 से स्टार्ट करती हूँ। 2006 स्वामी जी घर पे भी आए थे और फैक्ट्री पे भी आए थे। उनके चरण हमारे फैक्ट्री पे 2006 में 2005 में उनके चरण हमारे फैक्ट्री में भी आए हुए थे और उसके बाद घर पे भी आए थे। और तभी ऐसा हुआ था कि स्वामी जी ने एक मुझे बुक दी थी जो टीम की पुस्तक है, द फ्लो ऑफ अनकॉन्शियसनेस। वो इंग्लिश में है, तो मुझे ऐसा क्या मालूम स्वामी जी को पता चल गया कि इसको लिखने का शौक है, तो वो बुक मुझे दी थी कि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देना। और वो गुरु कृपा से मेरे से हिंदी में ट्रांसलेट भी हो गई और वो पब्लिश भी हो गई है। और वो बुक अभी अपने साहित्य में सेल भी होती है चैतन्य प्रवाह नाम से। Very, very true, because let me say it in English for our sadhaks, that in 2005, Swamiji graced Pratapji and Harshaji's home and also factory. So that was one thing, and many times it happened. So the picture that you're seeing is in 2012, but they have visited the couple many times at the home and also at the work and office. And also Harshaji's anubhuti was that she was given a Gurukarya of translation of Tim Symes' book, Flow of Consciousness, and that book, with Guru's grace, she was able to translate it in. And now, Harshaji would love to know that we are using that book's the question answer forms of that book in our WhatsApp groups here too. So that is very heavily used book for all our sadhaks. So thank you for that Gurukarya that you did. It was all done by Guru's grace. Yes, बिल्कुल. So I think we covered that. Yes, यहाँ पर संबलपुर प्रचार कार्य की अनुभूति है जो अभी very recent 2019 की, तो उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये मेरी मीन्स जैसे मैंने हैदराबाद में 2010 में गुरु कार्य किया था, तो मेरी मीन्स मातृभूमि में गुरु कार्य किया था। तो इसके वो मेरी फ्रेंड है, संबलपुर के रहते हैं, संबलपुर वाले हैं जो मुलुंड में रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपने हैदराबाद में उधर आपके मम्मी के साइड के सब रिलेटिव्स रहते हैं, उधर गुरु कार्य किया, तो मुझे भी संबलपुर में ऐसा गुरु कार्य करना है, तो आप मेरे साथ चलते हैं क्या? मैंने चलो चलते हैं, इसमें क्या है, गुरु कार्य तो करना है तो किधर भी जा सकते हैं। तो उसके साथ हम गुरु कार्य के लिए गए थे संबलपुर, उधर रुके थे, सब प्रचार प्रसार किया था। 8 दिन का शिविर दो जगह पे लगाया था, 8 दिन का शिविर, और थोड़े साधक भी उधर हुए थे, पटेल फैमिली में, और दूसरे 3 जगह पे लगाई थी शिविर उधर, और थोड़े साधक भी हुए थे तभी। और वो गुरु मीन्स वो अभी शिविर सेंटर अभी चालू हो गया है उधर। बहुत सुंदर. Of course, your foundation, your pure wish has fulfilled. So let me translate this part of the anubhuti. So like Harshaji had mentioned, in 2010, she did a lot of Guru Karya for Hyderabad Shibir, and she was given this opportunity. When she asked Swamiji, why was I given this responsibility? Harshaji said, when Harshaji asked that to Swamiji, Swamiji said that you were born there, so you have to pay the debt to the motherland, where the Janma Bhumi, the birth land, and that is why you are given the Guru Karya, so you can pay back the debt that you were born for, where you were born. So that was along the similar line. She was asked from a sadhika to go do Prachar Karya in Sambalpur, where she was from. And Harshaji went with her, and then this is very recent, 2019 in Orissa, and they did Prachar Karya. And the good thing is Samarpan meditation is running there very nicely because of the things that they founded there. So thank you for spreading Samarpan meditation in Orissa for us. Alright, so ये इंटरनेशनल साधक के तो हमने काफी सारे फोटोज देखे हैं आपके, और आपके घर में आपने बताया कि वो रहते ही थे, कभी भी you were hosting them, kids were bringing them from airport and doing all the Guru Karya. So शॉपिंग भी करते थे इधर, उनको मजा आता था, और हमको
मजा आता था। हाँ, so that was very beautiful that you provided the home for all our international sadhaks, and we also feel here that once you become a sadhak, the house is not of yours; it is of Swamiji. So whoever comes, the door just opens and they come and stay like it's just Swamiji's ashram. So thank you for doing that beautiful Gurukarya. Now we are just going through these points. I'm scanning through. I think you covered all of it. We know that you got to stay in Surat for 45 days. For Surat Mahashibir, Mahashibir, Gurukarya. For Gurukarya. in Gurukarya, for Gurukarya, we both stayed 1.5 months to do Gurukarya there, because there were 25 sadhaks were there in Surat. So all sadhaks from all over the Mumbai and from Navsari, they used to come there and do Gurukarya. So we had to stay, and it was also a very good experience. They were so उनको इतना भाव था कि हम किधर भी समझो जाते थे ना गुरु कार्य के लिए, तो हमें वो खाना भी हमें जहाँ एरिया में रहते थे ना, हमको फोन करते थे दोपहर को 12 बजे, आप कौन से एरिया में प्रचार कर रहे थे, हमको उधर लाके वो खाना खिलाते थे। हमको बोलते थे कि आप खाना खाने का उधर भी मत आओ अपनी एरिया में, उधर भी आके इतना टाइम वेस्ट, हम आपके लिए फूड लेके आते हैं। तो उधर हम बैठकर वो ऐसा पिकनिक का माहौल बनता था उधर तभी तो। और जब इसके शिविर के जब इनविटेशन कार्ड आए थे, तो फिर फॉरेन के साधिका थी, एक तो यूके की साधिका थी, उसके साथ चांस मिला था सब जगह कॉर्पोरेट में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके इनविटेशन कार्ड देने का। तो वो भी मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला था उनके साथ, फॉरेनर्स के साथ में रह के वो गुरु कार्य करने का। Yes, very, very beautiful. So let me just translate this part. Harshaji got a chance to do Gurukarya at Surat Mahasibir for 45 days, and for that she did Prachar Karya. And the beautiful thing was when she would go on the field to spread the word for Samarpan meditation, Surat Mahashibir, the locals of Surat Mahasibir, the local sadhaks would feed her and will bring the food to them. Whole team. Yeah, yes. So they will make sure that even like this is such a beautiful learning experience that when you are doing Guru Karya, you are like, you become a king and you being treated for every convenient thing. Food is coming to you. Sab itna samman sabka milta hai. Swamiji makes us sit on that throne when we are doing Guru Karya, and it takes care of every little physical need that we are part of. So that is so beautiful. And also you got to distribute in schools and colleges and corporate office. You got to distribute the invitation for this event, and that was very boosting your confidence. That was very helpful for you to go and do that Guru Karya. So our self progress is happening while we are being treated like a king and queen. So that is, I think, the lesson from it, and that's beautiful. Thank you for sharing. And आप लोगों ने अजमेर शिविर का बता ही दिया कि गुरुमा के साथ क्रिकेट खेला था और कैच आउट किया था, एंड वो तो दर्शन शिविर था, ये महाशिविर है। हाँ जी अजमेर ट्रिप का। एंड देन you were part of Acharya Sammelan many times for your input. So any experience from that you would like to share? Acharya Sammelan में आपने आचार्य हमने एक या 2 साल कुछ गई थी आचार्य सम्मेलन में, मुझे इनवाइट किया गया था। तो एक बार हम आचार्य सम्मेलन में रात को ऐसे ही मीन्स हमको है ना वो बड़ाला की भूत की शिविर है ना, जो स्वामी जी बोलते हैं भूतिया शिविर, वो हमको रात को है ना वो सीढ़ी बताई भूतिया शिविर की बड़ाला की। और फिर हम वो शिविर देख के रात को 11 कुछ बजे होंगे, बाहर निकले तो स्वामी जी बाहर ही खड़े हैं कि देखेंगे अभी हम सब लोग कैसे है, बराबर तो है ना, तो देखने के लिए डर तो नहीं गए ना सब। Yes, that is so caring. That is caring side of Swamiji, that even while watching the Shivir, if you are scared, he is there. Guru Mauli is there to just cuddle you, hold you, and take care of you. That's so beautiful. So moving on. So I think we covered all of it from this, and then there is more. 2010 का हैदराबाद दर्शन शिविर का बता देती है मैं। हाँ जी बिल्कुल। ये 2008 में हैदराबाद के कुछ रिलेटिव्स अहमदाबाद अजमेर महाशिविर में आए थे, तो उन्होंने बोला कि हमको हैदराबाद में ऐसा शिविर करना है,
तो मैं बोले देखो अजमेर महाशिविर में आप प्रार्थना करो, हो जाएगा करके। तो उन्होंने सच में उधर प्रार्थना की थी। और फिर हम लोग दिसंबर में 2008 में महाशिविर हुआ अजमेर का, और 2009 में फरवरी में हम लोग मुलुंड का पूरा टीम लेके प्रचार के लिए गए हैदराबाद। और वो ट्रैवलिंग का भी ऐसा एक्सपीरियंस है कि हमने टिकट निकाला और किसी का भी टिकट कंफर्म नहीं था। हम लोग सब स्टेशन पे पहुंच गए, टिकट किसका भी कंफर्म नहीं था, फिर लेकिन स्टेशन पे जाके पता चला कि सबका टिकट कंफर्म हो गया है। एक्सपीरियंस है। और वो 15 जन का टीम था हमारा, सब मुलुंड सेंटर से गए थे वो टीम बना के। और फिर उधर जाके पूरा टीम ने सब अच्छा प्रचार किया, और पहला ही शिविर उधर प्रोजेक्टर शिविर हुआ था। हाँ, very nice. So, can you go back to the previous slide? The last point of the slide is what she is talking about. So, in 2009, there was a Hyderabad projector shibir, and Mulund sadhaks went to that shibir as to do Gurukarya. And as Harshaji is telling that nobody had like confirmed train ticket to go through this journey, and there were 15 sadhaks who were going. And by the time they reached the train station, the train tickets were confirmed. So, and they were good to go for the Gurukarya. So this is another anubhuti of Swamiji taking care of you, and just go and don't stop, and everything will be arranged for you. So that was a beautiful sharing. So with that, Hitendra ji is back. So over to you, Hitendra ji. You got your COVID test done. Yes. So please. Yes. We can go to the next slide. Yeah. 2010 हैदराबाद महाशिविर के समय स्टार्टिंग से प्रचार से लेके ग्राउंड से लेके स्वामी जी का निवास स्थान से लेके स्वामी जी के फूड की व्यवस्था से तक लेके और इवन होस्टिंग सब गुरु कार्य करने का एक अच्छा सुनहरा मौका मुझे मिला था। और मैं लगभग 2 महीने उधर हैदराबाद रुकी थी वो सब कार्य देखने के लिए और करने के लिए। Wow, that is quite a privilege that you had this big responsibility. Yes. I think because of that you got after bigger responsibility in 2013 for Guru Purnima. Because you did such an excellent job. Yes, it was done really. Yes. ऐसा लगा कि यार ऐसा कार्य हो भी गया ऐसा करके। मतलब ये इसका मतलब सब कुछ गुरु करवा लेते हैं, हमारी कोई ताकत नहीं, एक डॉक्टर भी यहाँ से रख सके, वो गुरु ही करवा लेते हैं हमारे से। The most important thing is नम्रता और समर्पण। हम जितने विनम्र बनते हैं, जितना समर्पित होते हैं, उतना गुरु हमसे वो कहते हैं ना कि हम जितना घोड़ा बने उतना सामान मिलता है हमको, उतने ऐसे रथी महारथी हमारे ऊपर राइड करते हैं। तो ये गुरु शक्ति है जो जितनी हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाती है उतना हमें देते जाते हैं। लेकिन आपका भाव जो है, आपका परिवार का भाव जो है समर्पण में, गुरु कार्य में, यह तो अद्वितीय है। मैंने ऐसा कभी किसी की स्टोरी में इतना नहीं सुना है जितना आपने, यानी कि संपूर्ण समर्पण जो कहते हैं ना, वो आपकी स्टोरी से झलकता है। हर शब्द में, हर बात में, हर अनुभूति में तन मन धन आत्मा सब कुछ तेरे नाम कर दिया, ऐसा लिखता है सबकी बातों में। ऐसा नहीं सिर्फ मम्मी पापा की बात में, बच्चों की बातों में भी। तो ये गुरु के आशीर्वाद, ये गुरु की कृपा हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। रियली लास्ट अनुभूति खाली 2012 इंटरनेशनल रिट्रीट की मैं शेयर करना चाहूंगी जो मैंने लिखी है। हाँ जी। 12 में जनरली इंटरनेशनल रिट्रीट जो पहले डांडी आश्रम में हुआ करते थे और फॉरेन के साधक आते थे, तो मैं उधर गुरु कार्य भी मैं जाती थी 10 दिन के लिए, क्योंकि थोड़ा ट्रांसलेट का भी है ना, बहुत इंग्लिश स्पीकिंग साधक नहीं थे डांडी आश्रम में, तो थोड़ा ट्रांसलेट के लिए और थोड़ा किचन में भी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा उनका फूड का थोड़ा अलग रहता था ना, सब फॉरेनर सब आते थे। तो ऐसा ही अनुभूति 2012 में मुझे सभी ऐसा कुछ तय हुआ कि है ना, हम सब साधकों जो फॉरेनर्स आएंगे ना, उनको सबको हमको कॉन्टिनेंटल खिलाना है। मैं सुबह में ब्रेड बटर रहेगा, दोपहर को तो नॉर्मल सब्जी रोटी रहेगी, लेकिन शाम को अलग पास्ता और अलग अलग ऐसे सब वैरायटीज खिलानी है। और वो इनविटेशन तो इंटरनेशनल रिट्रीट का बाद में है, लेकिन उसके पहले मुझे क्या हुआ, 1 महीने पहले मैंने क्लास किया था कॉन्टिनेंटल डिशेस का। वो कुदरती क्लास करने का मौका मिला, मैंने क्लास कर लिया। और फिर तभी गुरु माँ ने बोला कि आपको भी ऐसा सब बनाना आता है तो आप आ जाना उधर। और पहले टाइम
पास्ता पिज्जा घर पे बनाते हैं तो 4-5 जन का बनाते हैं, इतना तो नहीं बनाते हैं। 100-150 लोगों का सबका खाना बनाना। लेकिन जब फर्स्ट डे में किचन में काम करने गई ना, तो मैं इधर किचन में सब खाना में हेल्प करने वाले सब थे, लेकिन वो मेन सब इंग्रेडिएंट्स देखना पड़ता है ना, वो मैं कर रही है। और स्वामी जी बराबर सामने की वो चेयर पे बैठे, उधर ओटला था ना, ओटले पे बैठे थे। स्वामी जी उधर से एनर्जी दे रहे थे कि आज ये खाना बना रही है, 100 जन का खाना बराबर कॉन्टिनेंटल बन जाएगा इसके हाथ से। सही है, सही है। तो जैसे प्रताप भाई कहते हैं कि आपका भाव है तो वो गुरुजी करवा लेंगे आपसे। नहीं, और इसके बाद में हुआ क्या था कि ये स्वामी जी वापस गए थे इधर लंदन वगैरह फॉरेन में, कहीं तो है, कनाडा सब जगह पे गए होंगे। तो वहाँ इसका नाम सुना था कि रसोई जो इंटरनेशनल आए थे, हर्षा जी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो हर टाइम पे स्वामी जी बोलते थे तेरा उधर नाम सुन के अभी तू ही बनाया कर रिट्रीट के टाइम तक। गोवा में शिफ्ट हुआ ना तब तक ये यहाँ गोवा, अभी इंटरनेशनल रिट्रीट लास्ट में गोवा में होती थी। गोवा नहीं गई, दांडी में थी, तब तक वही बनाती थी। तो गोवा की पहली जो 2013 की जो रिट्रीट हुई इंटरनेशनल, उसमें मैं गया था। वहाँ पे बहुत अच्छा, वहाँ पे साधकों ने भी बहुत अच्छा किया था इधर। लेकिन 8, 9, 10, 11, 12 किया था। मतलब 8 से चालू किया था, 12 में स्वामी खास फॉरेन वाले ने बोला था, इसके लिए स्वामी जी इसको इनवाइट किया था कि अभी तुमको ये करना है करके। That is really beautiful. So what I want to share with our international audience is Harshaji took some classes in international cuisine or continental food, and this happened in 2011. And next year in 2012, Guruma offered her that why don't you come and make some dishes for our international retreat, and so that our international sadhak will enjoy that. And she got this responsibility in 2012 international retreat, and people enjoyed it. People liked it so much that whenever Swamiji was traveling, they were saying that Harshaji's food was really delicious. We really enjoyed that. So this is the bonding. Swamiji gave energy to do that food. Yeah, no, स्वामी जी की ही एनर्जी है, हम लोग सब। लेकिन आपको इतना मौका मिल रहा है क्योंकि आप इतना भाव रखते हो। That is what I noticed. बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है। और फिर 2018 गुरु पूर्णिमा शिरडी महाशिविर में भी आपने गुरु कार्य किया, प्रचार के लिए गए थे। जनरली मैं गई थी उधर ऐसे ही प्रचार के लिए ही, लेकिन फिर क्या हुआ कि उधर है ना प्रचार कार्य करने वाले बहुत थे, लेकिन उसके मैनेजमेंट करने वाला कोई नहीं था। मैं कीर्ति भाई थे तभी अकेले, तो उनसे इतना मत सब मैनेजमेंट नहीं हो रहा था। तो मैं फिर वो मैनेजमेंट का कार्य हाथ में ले लेती थी। प्रचार करने के लिए जाना है तो उनको पहले देखना कि कौन सी जगह पे साधक भेजने हैं और क्या टेम्पो की अरेंजमेंट करनी है, क्या फूड का अरेंजमेंट करने का, वो मैनेजमेंट का कार्य मुझसे हो गया वो शिरडी महाशिविर में। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। इधर जमा इधर आने वाले थे तो मैं बोली मेरे को तो इधर आना ही नहीं, मैं तो शिरडी रुकती है, उधर गुरु कार्य करती। मोर द मेरियर। लेकिन अनुभव और भाव ये दोनों आपका काम लगता है, बिकॉज स्वामी जी के कार्य में तो कोई भी आए हमें जुट जाइए। हम अमेरिका में भी इतना सारा बढ़ रहा है, तो anybody who come and approach me, I say I can put you in this Guru Karya, I can use your help in this Guru Karya. स्वामी जी को चाहिए ही कि साधक आए भाव के साथ और उनके साथ कार्य हो जाए। और इतना बड़ा करना यानी कोई आसान चीज थोड़ी है, इतने सारे लोग लगेंगे ही लगेंगे। तो सही है, जैसे प्रताप भाई ने बताया कि महाशिविर is such a place where as much help is possible we can take it and we can use it in a productive way. Very beautiful. आगे बढ़ते हैं। So इतनी सारी बातें हुई, इतने सारे अनुभव, आपकी जीवन की यात्रा इतनी प्रेरणादायक है कि कभी बात रुकाने को जी नहीं करता है। लेकिन फिर भी आपकी ओर से कोई संदेश साधकों को देना चाहोगे जिससे उनको भी प्रेरणा मिले, मुझे भी कुछ प्रेरणा मिले, सीखना मिले? मैं तो इतना ही बोलता हूँ, स्वामी जी जो भी कार्य देते हैं वो हम कार्य पकड़ लेना चाहिए। और हमारे हाथ से ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से कार्य हो गया, मगर स्वामी जी आपसे करवा लेते हैं, चाहे कोई भी छोटा साधक हो चाहे बड़ा साधक हो। स्वामी जी आपसे हर एक कार्य आपसे स्वामी जी ही करा लेते हैं। हमको माध्यम बनने का मौका मिलता है और उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। स्वामी जी ने आपको कोई भी कार्य दिया है उसको छोटा बड़ा समझ के नहीं, उसको कार्य कर लेना चाहिए। और मैं एक बात बताऊंगा कि जो
बहुत जगह पे ऐसा होता है कि हमारे पास फंड नहीं है, वो नहीं है। मैं हमेशा बताता हूँ फंड की कभी कमी रहने वाली नहीं है और कभी कोई कार्य फंड के लिए रुकने वाला नहीं है। हम कितना जुड़ सकते हैं, मैं जहाँ भी समझ लो कनाडा में कुछ होने वाला हो या अमेरिका में कुछ होने वाला हो, लंदन में कुछ होना, सबको बोलता हूँ आप खाली फंड से जुड़िए जितना आपकी हो। आप चाहे अर्पण करो चाहे समर्पण करो। अर्पण मतलब आपके पास कुछ है उसमें से थोड़ा दो, समर्पण करो मतलब आपसे जो एक्सेस है पूरा दे दो। तो इस तरह से आप जो भी करो, आपका भाव आगे आपको इसके लिए ये काम आएगा, क्योंकि आपके देने का नाभि चक्र आपका विकसित होगा और आपको बहुत सारे मतलब इसमें आपका हमेशा है ना चित्त देने में लगेगा, लेने में नहीं। अभी क्या होता है, स्वामी जी बोलते हैं एक क्यों बोलते हैं कि तुम्हारे में देने का भाव आ जावे, इसके लिए। और ये होता है ना कि हमने जो भी कार्य किया, आज ऐसा लगेगा कि हम राजकोट आश्रम में भी कुछ किया है, मौर्य आश्रम में किया, दांडी आश्रम में किया, चाहे किसी का, तो अपने भाव होता है कि हमने गुरु कार्य किया, तो इससे हमारा भाव वृद्धिगत होता है। तो मैं सभी को ये बताऊंगा कि आज खास करके जो यहाँ का हो रहा है मध्य भारत का, उसमें जरूर से आप लाभ लीजिए। और कभी भी ऐसे मत सोचिए कि मैं छोटा सा तो डोनेशन के लिए हो चाहे गुरु कार्य के लिए हुए, आप जरूर से करिए और इसमें कभी भी आपको कमी नहीं आएगी। हमेशा जो भी दोगे उसको वृद्धिगत ही होगा, क्योंकि हमने इतना साल कार्य किया है, हमारा वृद्धिगत हुआ है। मैं भौतिक चीजों में कुछ बोल नहीं पाया, अभी लास्ट में बताता हूँ कि मैं जब 2003 में जब जुड़ा था तब मेरी की क्या परिस्थिति थी। मेरी भले बिजनेस था, सब कुछ था, मगर जब आज 2022 है उसमें बहुत सारा चेंजेस, मतलब हर तरह से भौतिक सुख भी हमको मिल रहा है, बहुत सारा चीजें हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्री में बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारा प्रोडक्ट अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी आज परसों स्वामी जी प्रिंस गया था गुजरात में, हम अभी गाय का घी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो स्वामी ऐसे ही आश्रम पे गया था तो स्वामी जी सामने से उसको मिल गए। हम कुछ सोचा भी नहीं था कि स्वामी जी को मिलना है करना नहीं, स्वामी जी उल्टा ऐसे, मतलब हमारा भाव अच्छा हो तो स्वामी जी सामने से भी आ जाते हैं। वो मिलने के लिए स्वामी जी को नहीं गया था, वो आश्रम में ऐसे ही गया था, तो भी स्वामी जी उसको मिल गए। तो इस तरह से मेरा ये इतना सालों का अनुभव है, कोई कार्य रुकता नहीं है किसी के बिगड़। आप सब लोग जुड़ो और पूरे भाव से जुड़ो, यही मेरा एक आखिरी संदेश है। So very important thing that Pratap Bhai have said, regardless of what Gurukarya you get, don't miss an opportunity for Gurukarya. There is no such thing like this is big Gurukarya or this is small Gurukarya. I will get recognized only for the big work or not for this work. Don't think like that. Any opportunity for Gurukarya, grab it. We have seen them doing all kind of Gurukarya, whether it is labor job at the Baba Swami Dham, whether it is organizing the event, whether it is promotion, whether it is exhibition, whether it is trustee responsibility. You talk about it, this family has exemplified for each and every one of us that when there is a wish, there is a way. So never say no to any Guru Karya, because ultimately it is going to help you in your spiritual journey. We do Guru Karya for Gurudev, by Gurudev, not for us. Okay, so that is one thing. Second thing, Pratap Bhai repeatedly said, and again he said, no Guru Karya is going to stop for money. Money will come and it will take over the mission by itself. All you need as a sadhak is the bhav. As the instead of giving only limited what you think, this is my budget or this is only what I can afford, rather you give everything that is in excess and see the miracle. He said he himself has witnessed that from 2003 to 2022 today, in last 19 years, by following what he is saying, giving whatever is in excess, he has seen tremendous growth for his business, his family, and he has seen or witnessed so many major Guru Karya taking place. To arrange an event of 200,000 people, 2 lakh लोगों के लिए कार्य करना is not a joke. It is not an ordinary thing. But in his presence, in his leadership, all these things happen. How? Because he was always thinking bigger and he had that big heart that yes, I can do that for my Guru. If my Guru is asking that, I am going to do this. And that is what happens. So never belittle yourself.
always have right self-esteem and go ahead in any Gurukarya, because think big and have bhav of giving, rest Swamiji will take care of it. तो एक बात हुई कि हर्षा जी की चप्पल टूट गई और स्वामी जी ने उनको चप्पल दिला दी। कभी कभी स्वामी जी हम लोगों को डांटते हैं, हमको भी चप्पल पड़ती है, उसके बारे में बताइए। साधकों को लगता है कि स्वामी जी सिर्फ पैम्पर ही करते हैं, बहुत प्यार भरी बात करते हैं। स्वामी जी ने अपने प्रवचन में कहा है, जो मेरे करीब होते हैं ना उनको जाके पूछना मैं कितना डांटता हूँ उनको। तो ऐसा भी कभी होता है क्या, आपके साथ हुआ है क्या? बहुत दफे हुआ है, बहुत दफे ऐसा, एक नहीं बहुत दफे ऐसा हुआ है। मैंने बोला ना जब मैं केरला जा रहा था तो बोला परमिशन लेके आए हो क्या? तभी तो मैं स्वामी जी के पास नजीक भी नहीं पहुंचा था। फिर एक दफे मैं कुछ लड़कियों को जल्दी भेज दिया था यहाँ से बॉम्बे से कि भाई आप जाइए काम करने के लिए, तो बोला इतने रात को कोई भेजते हैं क्या? मतलब इस तरह से बहुत दफे डांट भी पड़ी है। तो ये तो Guru is always watching you and Guru is always trying to जो स्वामी जी अभी he used this word कि एक कुम्हार होता है ना, वो बाहर से ऐसे पकड़ता है और अंदर से ठिपता है, तो वैसे मटका बनता है। The same way Guru is trying to teach you by disciplining your mind as well as your soul. Okay, so he is trying to give you all kind of opportunity. He is trying to pamper you, he is loving you, he is protecting you, taking care of you. But at the same time, if we are using our intellect, अपनी बुद्धि ज्यादा यूज की या कुछ गलत हुआ without any attention. For example, Pratap Bhai sent his daughter and another sadhika to the ashram in the from Mumbai. So probably they left in the afternoon and reached there in the night time or evening time, late evening. So Swamiji scolded Pratap Bhai that how can you send girls so late in the evening time to the ashram? Because protecting our daughter and protecting them, at that time ashram was not that well developed. It was not a well populated area. So for our daughters and for our energy to be protected, Swamiji even did that to Pratap Bhai. When Pratap Bhai went to Kerala Shibir, Swamiji said that, did you take an appointment? Did you, are you allowed to come? So these kind of things are not just to tell a sadhak. Many times I have seen those who have worked closely with Swamiji, they get offended. How come Swamiji tell this to me? Swamiji is not telling you. Swamiji is telling those new sadhaks who are bringing the message to you that discipline is more important than anything else, no matter how close you are to me. Okay? So please understand that as Swamiji was giving example in the giving message, passing through Pratap Bhai mein aa raha hoon. He was passing the message to the spirit, okay, the soul. So there are a lot of things that is beyond logic, that is beyond our buddhi or intellect that is happening. You have to accept it. Recently, I was trying to work with Swamiji's close disciples to organize an event, okay? And we were trying to organize something for the 21st of June, International Yoga Day. I'm just sharing the example. But Swamiji was traveling, we were not getting the answer. In the last minute, we came to know that Swamiji had this plan that he wanted to give to these young children. And that's how he declared the Vishal Bal Shibir. So when I came to know, I dropped all the ideas of 21st June International Yoga Day event that we were planning to do. And I said that Guru Ichha is the most important thing. Whatever Swamiji says, there is something that has longer vision, bigger, greater vision, and we have to simply join, drop our idea, drop our whatever wishes we have. But that is the way Gurukarya should be done. And we are learning from elder or senior sadhaks like you. So thank you very much for sharing that. Harshaji, आपकी डायरी की बातें हो रही हैं, आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये मेरा संदेश भी है और मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखो, जैसे स्वामी जी को हमने पकड़ा है तो हमारे से कसौटी भी बहुत होती है, हमारी परीक्षा भी बहुत होती है। जैसे स्टार्टिंग में ही हमारे घर पे हम दोनों का थोड़ा हुआ था,
लेकिन हमने स्वामी जी को नहीं छोड़ा। फिर हमारा फैमिली में भी थोड़ा मनमुटा हुआ था, फिर भी हमने फैमिली को नहीं छोड़ा, मैं स्वामी जी को नहीं छोड़ा। तो ऐसा मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जब हमको स्वामी जी एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमसे कसौटी कराते ही है, तो हमको वो कसौटी पार करना है, लेकिन स्वामी जी को नहीं छोड़ना है। वो एक बात तय करना है, चाहे साधक से कसौटी हो, चाहे ट्रस्टी से कसौटी हो, चाहे स्वामी जी गुरुवार से ही की कसौटी न हो, किसी से भी कसौटी हो, लेकिन हमको समझना है कि अभी हमारी कुछ कसौटी हो रही है तो हमको स्वामी जी एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, वही समझ के हमको पकड़ के रखना है। वो मेरा एक्सपीरियंस है और मैं वही चाहती हूँ कि स्वामी जी को नहीं छोड़ना है किसी को भी। Yes, and every sadhak has this beautiful message from you. आपको भी मालूम है कि मेरे जीवन में भी ऐसी सबसे पहले गुरु का कदम तो बाद में गिरा अपने घर में या अपने जीवन में। मैं तो स्वामी जी को जानता तक नहीं था, लेकिन आत्मा ने इतने स्ट्रॉन्ग अर्ज के साथ कहा था कि इनको तुझे मिलना ही है, और बिना जाने, बिना पहचाने, बिना सोचे मैंने स्वामी जी को स्पॉन्सर किया। हालांकि हमारे समाज ने भी ना बोल दिया, मेरे दोस्तों ने भी ना बोल दिया, मेरी बीवी ने भी ना बोल दिया। मन मिटाव होते हैं, मतभेद होते हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि अपने दिल को मत तोड़ो, अपने प्यार को मत तोड़ो, अपने प्यार से सबको अपना बना लो। तो स्वामी जी आए और उन्होंने हमारे जीवन में एक नया स्वर्ग खड़ा कर दिया। ये मेरा अनुभव है, आपका अनुभव है। और जब भी कोई मुसीबत आए तो उसको मुसीबत की नजर से नहीं देखना चाहिए, उसको एक कसौटी है, एक परीक्षा है, ऐसे देखना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि अगर वो समय, वो कसौटी को निकाल के बाहर हम क्रॉस कर गए, यानी कि हमने दूसरे दौरे में कदम रख दिया, दूसरे चक्र में एक स्टेप आगे बढ़ गए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस है फ्रॉम ए वुमन टू दिस वर्ल्ड। क्योंकि आप लोग, औरत लोग जो होते हैं, घर का पूरा जिम्मेदारी संभालते हुए, घर की सारी जिम्मेदारी संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए बैलेंस करते हो, और इसलिए धरती माँ की तरह ही नारी शक्ति है। स्वामी जी कहते हैं कि नारी एक बीज 2000 गुना बीज करके देगी। तो ये जो आपकी एडवाइस है वो सर आंखों पर, क्योंकि बहुत 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 काम की चीज होती है। क्योंकि इम्पेशंस भी नारी में सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। और पुरुष हमेशा मेहनत करके या बाहर के काम करके चीजें औरत के कंधे पे छोड़ के चला जाता है। उसको पता भी नहीं होता है कि बच्चे कैसे सोए, कब खाया, कैसे पका, कैसे हुआ। लेकिन आप घर का भी संभालते हो, पुरुष को भी संभालते हो, और ऐसे गुरु कार्य में भी जुड़ते हो, तो बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो उसके लिए जिस लेवल पे आपने कार्य किया है ना, वो तो हम सबके लिए बहुत 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 बड़ी प्रेरणा भी है और चुनौती जैसे कह सकते हैं हम लोग कि if you guys can do that, how come we cannot do it? It is a challenge also. तो बहुत धन्यवाद, ये बहुत प्यारी चीज कही। I want to tell one thing from Harshaji's experience, that we don't have to get discouraged and we have to take, आप ही बोलिए ना, बिकॉज आपके वाइब्रेशन आएंगे तो अच्छा लगेगा। इंग्लिश में आपका आखिरी मैसेज आप अपने दे दीजिए। मैं बोलूं? हाँ, चलो मैसेज तमें इंग्लिश में आप ही दो। English में, oh, I can, let's see. I just want to give a message that even in any situations it comes in our life, don't leave Guruji, because it is our exam for that. If you want to get to another step, we will have to give if we want to go to next step, next class, we have to give exams. So these are the time even if we get family matters, if we have family matters, money matters, or if we have some manmuta with the trustees or sadhaks or anything, but don't leave Swamiji, because if we Swamiji is only giving us chance to be with him. तो जितना तो ज़्यादा translate कर सकते हैं। No, that is very beautiful. Basically, the difference of opinion is okay, but we should not linger on it and get stuck on it. Swamiji says कि मेरे सबसे अच्छे संबंध हैं,
आपके संबंध क्यों अच्छे नहीं होते हैं? और आप मुझे देख के आए हो समर्पण में या उस साधक को देख के आए हो अगर आपकी किसी साधक के साथ नहीं बन रही है? स्वामी जी ये बार बार कहते हैं ना. So the most important thing is many times very good spiritual state, even in spite of having such a good spiritual state, sadhaks leave samarpan meditation or any other path or responsibility in their life. Why? People leave their job even after having good position. Why? Because they got hurt, because somebody said something to them and they got hurt. That should not happen. Harshaji is trying to say that don't get distracted by somebody's word. Even if you disagree or get in argument with even Swamiji and Guruma, you don't have to leave the path. You have to stay in the path because this path is bringing you, meditation is bringing you on the next level of spirituality. This is for our soul's progress. And Guru is going to test you in all possible ways. This is my experience, Harshaji and Pratap Bhai's experience. He is going to test you through your family, through your loved one first, and then from the sadhaks or non-sadhaks, and then from the other part of the society. But he is going to test you because he has given you $1 million gift. And if he wastes that $1 million here and there, then he is going to say that why I should give you. He is going to test you so that you get rid of all the negativity, all the intellect, all the material things from this world here and go in the spiritual world higher. Okay, that is what Guru wants. Very beautiful advice, Harshaji. I really appreciate that. What is the next? No, just a second. No maintenance. Yeah. Especially when it's स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, सबके बॉडी को, and ये स्थूल शरीर जी का सूक्ष्म शरीर. So स्थूल और सूक्ष्म की अनुभूति आपने बता दी. बहुत सारे मकराना की जो बात थी, फिर ये भी अनुभव हो गया. हमने बीच में टाइम के हिसाब से उन्होंने बता दी. Then ये A1 बंगलोस की बात रह गई है. This is something very beautiful, Anubhuti. You were there when Guru Krupa, the A1 bungalows in Navsari, was inaugurated. Swami ji ने उसका पूजन किया था ना? स्वामी जी ने हमको बोला है ले लो, और हम सब साधुओं को क्या बोला था कि आप ले लो. स्वामी जी ने गुरु माँ के लिए भी उधर लिया था बंगला, ऐसा सबके लिए लिया था. And I remind you, Pratap Bhai, at that time, you called me personally. I was in Canada, and you called me. You said that, Hitendra Bhai, are you going to give donation for Swamiji's bungalow in A1 bungalows? So, Pratap Bhai did not only request today to the sadhaks. Even in those days, he was going places to places. He was calling people, not just in India, out of India also, to help and to be part of Swamiji's mission, Swamiji's Gurukarya. In those days, this is 2007, 15 years ago I am talking. Okay, I remember very well. So thank you. And this is the realization of Swamiji's dream. So Guru Sanidhya, Yog Prabha Bharti. This is another, this was at the Yog Prabha Bharti office. कहाँ पे था ये? योग प्रभा भारती ऑफिस ना? हाँ, ये अभी ये योग भवन है ना अपना? योग प्रभा भवन. हाँ जी. Now this is very interesting for many people. स्वामी जी के कदम चरण कमल के ये इम्प्रिंट्स है. ये कहाँ पे है, क्या है भाई? ऑफिस में. अरे वाह. ये ऑफिस ये 2012 में हमने नया ऑफिस किया था. तो पालीताना से आने के बाद में स्वामी जी आए थे. पालीताना की हमारा हो गया, उसके बाद में स्वामी जी ने ऑफिस में चरण रखा था. वाह, वेरी ब्यूटीफुल. सो इट इज पालीताना. तो ये तो जून महीने में, यानी कि और स्वामी जी ने हर एक चीज का डिस्कस किया था. कौन सा प्रोडक्ट है, कौन से स्टेट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किधर करना चाहिए. पूरा एकदम एक मैनेजर की तरह उन्होंने पूरा प्रिंस को समझाया था कि इधर करो, इधर मत करो, इधर ऐसे करो, ये प्रोडक्ट तुम्हारा चलेगा, ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा. पूरा एकदम
एक एक चीज और पूरा चीज को चेक किया था। तो सबसे बड़ी बात आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 2 दिन में 10th एनिवर्सरी ऑफ स्वामी जी's विजिट टू योर वर्क प्लेस होगी। 13 जून 2012 के दिन स्वामी जी आए थे आपके घर पे, आपके ऑफिस में, और 13 जून 2022 यानी कि यस अब 13 दिन हो गया। तो ये स्वामी जी की कृपा देखो, बराबर 10 साल में आपकी पूरी स्टोरी स्वामी जी ने दुनिया को दिखा दी। मैं सिर्फ तेरी दुकान पे नहीं आऊंगा, तेरी दुकान चला ये गुरु की कृपा है और ये गुरु का प्रेम है। देखो कितनी सुंदर बात है, कितना एक के बाद एक कार्य करवा रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे अभी आपका कार्य पहुंच रहा है, धंधे का भी। बहुत ही सुंदर, ये मैंने उस दिन ही देख लिया था, मैं बोला प्रोग्राम के वक्त बताऊंगा आपको। तो ये अमरीश जी की बेटी के साथ, रेवती के साथ फोटो है। हाँ, ये उनका नेमिंग सेरेमनी था ना, तभी बुलाया, इनवाइट किया था। रेवती नेमिंग था ना अमरीश जी की बेटी का, तभी। अरे वाह वाह वाह। तो यानी कि मामा मामी दोनों भांजे को बराबर संभाल रहे हैं। भांजे के बच्चों को भी संभाल रहे हैं, स्वामी जी जैसे आपको संभालते हैं वैसे। दिस इज रियली ब्यूटीफुल। स्वामी जी इज ग्रैंड डॉटर Revati here. She is the daughter of Amrish ji, and when she was given the name, Harshaji was able to attend the ceremony. That was beautiful. Next. तो ये सब हो गया अपना सब समरी, आगे के बहुत सारे अनुभव हैं। तो दिस वाज फाइन। इसके साथ हम पूर्णाहुति की ओर जा रहे हैं अंत में। और सॉरी इन बिटवीन मेरे को जरा बाहर जाना पड़ा, बिकॉज अभी यूएस गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट रखी थी इतने सालों से कि कोई भी आए तो कोविड टेस्ट नेगेटिव दिखानी पड़ेगी, बाहर से आए तो कोविड टेस्ट लेना पड़ा। लेकिन एक रिसेंट न्यूज ये भी आया है कि आज से ही वो बैन निकाला गया है, लेकिन फिर भी मैंने सेफ्टी के लिए कोविड टेस्ट करवा के ले ली ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। बट आपने जितने प्यार से हमें ये सब बताया, जितने प्यार से आपके परिवार ने आके हमारे साथ ये अनुभूतियां, ये बातें शेयर की, हमको ऐसे लगा कि घंटों तक आपसे मिलते रहे, बातें करते रहे। और पिछले 1 महीने में इतने बिजी होने के बावजूद भी आपने इतनी सारी छोटी छोटी चीजें ढूंढ ढूंढ कर निकाली और हमें बताई और हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू योर लव एंड all the sweet memories that you shared with us, not just with Swamiji, with Guru Parivar itself. I am really thankful. And may Gurudev bless you and your family and bless all of us to have that level of Samarpan, and we all continue doing the same level of Gurukarya as you have done, and make Gurudev's dream, Vasudeva Kutumbakam, world is one family, a reality. We will continue doing that. Thank you very much. We also are very much thankful to whole team, जिन्होंने हमारे 10 साल का जो अनुभव था वो हमसे सब बुलवा लिया, क्योंकि हमें तो होती है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। आज आप सबने हमको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, जो हमसे इतना अच्छा सब शेयरिंग हो सका, जो शायद दूसरों को काम, शेयरिंग करने का मतलब यही है कि दूसरों को काम आए। स्वामी जी भी बोलते हैं कि अपनी अनुभूतियां शेयर करो। आज वो प्लेटफॉर्म हमें मिल गया। थैंक्स टू स्वामी जी एंड गुरु माँ, एंड थैंक यू टू होल योर टीम। हम तो माध्यम है, जैसे आप लोगों ने किया, हम भी माध्यम ही है। ये पूरे कार्यक्रम को करवाने वाले जो क्या बोले, करता धरता हरता जो है ना, वो शिव कृपानंद स्वामी जी है। वो देखो बैठ के लिख रहे हैं। तो मेरा तो यही है। अभी मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं स्वामी जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने हमको प्रोग्राम करने को दिया, और गुरु माँ को भी थैंक्स बोलता हूँ, और टीआईसी टीम को पूरी को धन्यवाद करता हूँ। और मैं सबसे मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि हमने बताया कि हमने ये गुरु कार्य किया, वो गुरु कार्य, और जो स्वामी जी गुरु कार्य करते हैं और उनको जो तकलीफें होती है वो हमने देखा हुआ है। बहुत सारी तकलीफों सहन करके आज भी जो गुरु कार्य करते हैं,
उसके कोई हम उसके बारे में हम कभी बता भी नहीं सकते और किसी चर्चा को भी बता नहीं करते। सही है। बहुत बहुत सारी तकलीफें हमने देखी हुई है, बहुत सारी तकलीफ करके, और स्वामी जी कभी नहीं बताते कि मैंने ये किया वो किया। हम सब ने बता दिया कि ये किया वो किया वो किया, मगर स्वामी जी कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी को और गुरु माँ को और आप पूरी टीम को। जय बाबा। आप हमारे अमेरिका के साधकों के लिए प्रार्थना करना जरूर कि हमसे भी इतना ही और इससे भी अच्छा गुरु कार्य हो, हम माध्यम बने और हमारे जरिए गुरुदेव कार्य कर लें। हम तो कुछ भी नहीं है और हमारी कोई हैसियत ही नहीं है कुछ करने की। हमारे जरिए गुरुदेव ये जो कोई भी मिशन में जरूरी है अमेरिका खंड के लिए या दुनिया के लिए, वो करवा ले। हम तो इसी भाव के साथ आए हैं और हमको तो मालूम है, जैसे आप लोगों के साथ जो पुराने साधक है, हम लोगों को तो मालूम है कि हमारी कोई हैसियत ही नहीं है कि इस स्तर पर ये कार्य करें। ये आइडिया भी जब आया था तो मैं बहुत हेजिटेट करता था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन गुरुदेव करवा लेते हैं। क्योंकि मैं जब भी ये प्रोग्राम भी करता हूं तो कहता हूं श्री शिव कृपानंद स्वामी और ग्लोबल समर्पण परिवार की ओर से आपको आमंत्रित करता हूं, क्योंकि करने वाला वही है, हम तो सिर्फ माध्यम खिलौने हैं। तो वो भाव की वजह से ही हम प्रगति कर पा रहे हैं और कार्य आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा ही बहुत आगे बढ़े और नए नए यंग बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, हमारे सबके बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन आए और इस कार्य को आगे बढ़ाए। इस प्रार्थना के साथ मैं सोनल जी के हाथ में सुपुर्द करता हूँ आज का सूत्रधार। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। सेशन तो अभी शुरू हुआ है, ऐसा लगता है कि हमने इतना कुछ सीखा है कि यात्रा तो अब चालू हुई है। जो जो ज्ञान आप लोगों ने दिया और ये जो अनुभव हमने आज नोट किए उसके लिए, पर कुछ और मिनट आपके लेंगे और कुछ और थोड़ा सा समय लेके और फिर आपसे विदा लेंगे। तो बिफोर वी मूव ऑन, ये जो पुरानी जो स्लाइड थी, प्रीवियस स्लाइड, आई वुड लाइक टू टॉक about the previous slide that you just saw, कि अगर आपने आज जिसने भी एंजॉय किया है या यूट्यूब पर आप सेशन एंजॉय करते हैं दिस इज समर्पण का, तो जरूर हमें अपने गेस्ट के बारे में और ऐसा कोई है साधक जो स्वामी जी की जर्नी को इसी तरह सुंदरता से प्रेजेंट कर सके और अनुभूतियों को हमें शिक्षा के लिए प्रदान कर सके, तो प्लीज लेट अस नो और हम उनसे कांटेक्ट करके हम स्वामी जी का संदेश दुनिया में फैलाना चाहेंगे और दूसरों को भी उनके जरिए सिखाना चाहेंगे कि और समर्पण ध्यान से जुड़ के जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। तो प्लीज लेट अस नो। आई नो आज हमें एक के बदले 4 और हमें साधक मिल गए हैं, प्रिंस जी, स्वाति जी एंड पारस जी एंड जिनाली जी, जो आज हमारे अगले सेशन में कभी तो जरूर गेस्ट होंगे। सो एक के बदले 4 होते हैं। तो इसी तरह से समर्पण जैसे हमेशा ग्रो हुआ है, TIS का फोरम भी ग्रो होगा और स्वामी जी के सारे संदेशों को बढ़ाएगा, फैलाएगा। उसके साथ आगे बढ़ते हैं और धन्यवाद आज जो आपने सिखाया उसके लिए। वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, क्योंकि सबके आपने नाभि चक्र को शांत कर दिया, सबको इतना जवाब, इतनी सारी चीजें कह दी कि सवाल अब उस एनर्जी में सवाल ही नहीं आते। जब हम उसमें चले जाते हैं तो सब कुछ अंदर से ही निकल आता है। तो कुछ ऐसा ही महसूस हुआ आज। और यहाँ पर यूट्यूब पर चैट में सब जगह लोगों ने बहुत सराहना की आज के सेशन की, और आज जो आपने अनुभूतियां दी और हमने भी बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना। पर ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे पास साधकों की सामूहिकता थी, जिन्होंने इतना जुड़ के उनकी एनर्जी से काम किया। यहाँ पर सुबह 4 बजे से उठे हुए हैं और अभी 12 बज रहे हैं, मतलब, और आपके साथ के ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं। और हितेंद्र जी मैक्सिको से गुरु कार्य कर रहे हैं। मतलब सबने जिसने भी इसमें सहयोग दिया है, और इवन जी who was doing introduction, वो प्लेन लेने के पहले ही मेड श्योर कि वो आपको इंट्रोड्यूस करे और फिर जाए अपनी यात्रा पे। और आपके दामाद, बच्चे, सब लोगों ने इतना साथ दिया, उसकी वजह से ही हमें इतना चैतन्य मिला है। तो एक छोटा सा वीडियो जो प्रस्तुत कर रहे हैं एज अ थैंक्स टू एवरीथिंग एंड थैंक्स टू स्वामी जी एंड गुरु माँ फॉर मेकिंग इट हैपन। नाभि चक्र के दिन स्वामी जी ने कुछ ऐसा प्रवचन में मुझे कहा, तब मुझे
कॉन्फिडेंस तो हुआ कि नहीं अभी ये शायद नाभि चक्र मुझे खुला होगा, क्या किया होगा वो तो उनको ही पता, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तब मुझे लगा कि मैं बिजनेस के अंदर जो पैसे के पीछे भाग रहा था, उस दिन पैसे का मोह निकल गया उसी दिन। और मैंने बोला मेरा कुछ आउटस्टैंडिंग बाकी था, जो पैसे कुछ लोग नहीं दे रहे थे, तो चेक बाउंस हो गए थे, तो मैंने वो सारे चेक फाड़ के फेंक दिए। बोला नहीं, जिसका नसीब में होगा आगा है। તો એના જ્યારે એસએસસી ની એક્ઝામ હતી ને ત્યારે મેં સમર્પણ જોઈન કર્યું ને હું સ્વામીજી કહે ને કે બાલક કે ઉપર से चित्त निकाल दो, એવી રીતે હું એના પરથી ચિત્ત કાઢીને હું મારું મેડિટેશન કરવા જતી. મારા આજુબાજુ વાળા બધા તમારો છોકરો એસએસસી માં છે એ તમને કઈ ખબર નથી પડતી, પણ મને એમ હતું કે સ્વામીજી કહે છે ને કે છોકરા પરથી ચિત્ત કાઢી લો, એટલે મેં બધું ચિત્ત કાઢી નાખ્યું હતું એના ઉપરથી. मगर स्वामी जी हमेशा बोलते हैं कि आप लोग कार्य करो, आप पॉजिटिव रहो। भले मुझे अगर खाली इतना ही सोचना है कि हम क्या दे सकते हैं, अगर 1 रुपया दे सकते हैं, देने का भाव रखो, कार्य अपने आप हो जाता है। तो ये सारा मेरा कहने का एक ही है कि कार्य कभी पैसे के लिए रुकता नहीं है, और जितना कार्य हम सोचे, स्वामी जी हमको सोच बड़ा करने को बोलते हैं, आप जितना बड़ा सोचोगे उतना कार्य आपसे हो ही जाएगा। तो मेरा थॉट में वही कहना था कि हम जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा कार्य हमारे हाथ से होगा ही होगा। बहुत बढ़िया. धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद. चालू है, अभी शुरू हुआ दूसरा. शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बाबा स्वामी नाम ले रहा हूँ, तब प्राण तन से निकले। शिव कृपानंद स्वामी नाम ले रहा हूँ, तब प्राण तन से निकले। दांडी समुद्र तट हो, आश्रम का वंशवट हो, स्वामी मेरे निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। बाबा हर एक साधक की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। बाबा उस वक्त जल्दी आना, मुझे स्वामी नहीं भूल जाना,
गुरुमाँ को साथ लाना जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। बाबा स्वामी नाम ले रहा हूँ तब प्राण तन से निकले। जय बाबा स्वामी। કેવું લાગ્યું સરપ્રાઈઝ? બહુ મસ્ત, બહુ મસ્ત. મને ફેસબુક માંથી ફોટા કાઢ્યા લાગે છે ને. ये मैं व्हाट्सएप कर અચ્છા, એ કાયમ મને एमाजी भी है खबर नहीं क्या પ્રતાપભાઈ મને WhatsApp? હંમેશા મોકલતા હોય. દર ઓકેઝન પર જ્યારે પણ કઈ વિષ હોય હંમેશા મને પર્સનલી મોકલે પ્રતાપભાઈ. સાચવીને રાખ્યા હતા મેં અને અમુક ફેસબુક પરથી પણ લીધા. અને પણ તમારો પ્રેમ છે, અમારો પણ પ્રેમ છે, બાકી તો સ્વામીજીની કૃપા છે. yes, 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 yes. We wanted to give you little surprise and ये जो भजन Amazing. रविंद्र पाटिल जी ने जो गाया था, आई थिंक आपके जीवन की जो अनुभूति है ना, उसके लिए एकदम सही सटीक जिसे कहते हैं वो भजन इसलिए हमने गिफ्ट में रखा कि ये Yes, yes. आपके हृदय का भाव गुरु तक पहुंचता है और गुरु के हृदय की कृपा आप तक पहुंचती है। इसमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपसे मिलके। सोनल जी, यू टेक ओवर। Yes, Jai Baba Swami. Next is Rasika ji, or behind the scene PPT decorator. I would like to invite you. Jai Baba Swami, what a lovely Yes, Swami Rasika ji. presentation. The last moment में भी सब अपडेट करके दिया. Thank you so much. Thank you, Jai Baba Swami. It was a really very mind-blowing session. Thank you for all what you have shared with us today. Now, let us take some blessings from Swamiji. Yes. आप सबको खूब खूब आशीर्वाद। Yes, Swami. Once more. आप सबको खूब खूब आशीर्वाद। Thank you, Swami ji. Jai Baba Swami, thank you so much. Thank you. He is 24/7 with us, but at least in this session, he is with us from beginning till end. Jai Baba Swami. With that, we conclude today's session, and thank you really, Swamiji, for all the things that you gave us today and for the lifetime or for many births. And thank you to our guests Harshaji and Pratapji, जिन्होंने दिल से दिया आप लोगों ने हमें समय और शारीरिक कोई भी चीजों को रेस्ट्रिक्ट ना करते हुए इतना सारा शावर किया है आपने इस जर्नी में, दैट उसके लिए कोई शब्द नहीं है. बस हम सीख रहे हैं और उससे ही आगे बढ़ के इसी तरह आप ही की तरह हम गुरु कार्य कर सके, हमको वैसा ही आशीर्वाद दीजिए. तो थैंक यू. स्वामी जी आपको आपसे करवा लेकर Yes, youngsters की जरूरत है. youngsters से हमारे से भी अच्छा कार्य हो सकेगा. यस यस यस, और करवा लेंगे जैसे प्रताप भाई कहते हैं ना. हम चाहे मैं सबको यही कहता हूँ, ड्रीम बिगर, बाकी सब गुरु देख लेगा. ओके, ओके, धन्यवाद धन्यवाद, Bye bye. Thank you.